men and 8 women, it's here and it's now, as the road to the World Championship goes through Toronto, Canada. Over 3 weeks, chess's elite compete for their right to challenge for the crown. For some, it's a story of redemption. He knows this might be the last few moves of his World Championship. Oh my god! There's experience, there's youth, and for one nation on the rise, fortune could favor indeed. An amazing day for Indian chess, making their way into the Candidates tournament. Only one will advance. Only one will play for it all. Watch the 2024 FIDE Candidates on chess.com. History, prestige, legacy. Words synonymous with the most coveted title in chess. To be a world champion means your name etched in the history books alongside greats of the past. Kingsley Ren, a deserving world champion. Thing is overtaken by emotions. What a match this has been. But for 8 men and 8 women, it's here and it's now, as the road to the World Championship goes through Toronto, Canada. For 3 weeks, chess's elite compete for their right to challenge for the crown. For some, it's a story of redemption. He knows this might be the last few moves of his World Championship. Oh my god! There's experience, there's youth, and for one nation on the rise, fortune could favor indeed. An amazing day for Indian chess, making their way into the Candidates tournament. Only one will advance. Only one will play for it all. Watch the 2024 FIDE Candidates on chess.com. History, prestige, legacy. Words synonymous with the most coveted title in chess. To be a world champion means your name etched in the history books alongside greats of the past. Kingsley Ren, a deserving world champion. Thing is overtaken by emotions. What a match this has been. But for 8 men and 8 women, it's here and it's now, as the road to the World Championship goes through Toronto, Canada. For 3 weeks, chess. Thanks, guys. We are here with Grandmaster Vidit Gujrathi, who had an amazing move, Bishop G4. I want to tell you, because you don't know this, the chess.com live server did not give 2 exclamation marks or even 1 to Bishop G4, but did give 2 exclams to the response Bishop C3. Do you feel a little cheated by our live server? I think you guys need an update, yeah? Because Bishop G4 is like really spectacular and Bishop C3 is forced to otherwise. But I guess the algorithm is when you have the only move and you find it, you get double exclaim. But yeah, I mean, the tech guys can fix that. I'll talk to our programmers for sure. Now, you're only 29 years old, but yet weirdly, you're the elder statesman of the Indian contingent there. How do you feel about that? I wish I was younger. There's no doubt in that. But I mean, there's nothing I can do about it. So yeah, that's about it. Have you ever had a situation where all the Indian players wanted the same player as their second, and you were fighting over who was going to be your helper? I mean, you said you've got Ganguly and Vocaturo, but has there ever been a situation where you've all wanted Vishy to be on your team, or he already chose someone else, or anything like that? Yeah, I think it had happened a couple of years ago when I started to work with Surya. He was approached by a couple of people at the same time. So I'm very glad that he chose to work with me despite having other offers. So okay, why do you think he chose you? I think our goals were aligned. We spoke about what I wanted, and it really challenged him. So just not for work. I think for him it's very important that he has a challenging project or some exciting goal to look forward to. So that was his incentive. I'm very glad that he has stayed with me. Well, there you go, everybody. A draw in round 1 as black for Grandmaster Vidit Gujrathi. Back to you guys in the studio. Thanks, everybody. We're here with Grandmaster Vaishali, who started her first women's candidates with a draw. Of course, because of the rules, you, and you're not the only one, have to play a countrywoman in round 1. How do you feel about having to play someone that you probably know better than the other competitors? I don't know. It just feels normal. I mean, we have not played so much over the board, but yeah, it just feels normal. Just part of it. You had so many months to train for this one particular game. Are you glad to have it finally behind you? Yes. Yeah, we have been preparing for many months.
for this tournament, and I'm very happy to start the tournament. At yesterday's press conference, you talked so much about, well, frankly, the strong love you have for your brother. Were you watching him play at all today, or were you completely focused on your own game? No, of course, I was checking with him what he's doing, and I was also focused on my game, which is more important. So, Absolutely. And Peter Svidler mentioned that he's working with your brother Praggnanandhaa. But are you all three working together prior to each round, or can you take us inside your hotel room and give us a little window? okay. I when they are discussing, I'm also there sometimes, but I'm not really like working with him. So, yeah. Did you feel any more stress today, this being probably the biggest tournament of your life? No, somehow I took some time in the opening, like just to get into the game, but once it started, like I think I was more into the game. Yeah. How does your mom feel having both her son and daughter here? She's very happy. Um of course, this is our biggest tournament in our lives for both of us, and she's of course very happy. Fantastic. And finally, I know that Praggnanandhaa is a household name in Tamil Nadu, but are you starting to become a household name? Are you pretty well known when you walk down the streets? Uh, I I don't know, like yeah, in recent months, yes, of course, Pragg is more famous, and then yeah. All right. Well, one of the stars of Indian chess, Grandmaster Vaishali, starts her very first women's candidates with a draw. Now back to you in the studio. If Vaishali were to win the candidates and then the World Championship, she would be India's first women's champion. First, she has to win the candidates. Like her younger brother Praggnanandhaa, who is also competing in Toronto, Vaishali is rising fast in the chess world. She entered the Grand Swiss in October, seeded number 12 out of 50. But with some brilliant play and an undefeated 6 wins out of 11, she climbed all the way to the top. The win put her into the candidates. Here, she is one of just 2 players who has never played for a world championship. Will that relative lack of experience be an issue? Or will Vaishali be as equally unfazed as the player who won the Grand Swiss? We will find out. Whatever happens, Vaishali's future is bright. Gukesh D is the youngest player at this year's candidates tournament, only 17 years old. It's an age where most players are still working their way up, not a few games away from playing for a world championship. Becoming world champion has been my dream since the start, and it'll be a huge step towards the goal. So yeah, I'm really excited, and I hope I'll enjoy the process and give my best. Gukesh reached the stage at the last moment, clinching the FIDE circuit spot in December 2023. But the nature of the FIDE circuit also means Gukesh had to put together 5 strong tournaments during the year, which he did. In the end, a hard-fought victory at the Chennai Masters was his final candidates ticket. It looked almost impossible, but then I finally managed to win the Chennai Grand Masters. I was so happy to have a good tournament and also at such a crucial moment. But success is not a straight line, as the saying goes. After hitting world number 8 in September, Gukesh enters the candidates ranked 16th. Still, no other 17-year-old is within even 100 points of him on the rating list. Gukesh is simply incredible. Is he incredible enough to crush at the candidates? Praggnanandhaa Rameshbabu may have the longest name in the 2024 candidates, but he doesn't have the longest odds. Pragg got here with a blistering path to the finals of the World Cup. He thus became the first player from India to qualify for the candidates since Anand, earning the spot mere months before Vidit and Gukesh. Like any young player, Pragg has to handle nerves and avoid overextension to make noise at the candidates. But he has already shown that capability, almost winning the World Cup despite being the 31st seed. There, he won against players who are also in this candidates, Hikaru Nakamura and Fabiano Caruana. What form will Praggnanandhaa show in the candidates? That of a young player who needs more experience, or that of a World Cup and World Championship finalist? History, prestige, legacy. Words synonymous with the most coveted title in chess. To be a world champion means your name etched in the history books alongside greats of the past.
Dingley Ren a deserving world champion. Thing is overtaken by emotions. What a match this has been. But for 8 men and 8 women, it's here and it's now, as the road to the World Championship goes through Toronto, Canada. Over 3 weeks, chess's elite compete for their right to challenge for the crown. For some, it's a story of redemption. He knows this might be the last few moves of his world championship. Oh my god. There's experience, there's youth, and for one nation on the rise, fortune could favor indeed. An amazing day for Indian chess, making their way into the Candidates tournament. Only one will advance. Only one will play for it all. Hello, chat. We are live with the FIDE Candidates tournament day 2. And इस बार मेरे साथ मेरे दो चंगे भाई सी कैसे हैं राकेश भाई एंड सहज भाई? कैसा फील हो रहा है डे 2 कैंडिडेट्स के बारे में? यो नमस्ते चैट, सुपर एक्साइटेड और आई थिंक आज क्या ही मजा आने वाला है। बहुत ही रोमांचक मैचेस। सहज भाई, आपको क्या लगता है? बहुत बहुत बढ़िया। हेलो चैट, हेलो साहिल, हाय राकेश। बहुत एज आई सेड, आई थिंक आज बहुत एक्साइटिंग मैचेस होने वाले हैं, क्योंकि कल आई आई टोल्ड यू 4 मैचेस होंगे ड्रॉ, और आज एटलीस्ट 3 रिजल्ट्स इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, एंड ईच गेम एक्सट्रीमली एक्साइटिंग आई थिंक। मुझे लग रहा है 2 होंगे, 2 रिजल्ट्स और 2 ड्रॉ। टिको भाई, आपको क्या लगता है? अरे 8 रिजल्ट होंगे भाई, तुम देखो ना आज कैसे पीस देने वाले हैं लोग। अरे भाई 8 नहीं 12 रिजल्ट होंगे भाई। 4 लोग 2 गेम तो हम ही खेल के ड्रॉ कर से जीत जाएंगे भाई एक दूसरे से। फिक्र मत करो, तो मैं हारने के लिए तैयार हूं। तुम देखो भाई क्या होता है आज चमत्कार होगा चैट। एंड आई थिंक बिफोर द गेम्स बिगिन, इट्स ओनली 2 minutes टू स्टार्ट ऑफ द मूव्स। वी विल सी द फर्स्ट मूव इन एक्शन। कैन वी क्विकली हैव द पेयरिंग्स फॉर अ सेकंड, बिकॉज़ टुडे इज अ स्पेक्टेकुलर डे। लुक एट गुकेश देयर विद 2 Indian flags next to the players. प्रग उनके सामने आके बैठेंगे वहां पे। यार ये शॉट, इट्स अ ब्यूटी शॉट। आई नो फिटे का एक ब्यूटी शॉट कैमरा होता है कई एंगल में, दिस इज द ट्रू ब्यूटी शॉट। क्यों राकेश भाई? बिल्कुल। और अभी देख सकते हैं विदित है जो रुके हिकारू नाकामुरा के लिए। भाई क्या ही गजब का नजारा ये। गूज़बम्स। आई मीन ये कैमरा का फील बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। और आई होप आज ये दिन हो कि इंडियन फ्लैग के सामने हमें किंग दिखे, जिसका मतलब वो जीत गए मैच ऐसे। और प्रग और गुकेश भाई, प्रग चिल में दिख रहा है और गुकेश आई थिंक मेडिटेशन पोज में, हिज यूजुअल। एक्चुअली एक और पॉइंट में हमें मतलब मेंशन करना चाहिए कि आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम कि कैंडिडेट्स के मैच में हम दोनों इंडियन फ्लैग्स दिख रहे हैं, एक नहीं है। There are Indian flags. हमें ये मेंशन करना, क्योंकि आई थिंक ये हिस्ट्री में आज तक कभी नहीं हुआ। आई मीन आई नो राउंड 1 में, बट हिस्ट्री में ये पहली बार हो रहा है, क्योंकि यूजुअली इट्स ओनली आनंद, राइट? Vishy sir. Correct. That's the only one. But now we have 3 players. So, this is a big moment. Yeah, I agree. And very proud moment for it. इतना फोकस यार प्रग कैसे खतरनाक वाइस, पीछे अली रेजा, पीछे हिकारू। कैन वी हैव अ लुक एट? आई थिंक पेयरिंग्स की जरूरत भी नहीं है, पता ही लग गया भाई कौन किससे खेल रहा है भाई। खतरनाक। एंड चैट, जस्ट एन अपडेट ऑन द पेयरिंग्स। वी हैव प्रग अगेंस्ट गुकेश, हिकारू अगेंस्ट विदित, नेपो अगेंस्ट फिरूजा, कारुआना अगेंस्ट अब्बास। सो व्हाट अ लाइनअप फॉर टुडे। वहां पे फोटो खिंच रहे हैं, सब बढ़िया पोज में खिंचवा रहे हैं। एंड निरिवा, यू आर सेइंग समथिंग बट समझ नहीं आ रहा है। हाँ बिल्कुल, लेट्स गो। एंड वीडी भाई थोड़े से नर्वस। व्हाट इज योर फर्स्ट फीलिंग हियर? यू नो, आई गेट अ फीलिंग कहीं ना कहीं वीडी लुक्स अ बिट नर्वस। यार इज इट माय अंडरस्टैंडिंग हियर? एम आई रॉन्ग हियर? नहीं, मुझे नहीं। ये थोड़ा कैमरा क्वालिटी ना थोड़ा हल्का है ये ऐसे। कैमरा ही गलती है भाई। वही जब मैं थोड़ा मोटा लगता हूँ ना, मैं भी कहता हूँ कैमरा एट्स 10 pounds। वही मैं भी यही कहता हूँ भाई। बट बाय द वे चैट आपको क्या लगता है, आप किसके लिए आज रूट कर रहे हैं? और एक क्वेश्चन हमारे चैट से और हमारे पैनलिस्ट से। फर्स्ट मूव ऑन द बोर्ड, E4 ऑन द बोर्ड, बट E4 ओके। वीडी भाई के चेहरे पे एक डिफरेंट लुक है, क्या आपने नोटिस किया है वो? भाई आई डोंट नो, बट आई डू अंडरस्टैंड कि लुक तो आप बताओगे राकेश भाई। बट E4 by हिकारू, एंड लुक एट विदित मेडिटेटिंग।
following the Yeah. same pattern yet again. I think हमने कैलकुलेट भी किया था साहज भाई लास्ट टाइम 40 सेकंड रफली चलता है. I know. 40 सेकंड. और we also measured this. also मतलब 40 सेकंड. और ऑल्सो ये भी सोचना चाहिए कि हिकारू ने लास्ट आई मीन पिछले मैच में एक बहुत बड़ा सरप्राइज वेपन दिया था. तो आई मीन विद E4 आई मीन आज भी हम लोग ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सा मतलब सरप्राइज वेपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं हिकारू से डेफिनेटली. और E4 एक ऐसी ओपनिंग है जहाँ पे ये बहुत ज्यादा पॉसिबल है, राइट, एज कंपैरिजन टू D4 जो मतलब बहुत ज्यादा पोजिशनल रहती है. बिल्कुल बिल्कुल. और यस चैट बोर्ड बहुत ही जल्द दिखाएंगे विद वंस वीडी प्लेज हिज मूव. बट आई थिंक एक जो तिलक होता है, एक रेड डॉट, ये मैंने नई चीज देखी है वीडी के चेहरे पे. एंड E4 E5 चैट किंग्स गैम्बिट दिखे. किंग्स गैम्बिट तो नहीं किंग्स गैम्बिट नहीं होगा भाई. नहीं किंग्स गैम्बिट होगा तो मैं भी चेस छोड़ देता भाई. इतना भी फैंसी नहीं है हिकारू यार. इसकी भी एक लिमिट है, लिमिटेशन है. इंसान है वो. मान लिया आपकी बात स्कॉच गैम्बिट, ठीक है, स्कॉच गैम्बिट ले लेते हैं. ओह यस, स्कॉच गैम्बिट हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, स्कॉच गैम्बिट हो जाएगी. Knight F3 on the board. D4 पक्का. Chat going through the first 4 moves एक बार for the highlights video tomorrow ताकि एडिटर के लिए आसान रहे. Thank you editor. E4 E5 Knight F3 Knight C6. D4 oh Bishop B5. कौन सी yes, नाका. स्पेनिश. A6 तो मतलब यहाँ पे एकदम एक्सपेक्टेड ही है, राइट? हाँ फॉर श्योर. क्या वीडी भाई बर्लिन खेलेगा? क्या वीडी यानिश खेलेगा? नहीं. ये सोचो ना, गांगुली और बोका टूरो क्या खेलता है. ओह ऑफ कोर्स बर्लिन आ गई बोर्ड पे. ओके यस द बर्लिन. यार साहज भाई, you know मेरी ओपनिंग थ्योरी इज नॉट अप टू डेट. थोड़ा पिछले कुछ थोड़े से टाइम से मतलब लाइक 12 साल से मैं अप टू डेट नहीं रहा हूँ. सो वो जो क्वीन D4 क्वीन D6 लाइन वेरिएशन आती है वो इसी में आती है ना भाई, जो ड्रॉ होता है. अरे हाँ वो दिस इज द फेमस बर्लिन ड्रॉ. तो यहाँ पे व्हाइट खेलता है. सहज भाई दिखाएंगे, हमारे जनता को दिखाएंगे. एंड कैन वी हैव वीडी और नाकामुरा ऑन द कैमरा प्लीज निधि भाई. हाँ बस उन्हीं को रख दो बस कैमरा पे. हाँ. सो आई थिंक हिकारू जी कहते हैं भाई कोई ड्रॉ नहीं भाई, लंबी गेम है, पूरे स्ट्रीम को सुबह 6 बजे तक चलाना है. बिल्कुल एंटी बर्लिन आ गए बोर्ड पे. ओके बिशप C5 वेरी सॉलिड. या ठीक है. okay by the way one thing is interesting. So Hikaru again not looking at the board. ऐसा लग रहा है कि पता नहीं वापसी की फ्लाइट की प्लानिंग कर रहे हैं. ऐसा क्या है भाई? Typical to Firouzja. By the way, he has played. Chat will have the board quickly. 1 सेकंड में बोर्ड आ रहा है. Just an update. फिलहाल के लिए ओपनिंग में ही है. बिशप C5 खेला है वीडी ने उसके बाद. And Hikaru has taken off his jacket. Done. अब रेडी है. It's like सुपर सैयन मोड होता है ना, वो पावर अप हो रहा है भाई. वो लिटरली ही जस्ट पावर्ड अप लाइक गोकू. ऐसी फीलिंग आ रही है. नहीं हिकारू को समझ आ गया कि ये लंबा गेम होने वाला है. जैसी बर्लिन आई बोर्ड पे चलो अब कोर्ट उतारते हैं, बस अब बैठेंगे हम. चैट. और आई थिंक नाकामुरा को लग रहा था कि अभी आज रात को मतलब टाइटल क्या डालूंगा मैं मेरे रिकैप का. ऑलरेडी Here YouTube, check out my shirt. Oh what a pose भाई, क्या मस्त पोज है भाई हिकारू का भाई. बढ़िया. अरे भाई सारे पोज आज ही भाई एपिक पोजेज यार. आई थिंक he himself said no, VD doesn't have that वो फाइनल जो होता है ना, वो फिनिश ऑफ करने का स्टाइल. तो is he putting pressure on VD अपने पोजेस के थ्रू? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं बिल्कुल हो सकता है. बिल्कुल हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता? ऑफ कोर्स प्रेशर तो हर तरफ से डालोगे ना, हर तरफ से डालोगे. ट्रू. बट शाउट आउट टू मरिया एपिलेवना भाई, फोटो चेस को नाम से जो आप लोग जानते हैं. उनका बर्थडे भी है और हमारे लिए लाते हैं बढ़िया शॉट्स, फोटोज और मेमोरीज थ्रू आउट द इयर्स. सो अच्छा फोटोज. ओके बिग शाउट आउट. Yeah. Thanks a lot to Photo Chess. And by the way, chat, if you're watching on Chess.com, you're missing out on the cameras and the happening stuff. Do click the link pinned by Chess24 पे आओ, where असली hangout चल रहा है भाई. तो सब लोग वहां जाओ भाई. And let's get the likes up to 100. जल्दी से like करो भाई. Let's go chat. Yeah, and just a reminder chat कि जो भी मजा आएगा ये टूर्नामेंट में और जो भी गिव अवेज होंगे, जो भी मस्ती होगी,
सारा कुछ होगा चेस 24 के चैनल में, क्योंकि वहां पे कैमरास है भाई। आपको हाँ हिकारू ही नहीं दिखेगा तो क्या मजा है। हिकारू इज लाइक क्या गिव अवे करेंगे यार ये लोग, क्या करेगा रे गिव अवे तू क्या गिव अवे करेगा रे तू ऐसे एक्सप्रेशन था उसका। हिकारू मस्त है यार। I love people like watching people play against him. And I Okay, think deep थोड़ा in prep, serious deep in submission. prep. Yeah, so as Lee Bhai sets up the full board camera, we can see there Vidit focus chat board bottom right पे दिख रहा होगा आपको. Just to go back a couple of moves, we saw bishop c5, c3, castles, d6, काफी normal developing moves. फिलहाल के लिए white ने c3 खेला है, d4 break कर सकते हैं. And ये knight तो पता ही है भाई, 500 साल से knight इस maneuver में चल रहा है, कुछ change नहीं होना इसमें. So फिलहाल तो काफी normal position. बिल्कुल सही कह रहे। एक्चुअली मेरे को लगता है बिशप जी5 भी आ सकता है बोर्ड पे। बिशप जी5 ना ये एक थोड़ी सी नई सी लाइन आई है। हाँ. और इसका मतलब पॉइंट है कि आप h6 g5 आप एक्सपेक्ट तो करोगे, क्योंकि अदरवाइज वो जो पिन है वो तो हट ही नहीं सकता। तो उसके बाद थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी पोजीशन आ जाती है। तो उसके बाद नाइट f4 नाइट e3 नहीं चलेगा, नाइट को d2 पे रखना होता है। ये थोड़ा सा नया सा सेटअप है, वो चल सकता है यहाँ पे भी। पर पता है क्या यहाँ पे, लाइक एज विदित चैट, मुझे तुम बताना तुम्हें क्या लगता है। विदित ना नंबर 1 प्रायोरिटी रहेगी अवॉइडिंग कॉम्प्लिकेशंस, बिकॉज वीडी ना स्ट्रेटेजिक सॉलिड प्लेयर है। सो इफ यू कैन अवॉइड कॉम्प्लिकेशंस, डू यू थिंक कॉन्शियसली वो कोशिश करेगा, चैट एंड क्वेश्चन टू यू सहज, कि टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशंस अगेंस्ट हिकारू? नहीं यार, वीडी ना मतलब पहले बहुत सॉलिड होता था। मतलब when he was younger वो बहुत सॉलिड था उस टाइम पे। मतलब दैट्स हिज बेस्ट स्किल, दैट इज फॉर श्योर। पर लेकिन लेटली वो जितना अग्रेसिव खेल रहा है, आई मीन इट इज सो इम्प्रेसिव कि जिस तरह से उसका स्टाइल डेवलप हुआ है ना, इट इज अनबिलीवेबल। तो मेरे को लगता है कॉम्प्लिकेशंस लाओ, क्योंकि वीडी मेरे को पूरा भरोसा है उस पर। आई मीन ही इज द वन आई कैन बैक कंप्लीटली। Got it. बिल्कुल। आई थिंक जो वीडी खुद बोलता है कि वीडी 2.0 अलग इंसान है। लाइक जो सहज बोल रहा था कि पहले वो काफी डिफेंसिव या पोजिशनल प्ले खेल रहा था, बट विद 2.0 नेवर शाइज अवे फ्रॉम अ चैलेंज। वो तो रेडी है भाई, लड़ने आए यहाँ पे और लड़ के दिखाएंगे। बिल्कुल। सो लेट्स, आई थिंक हाँ, इसके वो अगर दीदी भाई दूसरा वाला सीन जिसमें ऊपर प्लेयर्स भी दिख रहे हैं और बोर्ड भी है, दैट वुड बी ग्रेट। हाँ, Got it. ठीक है चैट, बहुत ही जल्द। बाय द वे जल्दी स्पैम करो, who's your favorite there, VD हिकारू, who's going to win? Draw is not an option. लाइफ में कभी भी बराबर नहीं होता। ऐसा नहीं होता यार कि जंग के मैदान पे आओ, लड़ाई करना, पंचेस मारे, ये मुंह पे मुक्का, ये किसी का दांत टूटा, बाद में कहो प्रणाम भाई, चले अब कल करते, बाय बाय। ऐसे कभी नहीं होता भाई। सो who's your favorite there? Is it VD? Is it हिकारू? एक नाम दिखना चाहिए, ड्रॉ नहीं दिखना चाहिए चैट में। जल्दी से चैट स्पैम करो भाई। चेस्ट कॉम वाले भाई, चेस्ट 24 पे आओ भाई। एंड इट शुडंट बी हिकारू। और एक ही चैट पे आना चाहिए जो है चेस 24 इंडिया के चैनल, मतलब। और भाई एम गेम्स इन द चेस 24 चैट बहुत सही चीज बोल रहे कि वीडी कांट अफोर्ड टू गेट इन टाइम ट्रबल अगेंस्ट नाकामुरा। एंड मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इससे कि नाका को ना चांस ही मत दो, वो टाइम प्रेशर में कुछ मस्ती करती है। बिल्कुल सही कहा एक्चुअली, कि वो टाइम प्रेशर में हिकारू आई थिंक ही इज द मोस्ट डेंजरस प्लेयर इन द वर्ल्ड। मतलब जब भी टाइम प्रेशर आता है, द मोस्ट डेंजरस इजीली। एंड बहुत लोग चैट में लिख रहे हैं कि वीडी इज द फेवरेट, एक दो लोग हिकारू वाले भी हैं, बट एक कह रहे हैं कि ड्रॉ भी काफी है। ड्रॉ काफी तो होगा भाई, बट इमेजिन अगर जीत जाए भाई, दैट विल बी लाइक ब्रिलियंट। एंड फिलहाल के लिए हिकारू एक डीप थॉट में सोचते हुए कि क्या करें भाई। पूरा 2789 रेटिंग है यार भाई। वीडी जीत जाएगा तो टिक्कू भाई तू क्या करने वाला है चैट के लिए, बता दियो पहले। तू क्या करेगा चैट भाई? क्या कर रहे हैं हम, क्या कर सकते हैं ऐसा भाई जो वीडी का हिकारू को हराने को क्या ट्रम्प कर सकता है भाई ऐसा? भाई मेरे पास ना एक शर्ट है, आई डोंट नो इफ इट्स हियर, आई कैन प्रॉब्ली, आई थिंक इट्स हियर, रुको। अरे भाई तू फ्रेम से बाहर जा रहा है। हाँ, so I actually got this t-shirt made custom shirt when VD got like the number 1 ये, so it's like this, can you see? Oh number 1 Indian one, and then Vidit, ये मैंने चैट को प्रॉमिस किया था I made this shirt, but फिर VD number 2 अगले दिन चला गया, so I couldn't send it to him. So if VD defeats हिकारू, मैं चैट में एक बंदे को ये ऐसी कुछ शर्ट भेज सकता हूँ भाई, that can happen. Yes, that would be great chat.
That would also this other guy Ding Liren, I don't know who he is क्योंकि नाम Other मैंने guy. कभी नहीं सुना अपनी ये नाम मैंने कभी नहीं सुना अपनी लाइफ में, right? And he कह रहा है 10 रुपए की पेप्सी, which also seems like a very they both seem like very good choices यहाँ पे. भाई डिंग कह रहा है दिल्ली से हूं मैं. आई थिंक दैट्स प्रीटी क्लियर. उसमें कोई डाउट नहीं है मुझे. बहुत दिल्ली वाला नाम है actually, I would say. या और ये तो काफी आई थिंक फेमस स्लोगन की 10 रुपए की पेप्सी वीडी भाई, जो फिर अमेजिंग सारे अमेजिंग. क्रिकेट मैचेस में काफी सुना है मैंने ये वाला डायलॉग. बाय द वे H3 आ गया बोर्ड पे. हाँ ओके. प्रिवेंट्स नाइट G4. कोई नाइट पिन नहीं, कोई कुछ बिशप नहीं. G5 नहीं आएगा बोर्ड पे. हाँ बिशप G4 भी हाँ. उसने अवॉइड कर, दोनों ही अवॉइड कर दिया उसने बेसिकली. हाँ मे बी ना वो S6 बिशप खेल रहा G5 देगा ना, है. और ना ब्लैक को बिशप G4 खेलने देगा. ओ नाइट गोस टू E7 भाई. नाइट नाइट को किंग साइड पे लेते हुए. साहिल भाई ये कुछ नया है क्या? ये कुछ हल्का सा नया लग रहा है मेरे को. भाई मेरे लिए तो हर मूव नहीं है ना यार. जब प्रैक्टिस करनी नहीं है तो हर मूव नहीं होती है भाई. सो आई एम ऑलवेज सरप्राइज्ड. कई बार लोग E4 खेलते हैं, मैं कहता हूँ वाओ दैट्स क्रेजी. तो होता है भाई. बाय द वे एक बंदा कह रहा है टिक्कू की डांस वीडियो. हाँ भाई मैं डांस वीडियो यूट्यूब पे डाली थी. मेरी पहली 10 वीडियो में तब 1000 सब्स थे. वो कभी रिलीज नहीं होगी भाई. दैट्स बीन बैंड ऑन यूट्यूब. अरे यार I would actually pay money कितना दोगे भाई? to have that video hidden. Nice. But I will नजर pay मार. money to see that video. Just saying. कितना दोगे भाई? What's the max? कितना चाहिए? भेज दो भाई. 500 रुपए भेज दो यार. हम भी थोड़ा सा 2 एक्स्ट्रा बना के भेज दूंगा मैं डांस साथ में हिप हॉप करते हुए भाई. अरे वाह. और आई थिंक जस्ट एक नजर मार रहा था मैं, हमारे 2 यंग इंडियन बच्चे 17-18 साल वाले खेल रहे हैं. और उसमें दिख रहा है आई थिंक सहज का वन ऑफ द फेवरेट ओपनिंग्स है कैटलान वहां पे. नहीं, you're looking at the wrong Indian. That is Srinath. हाँ तू लंदन वाला है. मैं लंदन वाला हूँ. हम of course मैं लंदन. मैं भी लंदन वाला हूँ भाई. लंदन ओपी. भाई टिकू भाई, बट सहज लंदन खेल के जीतता भी है. वो एक हल्का सा भाई वो लंदन के पास रहता भी है तो उससे क्या होता है भाई? जीतना जरूरी नहीं है भाई. मेन चीज है कि भाई बस पसंद आना चाहिए यार. एक तरफा प्यार एक अलग चीज होती है राकेश भाई. आप नहीं समझोगे. आपकी शादी हो गई यार. आप नहीं समझोगे. एनीवे ट्रू अपने आप यंगस्टर्स का नाम लिया है तो भाई लेट्स गो टू दैट गेम. क्यों भाई है ना. एक बढ़िया सा कैटलन मुझे दिख रहा है. स्टार्टिंग मूव्स D4 फर्स्ट मूव बाय प्रग देयर. वी हैव D5 C4. ओके G3 टिपिकल. ओ नाइट C3 उतना ऑफन नहीं खेलते ना. नाइट C3 बाय द वे सॉरी आई थिंक मानिक 9702 इन द चैट वो बोलता है नकली मास्टर फॉर अ रीजन. मतलब भाई ठीक है यार. गाली खाने तो आते ही भाई खाएंगे. अब तो आदत सी है. मनिक भाई प्लीज ईमेल मी योर यूजर नेम. आई थिंक आपको 1 मंथ का डायमंड मेंबरशिप मेरे. ये क्या है गाली खाने के लिए मेंबरशिप मिल रहा है? ये क्या भाई? अलग ही लेवल पे है भाई. ठीक है कोई ना भाई खा लेंगे भाई. किसी का क्योंकि उसने चेस 24 चैनल चेस 24 इंडिया के चैट पे लिखा ना. अच्छा नाइस टेक्निकल हो रहे हैं. But actually बात वो ये this is like 20% of the thing and 80% is जो उसने कहा है, you know. अरे ईमेल आईडी rakesh@chess.com. तो सही में हो रहा है ये चीज. बट जस्ट चैट. सो बेसिकली ऐसे नहीं कि गाली लिख दो. हमारे टिक्कू भाई हमारे होस्ट है शो के. बट जस्ट इफ यू ऐड समथिंग फनी, इफ यू ऐड योर इनपुट्स, आपके कुछ थॉट्स, आपके आइडियाज शेयर कर दे रहे हमारे साथ. और टिक्कू भाई और सहज भाई ऐसे ही देते रहेंगे मेंबरशिप्स. ओके फिर ठीक है. सो बाय द वे वी हैव द प्रग अगेंस्ट गुकेश गेम. चैट दिख रहा होगा एंड क्लियरली एक कैटलान है. A3 एक एक्स्ट्रा पॉन ब्लैक के पास. बिशप पेयर वो इतना खींचने की कोशिश. ब्लैक ऑफ कोर्स नहीं देगा. बिशप वापस लेके जाएगा. And both players playing really fast. Gukesh थोड़ा सा extra time लेते हुए. Maybe he didn't expect the Catalan. Although it's hard to believe ना. बढ़िया. And so I think ये गेम काफी सॉलिड. फिलहाल गुकेश सोचते हुए चैट हम्पी वैशाली कैमरास ऑलरेडी एक्टिव है. सो एक बार उनकी गेम पे भी नजर मारते हैं जल्दी से. अगर चेस कॉम रिफ्रेश हो जाए. एंड वी आर बिशप 4
Is it what I'm seeing it is? नहीं Oh, नहीं, ये तो जुबा नहीं, ये तो कैरोकान है ना, ये कैरोकान है जो लंदन से भी आ सकती है। हाँ, बट नहीं, ये तो वही है कैरोकान ना, नहीं है। अपना लंदन का वेरिएशन ही है ना भाई, अच्छा अच्छा, ये तो लंदन का जुबाओ भाई। विंडो है ना, पर व्हाइट का हाँ E4 वही, कहाँ से चला गया? वो पता, वो कैसे, अच्छा वो अच्छा, एक्सचेंज हो ब्लैक गया ने ना। C5 खेला, अच्छा ब्लैक ने C5 खेला, वो लगा हाँ E4 से मारा है, बट लेकिन वो C5 से मारा, वो बात, हाँ, बट लेकिन दिस इज कैरोकान ना, हाँ, काइंड कैरोकान ऑफ, yeah. पूरा जुबाओ लंदन लंदन नहीं है, टाइप। पूरा नहीं है, बट हाँ मतलब ठीक है, आदर चलेगा चलेगा। नाइट एंड C3 दिस, पे नहीं होना Pseudo चाहिए वैसे, London. नाइट C3 पे नहीं हाँ होना चाहिए वैसे, ये गलत है। तो घुमा फिरा के लेंगे उसको यहाँ पे, एंड देन वी कैन प्ले सम 3, कोई ना, वापस मैं तो नाइट B1 भी खेलने को तैयार हूँ यार, आई हैव नो प्रॉब्लम्स एज लॉन्ग एज वी हाँ गेट दैट स्ट्रक्चर। सो क्लियरली यहाँ पे जोंगी बहुत फास्ट खेलते हुए, वैशाली इज द वन हु इज टेकिंग अ बिट ऑफ टाइम, एंड आई थिंक हम्पी का कैमरा था हमारे पास, या वी हैव हम्पीज कैमरा देयर, उनकी गेम पे भी एक नजर तो मारते हैं। हम भी का गेम And- देख लेते पहले। हाँ, एंड फिलहाल के लिए दोनों प्लेयर्स की अरे भाई 100%। अभी वैशाली का कैम, अरे भाई अरे एक भाई डिसाइड कर लो ना भाई। relax राकेश भाई, and now we have E4, E5, knight F3, knight C6, bishop B5, A6, bishop A4, typical opening, B5, bishop B7, and this is the current position. Sahaj bhai, who do you think will be more prepared in this opening, Humpy or Lagno? देखने से तो लग रहा है कि हम्पी बेटर प्रिपेयर्ड है, क्योंकि बिशप B7 नहीं चाल है, मतलब नहीं चाल एज इन थोड़ा, ये दिस इज प्रॉपर प्रिपरेशन, क्योंकि ये इसको कहते हैं जेड से वेरिएशन, पर लेकिन वो D6 के साथ आती है, तो हम्पी ने D6 डी एक पॉन को टच नहीं किया अभी तक, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो D5 प्रिपेयर करके बैठी है। मे बी सर डीपॉन ने कहा मुझे टच नहीं करना यार, सर मतलब उसका भी ओपिनियन है, हो सकता है मना कर दिया उसने कि आज मैं खेल हम्म, नहीं सकता भाई। हाँ। हाँ राकेश भाई। हाँ, राकेश भाई। सर हम्पी मैम ब्लैक है सिर्फ, बिफोर आप कुछ बोले। हाँ हाँ ब्लैक ही है, हाँ तभी तो फ्लिप किया ना भाई, डोंट हाँ, वरी भाई, वी हम्पी नो वी ब्लैक नो है वी ना। नो वी नो। हाँ नहीं, बट इसमें ऐसे उल्टा दिख रहा है, मतलब हम्पी जी वाइट लग रही है। अच्छा हाँ, आई फ्लिप्ड ओ हाँ, अच्छा आई अच्छा या अच्छा या अच्छा, समझ हाँ गया हाँ मैं, समझ हाँ, गया, माय बैड। राइट राइट। वो या आदत है ना भाई, हम्पी देश का ब्लैक है। सपोर्ट इतना है, अपने आप बोर्ड फ्लिप हो यस, जाता है भाई कई बार। करेक्ट करेक्ट, सपोर्ट तो पूरा है भाई, चैट आप भी सपोर्ट करिए हम्पी जी को। होपफुली एक, सहज भाई आपको क्या लगता है कि हमको कितने कंटेंडर्स मिलेंगे वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, ये दोनों टूर्नामेंट्स? मतलब कितने टू, कंटेंडर्स हो सकते हैं पॉसिबल, हम्पी तो हाँ मतलब हम्पी को आप टिक्कू कैसे भाई ने कल अलग ही एक स्लिप लॉजिक बता जिससे 4 इंडियन भी क्वालिफाई हो अर्जुन को भी डाल दो, मतलब उतना, नहीं नहीं, पर जो पिछले लेकिन बार ही हम्पी, हुआ डिंग और नेपो का, तो वो हिसाब से वो बोल रहे कि डिंग तो उदासी है, वो निकल हम्म, जाएगा, तो टिक्कू भाई ने ऐसे 2 इंडियंस को फिट कराने का एक स्कीम बताया, जो विच वाज अमेजिंग टू मी। अच्छा अच्छा, हम्म तो व्हाट्स मतलब मान लो द, कि डिंग को नहीं खेलना वर्ल्ड चैंपियनशिप, ठीक है। और वीडी और प्रग फर्स्ट सेकंड आ गए, तो उन दोनों का ही मैच होगा वैसे अरे वर्ल्ड हाँ, बात तो चैंपियनशिप सही के। है वैसे, एंड बाद बात में तो मान सही लो है। कि वेंजुन कहती है कि यार मैं भी बहुत बार चैंपियन बन गई, अगली बार हम्म। वो सॉरी यार, मैं कहा वो ऑरेंज शर्ट देख के मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ यार, अगली बार मतलब वो भी नहीं खेलेंगी, तो दैट मीन्स कि भाई ऑटो समझे नहीं राकेश भाई। सॉरी सॉरी, तो वो भी नहीं खेलती, नहीं, तो दैट मीन्स बेसिकली कि यार एट द एंड वी माइट हैव 4 इंडियंस प्लेइंग, हु नोस, दैट विल बी अमेजिंग। तो हम्म, चेन्नई में कर लेंगे वर्ल्ड चैंपियनशिप, किसी के घर पे आराम से, कोई चक्कर नहीं है। ये बहुत एपिक हो सकता है, बट ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं होगा वैसे, बट लेकिन ये पॉसिबल है, क्योंकि डिंग ने मना नहीं करना ना, डिंग कैसे मना करेगा, नहीं डिंग क्यों भाई, मना कुछ भी करेगा? पॉसिबल है यार, कुछ भी पॉसिबल है। नहीं भाई, हम्म, व्हेनेवर वी हैव द ओपन कैमरास डू लेट अस नो। फिलहाल के लिए लाग्नो हैज प्लेड A4, जहां तक मुझे याद है ये A4 मूव मतलब कारुआना जी बहुत प्रमोट करते थे E4 E5 में, मैंने कभी सीखा नहीं, बट देखते डर लगता है आजकल A4। अरे अरे, एवरीवन इन द चैट इज सेइंग कि विनित ने कुछ C6 खेला है, जो अपेरेंटली इज अ मिस्टेक, एंड एवरीवन सेइंग वीडी का खराब पोजीशन। ओह लेट्स भाई, लेट्स चेक इट आउट। चैट का गिरी भाई, सुनता है, चैट का सुनता है। हाँ गिरी भाई, आई एम स्विचिंग टू VD's गेम राइट नाउ, सो लेट मी यस, क्विकली गो टू VD's गेम। कैमरा अगर बाई चांस जब भी आए, लेट्स गो टू VD's गेम, बिकॉज बार काफी ऊपर जा चुका है यार। अरे वेट, भाई व्हाट, यार, अरे ये नहीं नहीं, ये क्लाउड प्रिपरेशन है, ये अरे क्लाउड की कौन सा प्रिपरेशन क्लाउड है। भाई, काहे का क्लाउड भाई, मैं इतना क्यों बता रहा हूँ बरसा रहा आपको, है? ये क्लाउड की प्रिपरेशन होगी 100%, ये हो ही नहीं सकता कि उसकी 0 पॉइंट ये क्लाउड क्या है भाई? क्लाउड बेसिकली जब पानी सी से जाता है ऊपर इवेपोरेट होके, तो वहां इकट्ठा होता है, तो उसमें फिर पानी नीचे गिरता है, तो उसमें जब नीली टाइम भाई आउट, नहाते टाइम आउट, टाइम आउट लिटरली राइट ना। एक्सपर्ट
एक्सपर्ट ग्रैंड मास्टर, आप बताइए कि चेस में क्लाउड का क्या क्या होता है? जो तो क्लाउड इंजन एक इस तरह का इंजन है जो मतलब आप चेस बेस या फिर क्या कहते हैं चेसिफाई या फिर आपकी खुद की मशीन भी हो सकती है, जो आप सर्वर्स रेंट करते हो किसी और से, और उस प्रोसेसर की पावर मतलब 10 गुना 20 गुना ज्यादा मतलब स्ट्रांग रहती है। तो अभी जो आप इंजन आपके ओके। पास देख रहे हो, वो मतलब वो थोड़ा वीक है, बहुत वीक है मतलब क्लाउड के कंपैरिजन में। तो ये जो प्रिपरेशन है, ये जो चाल आप देख रहे हो C6, ये इस कंप्यूटर के हिसाब से ये चाल खराब है, पर लेकिन क्लाउड के सामने जो बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस मतलब 1-2 मिनट के अंदर कर सकता है, वो इस इंजन को कम से कम आधा पौना घंटा लग सकता है। एंड तो चैट ऐसा पॉसिबल है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। एंड सॉरी टू कट यू सहज भाई, actually chesscom पे just to show you chat why सहज भाई is correct and this is prep, इस पोजीशन से 127 गेम्स खेले गए हैं, ठीक है। अरे 123 में इट इज बिशप B6 और 4 में इट इज ED4। सो चेसकॉम पे एटलीस्ट आज तक ये मूव कभी नहीं खेली गई, दैट्स नंबर 1। एंड सेकंड, वीडी का टाइम देखो, दैट टेल्स यू एवरी, एंड द कैमरास, लुक एट वीडीज बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ छोड़ो भाई, ऐसे लग रहा है कि मतलब होता नहीं है जैसे वो माइक ड्रॉप मोमेंट नहीं आता भाई, ऐसे वो कुछ पंच समरे ना शो करता है भाई, माइक ड्रॉप एंड फाइनली ही सिट्स लाइक दिस भाई, टेन है। तो ऐसी फीलिंग आ रही है भाई, कुर्सियां घूम रही है, हिकारू के पोस्ट चोरी कर रहा है वो। तो ये 100% ये क्लाउड की प्रिपरेशन है, 100%। एंड नाकामुरा ने खेला बिशप पीछे मेरे ख्याल से, बिशप सेफ चॉइस ना, सेफ चॉइस। बट आई थिंक एक क्वेश्चन था डीजे स्टूडियोज का इन द चैट, और मेरा भी सिमिलर क्वेश्चन है सहज भाई से कि व्हाट हैपेंस अगर मैं DC5 मारता तो वहां पे DC5 आई थिंक, मैं CB5 CD6 आई थिंक, उसके बाद नाइट G6 या C6, आई एम नॉट श्योर, प्रोबेबली G6 यार, G6 लुक्स गुड एंड D6 का पॉन थोड़ा सा एक्सपोज्ड है। आई मीन, वो आपको मिल ही जाएगा, बहुत ज्यादा आ गया, तो जैसे ही क्वीन आगे आएगी और रुक पीछे आएगा तो वो पॉन मतलब सूनर और लेटर इट विल गेट टेकन 100%। एंड आल्सो पता क्या है, और ये जो B5 का डबल पॉन है, आपको टेंशन नहीं है उसका ब्लैक के लिए? नहीं नहीं नहीं, ये क्योंकि डबल पॉन्स तभी खराब रहते हैं जब वो आइसोलेटेड होते हैं। तो डबल पॉन्स जब भी कनेक्टेड रहते हैं तो दे आर यूजुअली अ वेरी कंसिडर्ड टू बी अ बेटर थिंग, क्योंकि ये काफी मतलब टेक्निकल चीज है। पर लेकिन अगर ए का पॉन ना होता तो शायद कह सकते थे कि हाँ बी बी मतलब B7 B5 थोड़े से खराब के पॉन्स है, बट लेकिन भाई ये सब छोड़ो, तो दे कैन बी वेरी एज गुड। अ ऑफिशियल डरपोक मैं जब देखता हूँ ना कि ये सब लाइन आती है, आई एम लाइक यार ये दिस इज द क्रिटिकल लाइन जहां पे लोग सब कुछ फोर्स्ड है। एंड इफ माय ओपोनेंट हैज प्लेड अ नॉवेल्टी जो आज तक कभी नहीं खेली गई, इफ आई हैव टू चॉइसेस, लेट मी प्ले द नॉर्मल चॉइस जहां पे कुछ फोर्स नहीं है। लाइक बिशप D3 काफी लॉजिकल चॉइस, सेंटर मेरे हाथ में है, सो क्लियरली देयर इज नो फोर्सिंग लाइन हियर, बिल्कुल कामली खेलता हूं। हिकारू गोइंग फॉर द प्रैक्टिकल चॉइस हियर, स्पेशली बिकॉज ऑलरेडी 15 मिनट आगे है वीडी राइट नाउ। एंड जब वीडी तुम्हारे सामने ऐसे बैठा हो तो you are like, यार let me just play the safe choice. do not doubt Hikaru's judgment there. You are absolutely correct Sahaj bhai. And फिलहाल के लिए bishop has dropped to B6 and now the bar is back to equality. So VD का gamble paid off. 100%, 100। ये मतलब बहुत नॉर्मल सी पोजीशन लग रही है। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं से ट्रांसपोज हुई है, मतलब किसी और ओपनिंग से आई है, मतलब ये पोजीशन। बट लेकिन हाँ, तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छी प्रिपरेशन थी। मे बी इट्स अ गैम्बल। ऐसा हो सकता है कि अगर हिकारू ने इसको मतलब क्लाउड के साथ पहले देखा होता तो मे बी हिकारू कुड हैव स्पॉटेड कि हाँ कहीं ना कहीं पे एक एडवांटेज है, पर ओवर द बोर्ड आप क्लाउड को कैसे रिफ्यूट करोगे? मतलब भाई गर्मी स्टार्ट कर दो ना, मेल्ट हो जाएगा। मतलब स्टॉकफिश की रेटिंग आज के टाइम पे इट्स अराउंड 3700, राइट? 3700-3800। आप इमेजिन द डिफरेंस। हाँ, ट्रू, आई एग्री। Or I think M Games is asking another good question. Is Hikaru out of prep, Sahaj bhai? I think out of prep yes, पर लेकिन ऐसी पोजीशन में आउट ऑफ डेप्थ नहीं होगा वो, क्योंकि ये पोजीशन उसने मतलब हजारों बार देखी होगी। आई मीन ये इस पोजीशन में एटलीस्ट उसके 1000 गेम हो सकते हैं, मतलब chess.com अलोन। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि इस तरह की पोजीशन बहुत खेली होंगी उन्होंने। हाँ, maybe the pawn is on A6 या pawn is on A3, knight D2, but structure similar है। बट लेकिन हाँ हल्का सा डिफरेंस जरूर, बट ये कि आउट ऑफ डेप्थ नहीं है, लेकिन आउट ऑफ प्रिपरेशन जरूर है, बिल्कुल।
Man, this is Or going to be hello, epic. hello, hello. Anish Naik in the chat joining us. Hello, welcome to everyone in the chat. Mrinal bhai also another mod. तुमको mod add कर देता हूँ ताकि they can keep the chat clean and help us with some good questions actually. And टिकू भाई कहाँ ले जाएंगे हमें इसके बाद बताइए. So इसके बाद भाई I think clearly Hikaru game is going to be sharp. But एक बार Hikaru by the way आराम से एक second yes he's sipping coffee है ना मस्त तरीके से. भाई we should have a compilation of just Hikaru expressions. I think बस यही रखते हैं यार. देखो कॉफी में क्या बाल कहाँ से आया भाई. क्या डाला होगा ये बाल. क्या मेरे ओपोनेंट की साजिश है. बीड़ी तूने डाला. नहीं यार मैं क्यों डालूंगा यार. ऐसा थोड़ी होता है. नहीं भाई तूने ही डाला है. चल पी लेता हूं यार कोई ना. Anyways, going back. I think let's go to the game of Pragg and Gukesh there. एक नजर उस गेम पे मारना बहुत जरूरी. नीरी भाई, if we had the cams, let's go to that game. And there you can see Gukesh versus Pragg. Yeah. So पहली चीज ना मैं ना पहली चीज ओके अच्छा मूव कर रहे हैं. we'll come back to this. ठीक है. So by the way, we saw it till here. A3 हमने last देखा था. As said, Bishop dropped back and E4. White के पास center. Sahaj, what do you make of this position? Especially देखते हुए कि Gukesh already 20 मिनट पीछे हैं. White ने एक pawn sacrifice किया in this position C4 पे. पर उसके you know as compensation you have the center. You have better pieces. आपके मतलब आप देखो आपके पीसेस कितने अच्छे लग रहे हैं अभी. नाइट F3 पे, नाइट C3 पे, they're looking at the center. बिशप फियांशेटो बिशप जनरली हम मानते हैं कि बहुत अच्छा बिशप होता है because it controls the longest diagonal in chess basically theoretically speaking. और मतलब आपके पास सेंटर भी है तो मतलब कॉम्पनसेशन बहुत अच्छा है. पर लेकिन पॉन तो पॉन होता है. तो इट इज लाइक कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है गेस. अरे वाह भाई क्या इस लाइव समअप कर दिया भाई विश्वास भाई ने. तो ओपनिंग छोड़ो भाई, चेस छोड़ो भाई, लाइव ही समअप कर दी. तो आई मीन डेफिनेटली प्रैग की कुछ अच्छी प्रिपरेशन है फॉर श्योर. एंड गुकेश सीम्स टू बी आउट ऑफ प्रेप अगेन, नॉट आउट ऑफ डेप्थ. ये पोजीशन भी उसने बहुत बार देखी होगी. And Pragg भी बोर्ड पे नहीं है. So and by the way A6 played by Gukesh. कह रहे हैं भाई ये प्यादा मेरे साथ ही रहेगा भाई पूरी गेम में. But always risky है भाई. ये बिशप कह रहा है भाई खोलो सब कुछ खोल दो. So you always have to be careful with this. A6 बढ़िया मूव है क्योंकि इसका आइडिया भी होता है ना B5 एंड पुश द पॉन. बिशप को B7 पे डालो क्योंकि वो फियांशेटो बिशप को भी वो फिर चैलेंज करता है वो बिशप व्हाइट के बिशप जो है. तो इट इज अ नाइस वेरी थीमेटिक मूव. Sahaj, have you played against Hikaru? I think I haven't. I don't think I have. वो याद रहेगा मुझे 100%. ये प्रग या गुकेश में से किसी का खेला है आपने? प्रग ने मेरे को हराया हुआ है. प्रग ने मेरे को बहुत बार हराया हुआ है एक्चुअली. प्रग ने मेरे को पहली बार हराया था 2017 बैंगलोर में. मेरे को याद है कि प्रग की रेटिंग कुछ 1800-1900 थी उस टाइम पे. एंड मेरी थी 2550 उस टाइम. आई वाज वेरी हैप्पी. एंड प्रैग ने मेरे को ब्लैक पीसेस से कुछ तो मतलब लिटरली मतलब ह्यूमिलिएट किया था वहां पे. एंड इट वाज ऐसे क्या मैंने तुम्हारी 1800 तो नहीं है रेटिंग. ये कैसे पॉसिबल है. तभी गुस्सा था, आज गर्व होगा सहज. अरे वाह. By the way, sorry to interrupt, but of course वो Pragg का नाम आया तो flaunt करना पड़ेगा. As chat has said, I have defeated Pragg. Thank you chat for reminding everyone in the world कि I have defeated Pragg, and I will wear it on my sleeves for the rest of my life. सही में? हाँ भाई Pragg को ऐसे थोड़ी है. मेरे को नहीं लगता. पूछो चैट से पूछो भाई. चैट से पूछो भाई. फिक्स था क्या गेम? क्या है यार. भाई तू तो नकली मास्टर है. तू प्रग को कैसे हरा सकता है भाई. वही ना, एक बार जीत जाओ लाइफ में किसी बड़े प्लेयर से. बचपन में ही उनसे खेल लो जब उनकी रेटिंग 2021 उस टाइम पे हरा दो. एंड देन यू जस्ट रिलैक्स फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ क्योंकि आपने हरा दिया फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन को. मैंने वो पोटेंशियल देखा भाई. और पता है टूर्नामेंट क्या था उस टाइम पे? प्रग वाज 1 out of 5, I was 0 out of 5. भाई दैट वाज द टूर्नामेंट. सो दोनों घटिया फॉर्म में थे. क्रेजी टूर्नामेंट था भाई. एनीवेज ये स्टोरी मेरे को मतलब जितना साहिल भाई बोल रहा है ना इसके बारे में उतना ज्यादा अनबिलीवेबल लग रहा है मुझे. इट्स गेटिंग लेस एंड लेस बिलीवेबल. देख फाबी भी रुका था. फाबी रुका, सुना स्टोरी, बोला हट ये तो झूठ है, निकल गया. देख so this was 2000 and I think 15 something. Pragg was 1900, I was 1900, and
crazy Which event था भाई. tournament? Anyways, some above 1900 in I think Bhubaneswar. Crazy tournament था भाई. And you know, मतलब I'm just proud कि I played that guy. Yeah, it's a proud feeling. कि मतलब I've played this and I've also played Arjun, so it's amazing भाई. And these guys were always like this. मतलब वो तो I think Sahaj bhai knows better than probably and Rakesh bhai knows अरे better than me, yeah? 100%. मतलब मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी ना, क्योंकि क्लासिकल रेटिंग प्रग की थी 2500 उस टाइम पे, बट लेकिन ब्लिट्स रेटिंग मतलब कुछ इट वाज लाइक 1800-1900 समथिंग लाइक दैट. एंड ये क्या है, ऐसे थोड़ी ना होता है. और फिर उसके बाद जस्ट नेक्स्ट राउंड में गेस मुझे कौन लगा नेक्स्ट राउंड में? निहाल. निहाल, लिटरली निहाल. मैंने कहा यार Sahaj सारी is the rating अपनी future वहाँ of पे Indian donate chess. करके So आया था. chat, if you want to become big in chess, defeat Sahaj Grover. I think that's the motto there. Yeah. By the way, This is the threshold. How sad is that? by the way, Pragg clearly thinking, यार कितना मस्त पोज में, ऐसे बिग बॉस पोज में सोच रहा है कि क्या प्रिपरेशन थी, क्या मेरी टीम ने मुझे बताया था. नहीं, Pragg is not thinking भाई. Pragg ने चाल खेल. सोच रहा है ना, थोड़ा कैमरा थोड़ा. अच्छा, Pragg ने क्या था? He's played. He's waiting for Gukesh. Yeah, he's just waiting for Yeah, Gukesh. yeah. Bishop E3. And almost half an hour का time difference अभी भाई. और इंक्रीमेंट नहीं है, ये तो बहुत ही बड़ा एक ट्विस्ट ऐड कर दिया फीडे ने. Agree. Chat, by the way. Yeah, निजम भाई. Awesome. बढ़िया. So chat, फिलहाल के लिए तुम्हारे लिए एक चैलेंज है भाई. We are at 83 likes, 250 watching है. Let's get to 150 likes जल्दी से भाई. जल्दी स्ट्रीम लाइक कर दो भाई. Chess 24 वाले, let's go. Yeah, only Chess 24 likes count. That's it. Okay, Gukesh still not at the board. Finally आ रहे हैं. And he finally writes down the move. भाई इंडियन फ्लैग अलग ही लगते हैं यार, लेकिन यार वो ऐसे अच्छा लगता है देख के ना, ऐसे 2-3 इंडियन फ्लैग्स. इट फील्स रियली नाइस. भाई ये क्या था? सो Pragg waited for Gukesh to join and they only then got up. भाई रिस्पेक्ट. तो Pragg अभी है बोर्ड पे या फिर? अच्छा नहीं, Pragg is walking around. Pragg आई थिंक थोड़ा पानी वानी एक ब्रेक, थोड़ा कुछ चाय नाश्ता के लिए गया हो. ओके, टिक्कू तुम ओलंपियाड नहीं आए, राकेश के साथ तुम्हें भी मिलता. अरे मिलेंगे साहिल भाई. साहिल बत्रा जी हैं हमारे आमिर खान इनके बिगेस्ट फैन है भाई. ओह यस. वो चेस बोर्ड लेके गांव से ढूंढ के लाए थे चेस बोर्ड. हेलो साहिल भाई, बढ़िया भाई. ये तो है कि चेस में ना सपोर्ट तो बहुत सही होता है. मतलब कम्युनिटी बहुत बढ़िया होती है चेस. और रात के 1 बजे भी इतने लोग आके जुड़ रहे, सपोर्ट दे रहे, ये बहुत ही बढ़िया फीलिंग है. या साउंड क्वालिटी इज रियली लो. रुको भाई, मैं अपनी आपको आवाज मेरी ढंग से सुननी है तो भाई अब मैंने आवाज बढ़ा दी है भाई. आई थिंक आवाज ज्यादा बढ़ गई होगी. नाउ यू कैन हियर मी बेटर. यार वीडी का दिखाओगे? वीडी का देख रहे हैं? लेट्स गो भाई, बिल्कुल चलते हैं. हम रेडी है भाई, जहां बोलो वहां हम चल देंगे. लेट्स गो टू वीडी हिकारू. देखते हैं भाई क्या हुआ, कुछ हुआ है कि नहीं. वीडी घूर रहा है उसे देखो भाई. वीडी आज ना, डू यू थिंक like VD consciously will try to like ऐसे scare, intimidate हिकारू थोड़ा बहुत? Because कहीं ना वो उल्टा हिकारू के सामने बैठना ही like it's like you feel like अरे यार I'm already on the downside of things. तो कहीं ना कहीं consciously will he try to intimidate हिकारू here? What do you feel? यार पता बिल्कुल भी नहीं. बिल्कुल भाई आप बाप को नहीं सिखाते. ये क्या भाई? हिकारू को थोड़े ना इंटिमिडेट कर सकते हो यार. वही तो. वो तो मतलब final boss. That's this. Yeah, if I saw this in front of me, I'll be like, भाई तू किंग ही रख ले मेरा यार, नहीं खेलना मुझे. By the way, fun fact about Hikaru Nakamura chat. ऐसी एक क्या चीज है जो सिर्फ नाकामुरा के पास है सारे 8 ओपन टूर्नामेंट के प्लेयर्स में? 1 million subs. भाई कंटेंट ही नहीं, मतलब लाइफ के तौर पे $50 million. मल्टीपल टाइटल ट्यूसडे चैंपियनशिप. अबे चेस अचीवमेंट नहीं है, पर्सनल लाइफ. लेट्स से $50 million. अबे पैसा नहीं होता है रे. अबे तो बचा क्या पैसा? चेस सबको ले लिया यार. ओके. एंड इरानियन वाइफ. इरानियन नहीं रे. आई थिंक ही इज द ओनली पर्सन हु इज मैरिड. So I was close, right? So I was close. Okay.
ये एंगल मैंने सोचा नहीं। स्पेसिफिक हो गए थोड़ा ज्यादा स्पेसिफिक हो गया। मतलब और बाकी तो क्या ही गलती है, बाकी तो बेचारे 3-4 लोग तो 18 के भी नहीं है, तो उनकी कैसी शादी होगी? राइट उन पे फेयर नहीं है भाई ऐसे। नहीं, सिर्फ गुकेश नहीं है ना 18 का, बाकी बाकी सब है ना। हाँ सिर्फ गुकेश नहीं। हाँ बट जस्ट स्पीक्स वॉल्यूम की हिकारू है 36 इयर्स का ओल्डेस्ट प्लेयर, बट काफी मार्जिन से ओल्डेस्ट है बाकी लोगों से। Hikaru also got married like it was 4-5 months ago ना, अभी हुआ है। Yes. Yeah. एंड बाय द वे टाइम डिफरेंस देखो चैट, 30 मिनट की तरफ बढ़ते हुए 30 मिनट्स। पता है एक बार मैं कोई देख रहा था स्ट्रीम, एक बार मुझे किसी कमेंटेटर ने कहा था, मैं बहुत पहले व्हेन आई वाज मच यंगर 55 इयर्स अगो, उन्होंने कहा था कि भैया मतलब 30 मिनट एक आधे पौन के बराबर है। इज दिस ट्रू सहज भाई? 30 मिनट एक आधे पौन, आई थिंक ज्यादा ना, तो यहाँ पे ऑलरेडी हिकारू थोड़ा प्रेशर तो फील कर रहे होंगे नहीं? मतलब मेरे भी कोच ने मेरे को एक बात बहुत बहुत अच्छे से समझाई थी कि योर क्लॉक इज जस्ट एन एक्स्ट्रा पीस। उसको उसी तरह भाई राकेश भाई को क्या हो गया भाई? भाई मतलब सॉरी नो डिसरिस्पेक्ट टू सहज भाई, आप बराबर ही बोल रहे थे, बट एम गेम्स इन द चैट, आप हमको आपका यूजर नेम प्लीज बता दो चेस.com का, आपको मिलेगा डायमंड मेंबरशिप। क्योंकि एम गेम्स ने बहुत ही सही पॉइंट आउट करा कि हिकारू ट्राइड टू यूज हिज माउस और मैं पीछे गया वीडियो में, और उसने वो ही किया। तो साहिल हमारे जो एडिटर है उसको कंटेंट मिल गया भाई, कल का साहिल भाई राइट नाउ एंड नॉट मी, हमारे एडिटर का नाम भी साहिल है, तो ही इज राइट नाउ लिकिंग हिज लिप्स। वो बंदा उसको सो रहा होगा अभी, उसको सपना आया हुआ, क्या हो गया भाई, कुछ तो हुआ है भाई, कुछ तो हुआ है, वो नींद से जागे होगा भाई। हिकारू भाई थैंक यू फॉर द कंटेंट यार, लव यू भाई। प्लीज 4-5 मिनट माउस सब कुछ जो आपके आसपास है सब पे हाथ डाल दो भाई, मजे आ जाएंगे। भाई मतलब पहली बार ना मैंने ये वीडियोस देखे हैं बहुत बार, बट पहली बार लाइव हो रहा है, तो इसके लिए मैं थोड़ा भटक गया था, तो क्षमा चाहूंगा चैट इसके लिए। ओके हिकारू अब क्या सोच रहा है हिकारू? बेबी इतना क्या सोच रहा है? मारने के नहीं, पॉन मारने के नहीं, वो सोच रहा है डी टेक c5 नाइट टेक c5, ये खेलना है कि नहीं? ओह अच्छा, गॉट इट। ये थोड़ा मतलब थोड़ा डायनामिक हो जाएगा ना यहाँ पे, मतलब कुछ तो प्रिपरेशन। Oh, you will not believe the move here. You will not believe the move here. Chat, try to take a guess. Try to take a guess. This move is unbelievable. What? There is no way this is possible. भाई मैं चेस छोड़ रहा हूँ भाई, मैं चला भाई, ये काहे क्यों बुलाते हो मुझे कमेंट्री के लिए? मैं नहीं कर सकता। गैस करो भाई चैट, गैस द मूव, दिस इज इनसेन। अगर ये वीडी की प्रेप है ना भाई, वीडी के सेकंड स्क्वायर मतलब भाई चरण कहाँ है आपके भाई? दिस इज क्रेजी चैट। ये बहुत टेक अ गेस, टेक अ गेस ऑन द बेस्ट मूव हियर। ओवर रिएक्शन नहीं है भाई, आई प्रॉमिस यू। आई नेवर ओवर रिएक्शन नहीं है एक्चुअली, ओवर रिएक्शन नहीं है, इट्स एक्चुअली भाई क्या बिशप F2 मारोगे? The move, chat, is चेयर संभालो, गिरना नहीं बेड से। राकेश भाई wrong bishop. It is bishop takes H3. I mean, what does this mean? What is this? तो यार रुको मैं अगली मूव पहुंच लूं अपने यार, अगली मूव भी दिखाओ ना। वाओ भाई समझ आएगी तो दिखाऊंगा ना यार भाई, अगली मूव दिखाओ यार, अगली मूव और भी कूल है इससे। हाँ चैट रुको आगे। हाँ सो आप कहोगे यार फ्री बिशप, हाँ बिल्कुल अगली मूव तो मतलब हाँ नहीं भाई क्या कह रहे हो? GH3 हाँ। अब क्वीन आपको कहोगे यार फ्री बिशप, ये क्या है टिक्कू भाई फ्री बिशप? अब रानी कहती है कि भाई ये होती है असली चाल, क्वीन टू B8। भाई क्या ही मूव एंड द आइडिया इज, इमेजिन करो आप बोलो नाइट C4, अरे फ्री का नाइट या नाइट F3 भाई कुछ भी खेल सकते हैं। रानी कहती है हा मतलब लड़की की आवाज में, और आएगी क्वीन G3 चेक एंड VD इज विनिंग, ही इज विनिंग दिस गेम। किंग H1, क्वीन H3, अब नाइट H2 मान लो खेलते हो, रूक D8 एंड व्हाइट इज लॉस्ट हियर, व्हाइट इज लॉस्ट।
सो अब डिटेल में नहीं जाएंगे कितना, लेट्स गो बैक. तो व्हाट इज द मूव टू सेव द पूरी तो पॉइंट है साहिल भाई, बहुत ओनली मूव इज बिशप f4, लंदन वाला बिशप f4. एंड इसलिए क्वीन को b8 पे होना जरूरी है, क्वीन हाँ, c7 पे नहीं हो सकती. हाँ, that's an important point. इसलिए क्वीन ऐसा क्यों है साहब, बताओ भाई, व्हाट इज द मूव नाउ, ऐसा क्यों? बिकॉज अब बिशप को c7 पे रख सकते हैं. नाउ इट्स अ बैटरी, इसको एलेफेंट्स गन कहते हैं. मतलब अरे माँ कसम भाई साहब. भाई राकेश भाई, मैं डर गया था एक सेकंड के लिए यार, मैं एक सेकंड के लिए डर गया था भाई, क्या बोलने वाले भाई. ये थोड़ा बहुत ही हाई लेवल था. और अगर ये होगा गेम में, तो आई थिंक सूर्य शेखर गांगुली एंड डैनियल वोकाटोरो जो विदित की टीम में, दे डिजर्व अ रेज. भाई क्या ही था ये भाई, दिस इज इनसेन, व्हाट प्रिपरेशन. एंड चैट, हिकारू को ये ओवर द बोर्ड निकालना है. He has to find this over the board. भाई this is like crazy. He will तो आधे घंटे से सोच रहा है, इसीलिए तो क्योंकि वो पता होगा कि अगर इतनी जल्दी विदित खेल रहा है, तो मतलब कुछ तो तैयारी होगी, पर वो दिख नहीं रही होगी अभी. और वो दिख नहीं रही होगी, इसलिए इतना डीप थॉट में. That makes sense. अब नाउ दैट वी नो द मूव्स, अब वीडी का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा नाउ इट फील्स मोर वारंटेड कि भाई तू देखना, तू खेलना, मारना पॉन. इज लाइक भाई तू मारना. इस मोमेंट में ना, मतलब पॉन को एडजस्ट करना चाहिए, मतलब E5 वाले पॉन को जस्ट बोर्ड पे एडजस्ट. हाँ हाँ. सो चैट में एक चीज करते हैं, हमने एक नया फीचर ऐड किया है, वुड लव टू टेस्ट इट. ठीक है, सो चैट यहाँ पे ना एक सिंपल टेस्ट करते हैं. ठीक है, मान लो कि नॉर्मल गेम है, हिकारू को प्यादा नहीं चाहिए. व्हाट इज अ डेवलपिंग मूव यू कुड प्ले हियर? व्हाट इज अ लॉजिकल ह्यूमन मूव, इंसानी मूव जो आप ब्लिट्स में खेलते? एक तो D5 है, उसके अलावा कोई चाल है क्या जो आप लिख सकते हो? लेट्स टेस्ट दिस फीचर आउट चैट, लेट्स गो. I will start. I think I want to play D into E5 भाई. Simple है भाई. अच्छा, मैं तो खेलना है. मैं भी लिखता हूँ, मैं भी लिखूंगा. हाँ, so I would play Rook E1. काफी लॉजिकल चाल लग रही है मुझे, नहीं? पता नहीं, मेरे हाथ ना यहाँ पे सिर्फ बिशप E3 पे जाएंगे, सिंपल, क्योंकि वो बहुत मतलब सेफ साउंड सा लग रहा है. हाँ निधि भाई, let's test it out. ओ ये क्या था भाई, गोल सा है. अरे ये मूव्स दिख रही है क्या उसमें? लेकिन कैन यू सी द मूव्स? वी कैन सी एट द बॉटम. दिस इज सो कूल. अच्छा, वी कैन सी इट एट द बॉटम. अच्छा, we can make that bigger, it will look much better. But it's nice. पर लेकिन ये knight D2 bishop E3 इनके सेम कलर है ना, या नहीं? हाँ, ये थोड़ा स्कैम हो रहा है. स्कैम होगा हल्का सा. हाँ, this can be made much better, but this is nice. I like it. Bishop G5 is the main choice. कितना मतलब कितने प्रतिशत चैट एक मूव को चूज कर रहे हैं. So that is really nice. Nice. Nice Nidhi bhai, thanks a lot. That was a good test. We'll test it out later in the stream. Choice of colors, yeah, that can be improved. We'll surely work on it now. Choice of colors is bad. Maybe our choice of mods is bad. निकाल देते हैं इसको. नहीं भाई, नहीं, हमारे मॉड्स असम है भाई, हमारे मॉड्स बहुत ही अच्छे आते हैं. दोस्त है मृणल भाई, हमारे दोस्त है. टाटा स्टील के इवेंट में हमेशा हमको हेल्प करते हैं. सो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर. बहुत ही मजा आ रहा है. तो क्या लगता है आपको सहज भाई, क्या हिकारू जाएंगे वो डेंजरस लाइन में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. मेरे को वो नहीं भी दिखेगा तो भी नहीं, मेरे को लगता है वो फिर भी नहीं जाएगा. मतलब हिकारू फट्टू है आपके हिसाब से? डरपोक है? क्या बोल दिया भाई? मतलब नहीं, मैं सिर्फ मेरा वर्स्ट वर्जन ऑफ बियर बाइसेप्स ट्राई कर रहा था कि पॉडकास्ट थोड़ा हैवी कर ले. if we think about this, right, अगर आपके सामने क्लाउड प्रिपरेशन है 2750. भाई साल में थोड़ी आवाज बढ़ा दो अपनी भाई. आवाज बढ़ा दो चैट के. हाँ मेरी आवाज कैसे बढ़ेगी? भाई कंट्रोल चल रहा है चैट.
It was so out of the blue. That was the last thing I expected. मारा उसने, मारा D5 मारा, बोल रहा हूँ मैं भाई. Oh, did he take it? मारा उसने. मतलब Exactly. He has taken it, chat. He has taken it. अरे बाप रे, अब आएगा मजा. Oh, he has taken it. He has taken it. 95 on the board. Bishop H3. Come on, VD. Come on, VD. Come on, VD. And question to you, chat. Yes or no? Has Hikaru seen Bishop H3? Because honestly, it is possible he has missed it. I don't think so. He has seen this. Yes. Maar, VD, maar. Oh, yes. Come on. Oh, yes. Bishop H3 on the board. अरे एक सेकंड में मार दिया exclamation move. अरे बाप रे भाई. Mic drop moment. Mouse drop. Welcome Nil Chess. अरे crazy Bishop H3 on the board. भाई Hikaru looking at it. ये क्या हो गया भाई? Full screen please. Please full screen भाई. Hikaru का expression is so golden here. Oh, he has not seen it. He has not seen it. मैं बोल रहा हूँ तो देखा ही नहीं होगा. अरे वीडी कितना काम बेटा. Hikaru भी लाइक यार मैं कैसे कंफ्यूज हो गया. Oh, that is epic. पक्का नहीं देखा उसे. पक्का नहीं देखा. बहुत देखा चैट. मैंने उकसाया Hikaru को सिर्फ ये बोल के. पहले बोलना चाहिए ना. अगर आप चेसकॉम इंडिया पे हो, पिंड लिंक है, जॉइन चेस 24 इंडिया. आग लग रही है भाई. हिकारू के एक्सप्रेशन दिख रहे हैं हमें. He is totally confused. He is not able to understand. ये क्या खेल दिया वेडी ने. You are really missing out, chat. Oh, Pragg पीछे देख रहा है. क्या हुआ? Pragg is like भाई ये तो आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है. ये कहाँ से आ गया भाई? What is this? का मुंह खुला हुआ है भाई. ये क्या हो रहा है? क्या ही चल रहा है भाई साहब. यार also एक और चीज हमें नोट करनी चाहिए. ठीक है कि विदित के पहले 2 राउंड्स में दोनों ब्लैक थे. ठीक है. हाँ. Yes. और पहले गेम में उसने खेला बिशप G4. हाँ. जिसमें उसने बिशप सैक्रिफाइस किया था. और दूसरे गेम में बिशप H3. करेक्ट. अगले बिशप I2. मतलब ये सिमिलैरिटीज हैं दोनों में. बिशप सैक्रिफाइस और दोनों में बोथ वर अमेजिंग मूव्स. हाँ. मतलब भाई सूर्यशेखर गांगुली को तो पेमेंट पूरी मिलेगी भाई जो भी हो. वेल डिजर्व्ड भाई. वेल. नहीं भाई ये बहुत मुश्किल है ये जो लाइंस या ये ढूंढना जो सहज में बोल रहे थे क्लाउड इंजन्स के साथ. एंड यू नो व्हाट, वेरी हैप्पी. मुश्किल तो है. वेरी मुश्किल तो हैप्पी. बिल्कुल है. पर सामने वाले को फंसाना, हिकारू को फंसाना इसमें मतलब इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. इट्स इम्पॉसिबल. The guy who has played so many games of chesscom every day, it's impossible. Nepo आ गया. Oh, Nepo भी confused है. And chat, just to let you know, this is important. The only move for white is GH3. He cannot avoid this now. The only move. मारना ही पड़ेगा और everything else, he's clearly worse. So he has to take the bishop. तो अब ये variation forced है. GH3 is forced. Then Queen B8 only move for VD. Bishop F4 only move for Hikaru. Bishop C7 only move for Vidit. And then Bishop G3 इनको खेलना पड़ेगा to be stable. And the game is roughly balanced. Maybe white is tiny bit better also. But VD रट के आया भाई घर से. Hikaru को over the board निकालना है. Look at the time situation already. तो क्या ही रहेगा. Over the board तो possible ही नहीं है. 40 मिनट पीछे. Exactly. 11 मूव के बाद अगर हिकारू नाकामुरा जैसा प्लेयर 40 मिनट पीछे, you would take that any day long. हाँ. Good point. Kramnik is watching. अरे भाई चैट का अलग ही चल रहा है. अरे भाई हिंदी नहीं आती Kramnik सर को. I don't think so. He understands हिंदी भाई. शालिनी जी बोल रहे राकेश भाई आप और बोलो हिकारू हार जाएगा. भाई कुछ तो अभी वीडी भाई ने आई थिंक फर्स्ट हाफ तो बहुत सही गया है. बहुत सही. So and you know what I noticed, and maybe Sahaj bhai, Rakesh bhai, your opinion I would love to take. Oh, he's moving something else. He's not taking the bishop. He is not taking the bishop. क्या? He is not taking the bishop. I think. Also like कहीं पे हाथ मारना और उसके बाद वापस अपना हाथ ऊपर लेना. That's a sign of कि आप sure नहीं. Nervousness. Yeah. आप sure नहीं हो. हाँ. And moving your knight is a blunder, chat. Moving your knight is a blunder. So if knight F3 chat by chance, bishop E6 and black is close to winning. Black is close to winning this. It is so bad apparently because black is fully developed. White is not developed at all. उसका हाथ जा रहा है E5 के घोड़े पे ऐसे. Oh come on! Oh he moves the knight. He moves the knight.
Oh, that's a mistake. 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 VD can win this. Bishop G4 chat. Only move for VD, and VD will have a huge edge now. Bishop G4. Only move. I hope VD ने prepare किया है ये. I hope this is preparation. I don't think you'll miss this. I mean, clearly होगी preparation. It's not a. तेज भाई ने बोला था. भी होगी तो बिशप G4 तो मतलब कितनी लॉजिकल चाल है. फोर्सिंग चाल है. F pawn को टच नहीं कर सकते. बिल्कुल सही बात. C7 पे और ये मतलब कितनी खराब लग रही है. And you know, but सहज भाई just being devil's advocate, क्यों मिस्टेक है? क्या हो रहा है मतलब? बिशप G4 को क्वीन हटा ली मैंने. अब क्या करोगे क्या? प्रॉब्लम ये है कि देखो व्हाइट ने ब्लैक का पॉन मारा है E5 पे, ठीक है, और ब्लैक ने व्हाइट का पॉन मारा है H3 पे, और H3 का पॉन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि व्हाइट का जो किंग है वो अनसेफ है इस टाइम पे, क्योंकि वो फाइल पूरी खुली हुई है. G4 का स्क्वायर जो है वहां पे नाइट आ सकता है, जो H2 का स्क्वायर है वो बिल्कुल खाली है, और ब्लैक का जो किंग है वो बिल्कुल सेफ है. और उसके ऊपर ये भी देखो कि ब्लैक के पीसेस सारे बाहर हैं. मोस्ट ऑफ देम. वो एक रुक को 8 वाले रुक को हटा दो तो बाकी सारे पीसेस बाहर है. और व्हेयरएज व्हाइट की क्वीन, व्हाइट का बिशप, व्हाइट का नाइट, व्हाइट का रुक, सब के सब अंदर पड़े हुए हैं. I agree, and you know what? हिकारू को पॉन कैप्चर करने के लिए सेम पीस चलना पड़ा. He had to move his thrice now. But black ने जो कैप्चर किया, it was with development. So that means clearly black is fully developed. ये दोनों बिशप कट कर रहे हैं यार, ऐसे मतलब ऐसे चाकू की तरह इन सीरियल किलर मूवी पूरा ऐसे पकड़ के बैठे हैं. And now VD just has to find bishop G4 and queen move करनी है. As Sahaj said, you cannot play F3 पिन है. So queen दोबारा टेम्पो वेस्ट व्हाइट का to move the queen. ये कहां चलोगे? इनफैक्ट साज भाई, बेस्ट मूव हियर इज क्वीन D2. वो तो हिकारू खेलने से रहा भाई. क्वीन D2 कौन खेलेगा? नहीं होता भाई. क्वीन D2 कौन खेलेगा? And then knight G6 you can see clearly build up हो रहा है king side. Not bishop C7. Bishop C7 में क्या हो रहा है? Bishop C7 खराब क्यों है? हाँ, so bishop C7 is also a possibility, but यहाँ पे E5 apparently is the issue. हाँ, अच्छा, H7 का pawn, right. Even this is okay actually. Even this is okay, but maybe there's like multiple options. As you can see, बार पहले ऊपर गया, नीचे आ गया. भाई VD ने कैलकुलेट किया है, as you said, cloud के साथ, so it will be very exciting to see. मतलब हम ये कह सकते हैं कि VD की अच्छी पोजीशन है और VD को फोर्सिंग मूव्स भी नहीं खेलनी है. हाँ, that's really nice. That is a huge plus. Yeah. VD I think हल्के से जेट लैग लग रहा है. दूसरा यॉन देखा मुझे in such a enterprising position. Really? यॉन किया क्या? मैंने मिस कर दिया. Oh, that's interesting. Yeah. दूसरी बार ये. हाँ. अनीश गिरी ने ट्वीट डाला है चैट, विदित संतोष प्रेपराटी. भाई क्या भाई मस्त है यार. अनीश लव यू मैन. चैट VD OP हो जाए चैट में. मतलब he deserves it for his preparation. हाँ. Monster preparation. राकेश भाई, लेकिन एक मेरा डाउट है. VD is now thinking, so there are two ways to take this. Either he has not prepared this that deep, या फिर this is not what he expected. So now he's trying to recollect. Which one do you think it is? The first. He doesn't know. He's out of his book right now. Are you sure? ऐसा लग रहा है कि मतलब अब उसको नहीं पता क्या करना है. Yeah, for sure. But I mean, that is also a decent sign ना. अगर आप सोचो, अगर आप क्लाउड के साथ ये तैयारी कर रहे हो और it's a great sign. सामने वाला कोई ऐसी चाल खेल रहा है जो आपको नहीं पता, राइट? जो इंजन ने नहीं सजेस्ट करी, इसका मतलब ये होता है कि वो चाल खराब है. एटलीस्ट उसको ये पता है कि हिकारू ने खराब चाल खेली, और हिकारू को भी पता है. हिकारू को भी पता है मैंने खराब चाल. नहीं, बिकॉज़ VD सोच रहा है ना. VD सोच रहा है ना. VD सोच रहा है. So he also knows कि खराब चाल है. He also knows. ये बहुत सही टाइम पे हमने देखा बिशप H3, which like we saw it all live. ऐसा नहीं कि हम लोग कहीं और थे, you know, and someone in the chat says look at bishop H3, it's amazing. Yeah, but to me the main thing is कहीं ना कहीं पे VD seems to be very well prepared, and ये एक बहुत अच्छा sign है, because कहीं ना कहीं पे ना this is how he played really well. His opening prep really became much better. तो बहुत अच्छा लग रहा है देख के
कि ही इज रियली वेल प्रिपेयर्ड, मतलब बहुत सही फीलिंग है. एंड यू नीड दैट प्रिपरेशन कि चाहे आप कैंडिडेट्स खेलो चाहे आप वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलो, दोनों के लिए प्रिपरेशन तो नंबर 1 एलिमेंट है. दिस इज व्हाट दे स्पेंड द मोस्ट टाइम ऑन. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. ट्रू. ये पूछ रहे हैं इफ नॉट बिशप G4 वर्सेस बिशप E6 भी बेसिकली बिशप को बचाना है बस. हाँ हाँ, बिशप को But- बचा लो, उसको C8 पे भी डाल लोगे तो भी वो ठीक है शायद. हाँ, हाँ. मतलब तो भी ठीक ही रहेगी, देख रहा हूँ मैं. बट यहाँ पे ना कहीं वो एडवांटेज जो डेवलपमेंट किया ना उसको मेंटेन करने के लिए G4 आसान चॉइस है. एक्चुअली डिफिकल्ट G4 नहीं है सोचना यार, बिकॉज F pawn पुश नहीं कर सकते. तो लाइक इवन आई वुड इमीडिएटली प्ले बिशप G4, है ना. मतलब अगर मुझे कुछ नहीं पता है, दैट्स व्हाट आई वुड आल्सो प्ले, बिकॉज F3 है ही नहीं ऑप्शन. You guys saw it before all the streams. अरे भाई where's my big boss hat यार, वो थग लाइफ वाले, बस वो स्पेक्स भी है थग लाइफ वाले कहीं पे निकाल के रखने चाहिए थे. भाई आशीष ओपी भाई, यू गाइस सॉ इट बिफोर बोल रहे हैं, मतलब हमने कुछ तो सही करा है आज. हाँ हाँ हाँ, नहीं, राकेश भाई को लाया ना स्ट्रीम पे, ये हुआ है बिल्कुल भाई. different आज. भाई मैंने तो उकसाया नाका को कि भाई मार के दिखा. लिटरली बोल दिया क्या भाई, वो बिल्कुल, स्टेटमेंट में मार के रिपीट भी नहीं दिखाना. कर सकता, रिपीट भी नहीं कर सकता. इतना भी कुछ नहीं था यार, मतलब PG-13. हाँ हाँ भाई. Why not bishop d2 completely open? यार बिकॉज ब्लैक के पीस अभी गेम में नहीं है ना, कोई चेक वेक भी नहीं आ रही, तो पीस नहीं देना चाहिए, पीस बचाना जरूरी है. एक पॉन के बराबर वैल्यू नहीं है उसकी. बिशप G4 तो अब आई थिंक विदित यही सोच रहा है बिशप को G4 पे रखना है, E6 पे रखना है. हाँ, आई थिंक दैट्स व्हाट इज. पर अच्छी बात यह है कि दोनों में उसके बेटर. एक थोड़ी सी ज्यादा बेटर है और एक थोड़ी सी कम है, बट लेकिन दोनों बेटर है. वीडी लेकिन काफी डीप सोच में यार. वीडी भाई आई होप कि इनकी प्रिपरेशन में है ये. हमने तारीफ बहुत करी, बट कहीं ना कहीं पे ना लाइक मतलब इफ नाइट C4 के बाद वो सही मूव नहीं निकालते, देन हिकारू का ट्रिक वर्कड. इट बेसिकली वर्क. सो मैं उम्मीद पूरी कर रहा हूं कि वो बिशप G4 निकालेंगे, क्योंकि उसके बाद जैसा हमने देखा 2-3-4 मूव्स हैं जहां पे ही इज मच बेटर. फिर आसान हो जाएगा, बस बिशप G4 निकालना है यार. ट्रू. एंड दिस मेक्स मी थिंक कि ऐसा कितनी बार हुआ होगा कि एक 2790 का प्लेयर व्हाइट पीसेस से 12वीं चाल पे -1 पोजीशन पे. बहुत कम, बहुत कम. मतलब लाइक आई थिंक मे बी इवन लाइक मे बी आप उसको अपने हाथों से काउंट कर सकते हो, लाइक द अमाउंट ऑफ टाइम दिस मस्ट हैव हैपेंड. दिस इज वेरी 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 रेयर. Yeah. All thanks to this move, yeah. Bishop H3. What a move, man. What a move, yeah. And I think ये जो conversion है इसके बाद, like VD is like better, like quite better, but just not close to winning. So I feel ये जो conversion है, like from better to winning to actually winning the game, that's the trick, like today. And Nakamura जो 47 games unbeaten है, क्या VD will be the guy who beats him finally after all those games? बहुत ही मजेदार मैच है. Insane. That will be insane. सहज भाई और चैट से पूछना चाहूंगा कि क्या आपको पता है कि लास्ट टाइम नाकामुरा कभी गेम हारा था क्लासिकल चेस में? ठीक है भाई, इससे ये तो प्रूव हो गया कि सहज भाई अपना प्रीशो तो नहीं देखते. प्रीशो नहीं देखते. नहीं, उनका टाइम भी ऐसा है ना, ये यार ऐसे टाइम जोन डिफरेंस है. करना चाहिए. I actually don't know कब था. Let's give chat a chance कि chat आपको पता है लास्ट टाइम हिकारू नाकामुरा क्लासिकल चेस में कभी गेम हारे थे, और अगर किसके साथ हारे तो एक आधा डायमंड मेंबरशिप भी दे ही सकते, बट ऐसे नथिंग, नो बिगी. बाय द वे, अभी जी ने बहुत से सवाल पूछा है, तक चैट लिखती है आई एम न्यू टू चेस. भाई ये बता दो, ये मूव करके ऐसा क्या हो गया? भाई ऐसा ये हुआ कि बेसिकली बिशप 3 पॉन के बराबर होता है, और उठा के बस ऐसे दे दिया भाई बिशप, बिना किसी स्ट्रेस के. भाई ये लो, ले लो बिशप. मतलब इट्स लाइक, मतलब मान लो मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए मैंने उठा के भाई सड़क पे फेंक दिए, लो भाई. लाइक इट मेक्स नो सेंस. तो या क्या पता मेरा असली गोल है इंस्टाग्राम पे रील बनाने का और दिखाने का कि मैं दान कर रहा हूं, एक्चुअली मेरा गोल है ही नहीं वो. तो ऐसा कुछ हिडन मोटिव है यहाँ पे. तो वही समझना हिकारू के लिए इतना मुश्किल हुआ. एंड यहाँ पे अभी आ रहा है नाइट C4 और हिकारू नहीं समझ पाए परफेक्टली, एंड अब वीडी बेटर है. करेक्ट. एंड अगेंस्ट, मतलब इंडियन इंजीनियर इन द चैट का सही जवाब है. सो कांग्रेचुलेशंस, आपको मिलती है डायमंड मेंबरशिप 1 महीने की. तो बोल रहे हैं अगेंस्ट डिंग इन द लास्ट कैंडिडेट. सहज भाई, हाउ कूल इज दैट? That is very cool. That is very. पर ये मुझे तो ये I would not लास्ट राउंड आपको ये तो याद होगा ना कॉन्टेक्स्ट. लास्ट राउंड हारा
तो याद है मुझे, उसके but बाद again, से नाका हारा ही नहीं है, मतलब अमेजिंग। that's insane. That is insane. That is और insane. लगभग आई थिंक 2 साल होने को आएगी, क्योंकि वो जो टूर्नामेंट था जुलाई में Hmm. 2022, सो almost like 21 months of being unbeaten. Crazy. Absolutely crazy. But in World Cup, Pragg defeated him twice. Exactly. So Pragg defeated Hikaru in the World Cup, and that tells us कि ये लोग हार सकते हैं. और प्रग ने कारुआना को भी हराया था, नॉट टू फॉरगेट. सो ये जो बिग गन्स है ना इस टूर्नामेंट में, सो दे आर दे कैन फॉल. इट इज पॉसिबल कि हार सकते हैं लोग. एंड दिस इज अ ग्रेट ओकेजन फॉर वीडी टू गेट हिज ओन गेम देयर. अपना पॉइंट मिल जाए भाई. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार. हिकारू second ranked, I think, in the candidates, right? And also with the black pieces. With the black pieces. So this win, if this happens, VD would be the, on paper, after 2 rounds, favorite to win the candidates. After 2 rounds. So बहुत important round है. Black से हराना तो मतलब that is something else. और Hikaru again one of the biggest contenders ना यहाँ पे. Yeah. And I can just imagine, कल सुबह उठ के मैं क्या देखने वाला हूँ YouTube पे. Dear YouTube, I lost. Oh. hoping to see that title from Hikaru, but क्या ही मजा आएगा if Vidit manages to convert this. And yes, Chat Pragg ने भी हराया था Hikaru को, but that was in rapid. So we were talking about classical chess there. What But do you good think, point by Tikku bhai chances? No, what do you think are the chances के अगले दिन सुबह हिकारू की YouTube पे लिखा होगा डियर चैट, राकेश भाई ने बेइज्जती कर दी मेरी? नो चांस. नो चांस. ये राकेश ही होगा. ये राकेश है कौन? Exactly. Oh, okay, interesting. Let's have a look. Hikaru, being the amazing content creator as always, has a stream going on. कहाँ पे भाई, कहाँ पे स्ट्रीम कर रहा है वो? ट्विच पे तो नहीं दिख रहा. चैट फिलहाल के लिए आई थिंक दिस इज रियली शार्प. तो हम इस गेम पे तो रहेंगे ही. जल्दी से गेम स्विच करते हैं, है ना. एक नजर मारते हैं प्रग की गेम पे, बिकॉज यहाँ पे अगली मूव पे बहुत कुछ होने वाला है. सो वीडी इज नाउ थिंकिंग, है ना. तो ये मोमेंट वीडी को देते हैं. लेट्स गो टू प्रग्स गेम क्विकली. एक अपडेट लेते हैं, बिकॉज वहां पे गुकेश इज अपेरेंटली क्लोज टू विनिंग. So it's really black is striking today. What? नहीं, ये विनिंग नहीं है. What? ये फिर से क्लाउड की कोई प्रिपरेशन है भाई. क्लाउड बाबा आप जो भी हैं बड़े हैं, बट लेकिन भाई समझे थे मैं क्या चक्कर है भाई. So we saw the opening moves, right? नहीं, विनिंग कहाँ से है? आप टाइम देखो ना. B5, Queen E2, Bishop B7, Rook D1, Knight A5, D5 takes E5. So इंजन कह रहा है क्वेश्चन मार्क, बट हमारा क्लाउड कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क नहीं है. नहीं हो सकती है मिस्टेक. मैं बता रहा हूँ नहीं हो सकती है भाई. प्रग का टाइम देख ले. आप कह रहे हो मुझे वो E5 E6 बिना तैयारी के थोड़ी ना खेल सकता है. नहीं भाई, तैयारी तो है. देखो यार, 1 hour 51 minutes. 1 exactly 151 9 मिनट के अंदर ब्लिट्स कर रहा है ब्रो. So let's try to understand भाई. मान लो अब ब्लैक तो यहाँ मारेगा ही. I think that's pretty obvious, no? I don't see any other move happening. है ना. So let's say वो मारता है. So what is the move, Sahaj भाई? What can we play? Okay, चलो. नाइट को लाया, D4 पे आ गया. यहाँ पे कुछ क्रेजी. मैं बोल रहा था कि हर जगह रिजल्ट आएगा. मैं मतलब सबको मेरी बात सुननी चाहिए. I was right. मैं बोल रहा हूँ. 3 results chat. I said 3 results. बता रहा हूँ. Is he like the वो जो इमरान हाशमी फ्रॉम दैट मूवी? कौन सी मूवी थी यार वो, जहाँ पे सब कुछ गेस करता है. ये बैट्समैन का ये है भाई. Oh, I think I know. Yeah. I remember, yeah. But yeah, Knight D4 खत्म. ये तैयारी है. So Knight D4 के बाद let's say I play Queen D7. मैंने pawn बचा लिया. What next? Oh, there's Bishop H3 actually. So maybe Queen D6 then. Queen D6 let's say. Yes, it was Jannat, yes. That has come to the rescue. So Queen D6, Sahaj bhai, how will you challenge me here? I say भाई मैंने प्यादे 2 मार लिए, अब क्या है भाई? बहुत प्यादे हैं मेरे पास, क्या करोगे आप? I mean, I don't know. Bishop H3 पता नहीं. Bishop F4 कुछ ना कुछ तो. ये Knight D4 थोड़ा पहले जाओ ना. Okay. थोड़ा अच्छे से सोचते हैं कि E6 के pawn को
कैसे प्रेशर कैसे डाल खाए? सकते हैं, E6 के हाँ पॉन पे प्रेशर डालना है, और कैसे डालें हाँ वो तो ये सेम चीज गुकेश भी सोच रहा है कि भाई मारना है ही। बिशप H3 मे बी, बिशप H3 रखते हैं ना, बिशप H3 इस पे क्या हो रहा है, क्या सीन है यहाँ पे? भाई बार तो बिल्कुल नीचे चला गया इसके लिए अपेरेंटली। हाँ मेरे पास क्लाउड नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है। वही तो क्लाउड, ये कोई क्लाउड की तैयारी है, मैं बता रहा हूँ आपको। अपेरेंटली सहज भाई यहाँ पे यू कैन जस्ट प्ले C6. You might take this. I will play king H8 and apparently black is better. Or but we don't know for sure. We don't know for sure कि कितना deep preparation actually है कहाँ भगवान ही से जानता है. बेटर होगी 95? 95 and now knight F6 apparently. यार नाइट F7 अलाउ करोगे? ये तो गलत Knight है। F7, rook F7, ये तो गलत है। bishop F7, नहीं नहीं, ये queen तो गलत है। F8, bishop E6 and then apparently something like rook E8 and black is apparently winning. हम्म हम्म Chat इसलिए या हम लोग कमेंट्री कर रहे हैं और वहां नहीं दिस खेल रहे लुक्स भाई. बैड। हाँ नहीं, तो इसमें आई ये थिंक तो खराब है, पर E6 Fe6 क्या है फिर? मास्टर कुछ तो है यहाँ पे। बिशप D4 चलो, एम गेम से भी बोला है, बिशप D4 चलते। बिशप D4 पे दिस इज इमीडिएटली लूजिंग आफ्टर बिशप ब्लंडर C8. भाई, ब्लंडर। ये तो ब्लंडर है, सॉरी भाई। सहज में बिशप आप सोचो कि मास्टर पीटर स्विडलर ने क्या सोच के आया, ये प्रेप किया होगा। वो तो मेरे को हर वक्त सोचना चाहिए ना, तो हर वक्त जिस टाइम पे भी मैं चेस को देखो, मेरे को उसे अगर अगर मैं कर सकता होता तो मैं तो हर वक्त यही सोचता कि स्विडलर क्या करेगा यहाँ पे। यू नो व्हाट, मैं एक प्रेडिक्शन करने वाला हूं. आई थिंक गुकेश इज विनिंग दिस. आई थिंक प्रग ने कुछ व्हाट? सोचा है. हाँ आई थिंक ही विल विन दिस. नहीं गुकेश विल विन नहीं दिस. दैट्स माय नहीं, प्रेडिक्शन. आई चांस ही चेंज नहीं। माय प्रेडिक्शन. मैं अजय देवगन की तरह दो टांगों में ऐसे मैंने रखा हुआ था, मैंने एक टांग उठा दिया भाई, दूसरी गाड़ी गई. आई थिंक गुकेश इज विनिंग दिस. दैट्स माय प्रेडिक्शन. चैट व्हाट्स योर प्रेडिक्शन? डू यू थिंक कि कोई डीप प्रेप है प्रग की, और डू यू थिंक कि कहीं कुछ गलती हो चुकी है? व्हाट डू यू थिंक चैट? भाई चांस ही नहीं कि प्रग कैन लूज दिस यार, कम ऑन। भाई पता है ऐसा बिफोर यू आंसर, याद रखना 4 में 4 थे कल, 4 में 4। ये क्या है, तो ब्लैकमेल लग रहा है भाई. I'm just saying 100% accuracy है यहाँ पे, so far। बाप रे. प्रग, गुकेश इज विनिंग. प्रग ओपी, प्रग ओपी. 151 के टाइम पे कैसे हो सकता है? अगर 151 इतना टाइम है, टाइम ही टाइम है, 9 भाई मिनट। इट्स पॉसिबल नो. 151 के मे बी ही नहीं बॉस्ड अप हिज नहीं प्रिपरेशन. शायद कुछ मूव ऑर्डर गलत खेल दिया हो. ऐसा हुआ है कैसे? यार पहले. ऐसे हुआ है पहले. नहीं हो सकता, आई डोंट थिंक हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। कुछ है, मैं बता रहा हूँ आपको, जो हमें चलो अभी भाई. दिख नहीं रहा, कुछ है। भाई मुझे तो कभी नहीं दिखता, बट चलो अच्छा. ग्लैड टू नो कि किसी को रॉन्ग नहीं मूव दिख रहा है पहली सीक्वेंस, बार. रॉन्ग मूव सीक्वेंस हो सकता है, शायद रुक को E1 पे रखना था इंस्टेड ऑफ D1, ऐसा हो सकता है। बाय द वे, फिलहाल के लिए एज गुकेश थिंक्स, लेट्स गो बैक टू VD's पोजीशन बिकॉज ही हैज प्लेड बिशप G4. सो ही फाउंड द बेस्ट मूव. और अब हिकारू फिर स्ट्रेस में. भाई मतलब कह रहा होगा यार ये क्या हो गया भाई, ऐसे तो ये स्क्रिप्ट तो नहीं लिखी थी हमने. ये तो हिकारू बोर्ड पे भी नहीं है. कहाँ है भाई हिकारू? मैं नहीं खेल रहा। हिकारू चिल करता है थोड़ा। ऑलरेडी इतनी खराब पोजीशन है। क्वीन C2, आप कह रहे थे क्वीन D2 खेलना है यहाँ पे। दैट इज द बेस्ट. दैट वाज द How बेस्ट can मूव ओरिजिनली. फिर इंजन ने भी कहा भाई क्या कर रहा हूं मैं भी नूब हो गया हूं. उसने कहा नहीं खेलना. बोथ मैचेस आर गोइंग अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट. यार चैट पता है, एंड राकेश भाई एंड सरज भाई, आई वुड लव टू नो कि कैसा, बट कहीं ना दिस फील्स पर्सनल. ऐसा लग रहा है कि अगर कोई इंडियन जीता ना तो इसे मैं जीत गया. ट्रू, है ना? वेरी ट्रू। ऐसा लग रहा है कि मतलब पता नहीं ऐसे मैंने कुछ कर लिया कमाल, मतलब ऐसे पता नहीं क्यों. आई डोंट नो कि इफ यू फील द नहीं, सेम. ये सारे गलत फहमी निकाल दो आप आपके दिमाग। नहीं बट जोक्स अपार्ट, बट ये जो है ना कि आपने ना टिकू भाई, आई थिंक टाटा स्टील से स्टार्ट किया था, लाइक हाँ नहीं हाँ CCT1 से, फिर हाँ प्राग में भी उनको रैली किया आप दोनों ने मिलके, एंड हाँ चैट भी जुड़े, चैट धीरे धीरे ज्यादा चैट जुड़ते गए, तो इट हाँ. एक्चुअली फील्स लाइक वो भारत आर्मी, पता है आपको, जो इंडियन क्रिकेट में. सारे स्पोर्ट्स क्रिकेट में है वैसे, सो वी आर पार्ट ऑफ लाइक समथिंग लाइक दैट बेसिकली, पूरा ऐसे ऑफिशियल रिप्रेजेंट कर रहे हैं चैट को, तो बहुत ही सही लग रहा है ये, एंड डेफिनेटली अगर कुछ होगा, कुछ जीतेंगे तो आई थिंक समोसे नहीं इस बार, तो फिर कुछ स्वीट आपको भेजना पड़ेगा चैट के घर पे, टिक्को भाई। स्वीट भाई मैं सब कुछ भेजने को तैयार हूँ यार. मैंने बोला ना भाई, कुछ भी जो चैट मांगेंगे वो देने को तैयार है, बस इंडियन जीत जाए यार, मजे आ जाएंगे यार.
Yes, yes, बिल्कुल बिल्कुल. साहिल भाई, बट I'll still take the samosas, yeah, क्योंकि मैं बुडापेस्ट में रहता हूँ. मुझे एटलीस्ट 2 महीने हो गए. जब मैं लास्ट टाइम इंडिया गया था तभी मैंने समोसा खाया था, एंड सिंस देन आई हैवंट हैड अ समोसा. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. सो आई हैव टू आंसर्स टू दैट. पहला आंसर है कि भाई वहां का समोसा भी यहाँ के पता नहीं भाई, उसमें सूट आ That's जाएगा not भाई my मेरा. problem ना, that's not my 3 problem. पीस सूट भिजवाने आ तो जाएगा आपको है मेरा ना. भाई उसमें. सो वहां का समोसा बड़ा महंगा है. दैट्स द फर्स्ट थिंग. सेकंड भाई, ओलंपियाड अगर होगा ना और उस टाइम पे अगर इंडिया का मान लो कोई वर्ल्ड चैंपियन भी है तो आऊंगा भाई वहीं पे, फिर वहीं खुद अपने हाथ से खिलाऊंगा भाई आपको. चलो, डन फिक्र मत डन करो डन भाई. डन डन. डन भाई. और हाँ, आई थिंक ये साल सितंबर में है ओलंपियाड, आई थिंक इन बुडापेस्ट. सो ये जो सारे प्लेयर्स हैं ये खेलेंगे वापस बुडापेस्ट में टीम इंडिया की तरफ से. होपफुली तभी मेरा एक मेरा होगा वर्ल्ड घर चैंपियनशिप कैंडिडेट. where I live is like 10 minutes away, जो ओलंपियाड का हॉल तो है. तो साज भाई I ऐसी walk through that like almost every day, क्योंकि वो बहुत तो प्रिटी सी जगह है. बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया हॉल है वो. तो बाहर से भी इट लुक्स सो नाइस. और आई एम जस्ट वेटिंग सो इम्पेशेंटली कि ये होगा. और देयर इज सच अ बिग स्टेज जस्ट कमिंग. पर तो अभी वो साज एक भाई तरफ बताऊं. आपके अपार्टमेंट में स्पेयर रूम है क्या? अरे आपके लिए आप समोसे लाओ, एंड देन विल टॉक. फिर उसके बाद ठीक है, डन भाई. पक्का. डन. समोसा फर्स्ट टाइम भाई. आई एम इन फॉर दैट डील. डन डन डन. पता लगे समोसे लेके आओ. साथ भाई समोसे लिए, दरवाजा बंद. भाई 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 ये लो टिप्स. ऐसा मत कर देना भाई, बहुत महंगा कॉम्बिनेशन है भाई. ढूंढते रह जाऊंगा मैं रात को. बिल्कुल बिल्कुल. चैट बाय द वे, क्वीन C2 अगर होता भी ऑप्शन, इट्स नॉट हैपनिंग इन अ मिलियन इयर्स. अपना बेचारे पीस डेवलप नहीं, उनके सामने जाके रानी बैठ जाए. नहीं, तुम नहीं निकलोगे, ऐसा नहीं होगा भाई. क्वीन C2 ही आएगा. एंड आई थिंक स्लोली ब्लैक विल ट्रांसफर हिज पीसेस किंग साइड की तरफ. एंड या आई मीन पूरा फुली डेवलप्ड है ब्लैक यार. सो आई डू लाइक विडीज पोजीशन हियर. Yeah, looks like Queen C2 is the only move, ना. मतलब चैट में भी लोग पूछ रहे हैं. एंड Why चैट, not Bishop E2? हर्ष अग्रवाल का सवाल है और जो मेरे भी मन में था. Why not Bishop E2? यार बिशप So- पॉन E4 का E4 का पॉन मर जाएगा. तो क्वीन D1 बिशप कुछ तो मार के बिशप अच्छा, सब कुछ ही ले लोगे आप. हाँ apparently we can't take this क्या? We can, So of course we can ना. बैक एक- रैंक खुला होगा ना. नाइट B6 AB6. हाँ, there is actually knight C5 here. क्या? And if rook E7 then knight B3. भाई, oh BOD यार, VD क्या ओपनिंग देख के आया भाई. ये तो भाई ये बहुत तो भाई, क्या सहज opening ये देख के सहज ने भी नहीं देखा था. ये मतलब तो let me redo this chat. मतलब क्योंकि मेरे दिमाग से ऊपर से गया. So idea is अगर बिशप E2, ठीक है, क्वीन D1, अब रुक D1 तो बिशप E2, तो बिशप से मारना पड़ेगा. तो बिशप D1, रुक D1, अब प्यादा मिल गया. बट सडनली नाइट B6, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट खेलेंगे रुक E1 तो बिशप 2 चेक है. ठीक है, सो मारा रुक E1 एंड अरे दोनों घोड़े गए. F5 पे F3, बट नहीं, नाइट C5, रुक टेक्स नाइट B3 बिकॉज दिस पॉन इज पिन्ड. भाई क्या प्रिपरेशन. सूर्या भाई कैसे क्या हैक है भाई ये. ब्यूटीफुल. अमेजिंग प्रेप. पर नहीं यार, बिशप E2 तो नहीं चलेगा. बिशप E2 तो मतलब बिल्कुल चांस नहीं लग रहा. लुक एट हाउ विडी स्टैंडिंग बाय द वे. कैसे खड़ा है वो यार, मतलब कुर्सी के पीछे ऐसे, मतलब ना पूरा. Chad, this is exciting, man. We might be witnessing history here. Hikaru Nakamura, second round candidates में हारते हुए, और एटलीस्ट मच वर्स. मतलब वन मोर मिस्टेक एंड ही इज लॉस्ट. अब कोई बिल्कुल भी रूम नहीं है मिस्टेक के लिए. सो एक गलती एंड ही इज लॉस्ट, एंड वो भी वाइट पीसेस से अगेंस्ट विदित सेकंड राउंड में. विदित का हमने कहा था वर्स्ट पेयरिंग है, 2 ब्लैक है, बट कहीं ना कहीं से उल्टा ही गेम खेल दिया है भाई. बिल्कुल. And our featured chat right there. Shout Surya and Daniel, who knows, maybe Daniel found this. It's बहुत बिल्कुल possible है. बिल्कुल definitely possible है. किसी ना किसी ने तो definitely. I mean, imagine the excitement. Bishop H3. I mean, imagine also the excitement because जिसने ढूंढी होगी, he must be feeling so proud. By the way, राकेश भाई, एक ऐसा कभी होता होगा क्या? एंड चैट तुमसे भी है. मान लो बिशप H3 ऑन द बोर्ड आया, एंड इमेजिन मेरे सेकंड सीक्रेट है. मान लो मैं खेल रहा हूँ कैंडिडेट्स. राकेश भाई पता है इमेजिन करना डिफिकल्ट है, बट
इमेजिन कर लो, ठीक है, मैं खेल रहा हूँ कैंडिडेट, ठीक है, और मेरे सेकंड ने मूव निकाली है, अब मेरा सेकंड सीक्रेट है, तो रैंडम लोग रैंडम प्लेयर्स को ईमेल करते होंगे ना, भाई वीडियो का सीक्रेट सेकंड नहीं था, मैंने ही निकाला बिशप S3, नहीं ऐसा नहीं होता होगा यार, किसी को पता तो है नहीं। होता है, वो तो हो सकता होगा, हो सकता है इसके लिए जब भी प्लेयर्स खुद से बोलता है ना कि मैं ये मतलब ये मेरे सेकंड्स है, उससे क्रेडिबिलिटी बहुत आती है मार्केट में। हाँ। तो बहुत सारे ये भी मिलोगे ना, मतलब सहज तो दिल्ली का है, मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई विराट कोहली को मैंने क्रिकेट सिखाया था बचपन में। ऐसे भी बहुत कोचेस मिलते हैं। बट या आई डेफिनेटली एग्री विद सहज कि वो कैश में मतलब बहुत सही ये होगा एटमॉस्फेयर। Do you see Hikaru again panicked? He was about to touch a piece, then he moved back. फिर से उन्होंने ऐसे पैनिक किया, and he's shaking his head right now, but he's nervous. उन्होंने भी हाथ उठाया, वापस ले लिया उन्होंने. He is nervous, clearly nervous. बिल्कुल, ये कहाँ देखने को मिलता? Queen C2, okay, Queen C2 बढ़िया Queen C2 played. I think this was logical. ये तो expected था. अब VD ने ना ये I think थोड़ा important decision है कि पहला डिसीजन है कि व्हाइट ना नाइट B6 थ्रेटन कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि ब्लैक का बिशप जो है वो बहुत स्ट्रांग है और बहुत पावरफुल है, और अगर बिशप को बचाओगे आप C7 पे, हमने देखा था राकेश भाई ये पहले बिशप C7 में E5 और बिशप H7 मर रहा है, तो मतलब डिसीजन ये कि बिशप बचाओ या पॉन बचाओ। साज भाई ये इतना डीप है चैट, दिस इज सो डीप। पहले जब हमने E5 देखा था, इट वाज +1 for white. Suddenly it is -1 now. Apparent. Let's have a look. Let's go through the mess again. Knight FD5. ये allowed है भाई. We can do this. King H8 and still VD is better. And the only move for white is to bring the bishop back. ठीक है, वापस आए. अब Knight G6 and VD is still much better. अभी भी. So ये हर वेरिएशन में VD कहीं ना कहीं बेटर निकाल रहा है भाई. ये तो हिकारू का मुश्किल है भाई बचना इस गेम में. It's really difficult. Yeah, and I think big credit goes to the 3 pieces on the bottom left of your screen, जो अभी तक घर में हिले ही नहीं है भाई. तो सल्यूट भाई, प्लीज तीनों साथ में भाई, प्लीज. हाँ, एक फोर. अरे एडिटर भाई प्लीज एक म्यूजिक डाल देना, to the 3 pieces on A1 B1 C1 भाई. बहुत ही सही, मतलब आपको है 3 हिंदुस्तानी भाइयों का सलाम. I should have colored this in like ऐसे इंडिया के फ्लैग से भी कलर कर सकते थे. Anyways. But yeah, but on a serious note, I think वो ही मेन रीजन है, क्योंकि हर वेरिएशन में ना व्हाइट थोड़ा शॉर्ट है, व्हाइट के पीसेस नहीं आ रहे, तो वो तीनों पीसेस का ही चक्कर है घूम फिर के. Also चैट में संकेत भाई सिंह, those 3 pieces are साहिल, साहजन, राकेश भाई, जो घर पे यही हम लोग कमेंट्री तो नहीं कर रहे हैं बैठ के भाई. ये 3 हम ही है भाई जो हिल नहीं रहे. हमें हिकारू गाले दे रहे मन में, अबे हिलो भाई, थोड़ा वर्कआउट करो भाई. संकेत भाई होती भाई, गुड वन. अरे नहीं, उल्टा सैल्यूट नहीं है, वो मेरा कैमरा फ्लिप्ड है, तो मेरा है दिस इज माय राइट हैंड, तो दिस इज आई थिंक कैमरा फ्लिप्ड है, इसलिए ऐसा लग रहा है. By the way, सलमान खान जी बोल रहे हैं कि कितना जीतेगा, बोर हो रहा है. नहीं, दो अच्छे कमेंट्स. या गुकेश इज 1 hour डाउन अगेंस्ट प्रग, और पराग गुगनानी जी बोल रहे हैं कि यार इट्स टू अर्ली टू सेलिब्रेट, एंड आई एग्री भाई. ये जो हिकारू है 47 गेम से हारा नहीं, क्योंकि ही इज वेरी रिसोर्सफुल. chess.com में भी टाइटल ट्यूसडे हो या कोई प्रैक्टिस गेम में भी ना, ऐसे चिंदी से कोई ट्रैप या कुछ तो रिसोर्स निकाल के ना गेम बचा लेता है, ड्रॉ कर लेता है, या ड्रॉ गेम जीत जाता है. कल भी तो कल के फाबी के अगेंस्ट भी. सो ऐसे मतलब नॉर्मली बोलते हैं कि आपको एक 2700 के प्लस प्लेयर को हराने के लिए 2 बार हराना पड़ता है एक गेम में. पहले एक प्लस लेके आओ, फिर वो रिसोर्सफुलनेस तोड़ के फिर से जीतना पड़ता है. So we agree definitely work still to be done for VD. Yeah, but hopefully वो घर पे वो वर्क करके आया है ताकि भाई आज बोर्ड पे ना करना पड़े. And you know what, राकेश भाई, let's quickly एक बार उनकी प्रग की गेम में जाके देख के आते हैं, because VD अभी सोच रहा है इक्वली इंपॉर्टेंट गेम कुछ हुआ है क्या यहाँ पे. Let's have a look. Still no moves.
1 घंटे से ऊपर का डिफरेंस फॉर गुकेश. Chat, he has to play 26 moves in 49 minutes in a position जहां पे गेम अभी शुरू हुई है. गेम अभी एक चाल दिख रही है मेरे को, एक चाल दिख रही है. I just want to like try कि ये काम कर रही है या फिर मैं बिल्कुल पागल हूँ. After FE6 can I play Bishop B6? What? I'm just curious. Is that working? Okay. Queen E6, Knight D5 कुछ हो रहा है यहाँ पे या नहीं? King H8? Knight D5 है यहाँ पे? कुछ नहीं है यहाँ पे. Am I actually check नहीं आ रहा ना, वही चक्कर है. There's no check there, so now I can simply move the bishop या even knight C. ठीक है, bishop B6 पे नहीं, bishop C5 पे फेंक सकते हैं. Bishop something C5, along those lines. मेरे को ये आइडिया दिख रहा है कि नहीं थोड़ा पहले व्हाइट का बिशप E3 पे रखते हैं. अब इधर बिशप B6 पॉसिबल नहीं है, तो बिशप मेरे को ये आइडिया दिख रहा है क्वीन E6 और नाइट D5 और ये टेम्पो है. हाँ. और तो बिशप F4 में भी सिंपल चेस. बिशप F4 टेम्पो नहीं है ना. बिशप G5 फेंक सकते हैं क्या? बिशप G5 भाई यार पीस क्यों दे रहे हो भाई बार-बार यार? भाई ये क्या नहीं भाई, तो क्या करें टेम्पो का भाई? ये भी काम नहीं कर रहा भाई. कहीं ना कहीं इस तरह की कोई चाल, इस तरह की ये तो रैप कर दिया है. आपके पीसेस नहीं है तो देते ही जा रहे हो यार, ये क्या है? ये तो रैप कर रहे हैं भाई. इस तरह से मैं चला भाई. क्या चल रहा है? रैप चल रहा है भाई. मैं कह रहा हूं कुछ है यहाँ पे जो अभी दिख नहीं रहा है भाई. मैं कह रहा हूँ प्रग ने कुछ मूव ऑर्डर चेंज किया है. हो ही नहीं सकता. अगर मूव ऑर्डर चेंज किया होता तो गुकेश 1 घंटे से ना सोच रहा होता भाई. गुकेश कंफर्म कर रहा है ना कि भाई इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई भाई. नहीं तब नहीं, अगर कंफर्म हो जाता. ये कंफर्म नहीं, गुकेश को कुछ दिख रहा है इस पोजीशन में जो प्रग को भी दिखा है, और जो प्रग को शायद ऑलरेडी पता है. प्रग खड़ा हुआ है. प्रग खड़ा हुआ है, पता है. ये ऐसे कई बार मैंने भी किया, कई बार गलती होती है ना प्रेप पे, तो मैं भी खड़ा रहता हूँ भाई दिखाने के लिए कि आई एम स्टिल इन प्रेप. तो वी नेवर नो. ऐसा भी हो सकता है कि विदित के गेम्स देख के ना मेरे को भी बिशप सैक करने की वो चुल मच रही है. कहीं ना कहीं पे बिशप फेंको, मतलब बार वो बिशप G4 बिशप H3 देखा है ना, तो इट जस्ट फील्स लाइक वो रिपीट करो वापस. ठीक है. सो यू नो व्हाट, अभी कुछ हुआ नहीं है. एक बार वैशाली गेम पे नजर मारते हैं, हम्पी गेम में क्विकली. आई जस्ट वांट टू हैव अ लुक व्हाट्स हैपनिंग देयर, है ना. सॉरी नीली भाई. आई एम गोइंग टू हम्पी क्विकली. हम्पी इज द फर्स्ट वन. आई जस्ट वांट, उनकी गेम काफी स्लो चलते हुए. वी लुक्ड एट इट टिल हियर. Rook takes 8, bishop takes 8, knight A3, takes, and this is the current position. So Humpy clearly वो D5 setup से बार-बार खेलने में इंटरेस्टेड. कल भी उन्होंने ऐसे ही खेला था. Sahaj भाई, what do you feel about this position? D5 तो हमने एक्सपेक्ट किया ही था कि पॉन D7 पे पड़ा हुआ था, तो मतलब that was expected. अब क्या है, knight D5 तो मारना ही पड़ेगा. I think that is first. अब उसके बाद व्हाइट के पास कोई है कुछ चाल tactical, something like knight G5 looks logical. Bishop G5, this looks like scary. This looks really scary. F7 और H7 के सारे पॉन्स भी ना थोड़े डेंजरस से लग रहे हैं. This looks scary. Humpy has to be really on point. Yes, I can flip the board. Yes. Time at least है. Yesterday I think there was an issue with the time, but आज time पूरा on the board है भाई. Yeah. And even though भाई लानो के पास सिर्फ 53 मिनट्स है, but she is a multiple time world rapid and blitz champion. So very like ऐसा बोलते हैं कि वो और उसका पति अलेक्जेंडर ग्रिशक दोनों के पास 3 वर्ल्ड ब्लिट्ज टाइटल है, 3 मेन में और 3 वुमेन में. हाँ, समझा. Very strong players under time pressure. So this moment is crucial now. I think फिलहाल के लिए ED5 पे knight D4 played. And not good. Cloud की क्वेश्चन मार्क भाई. आई थिंक अब मैं ये क्लाउड नहीं है. क्लाउड 1 घंटे बाद थोड़ी ना याद रहता है. इसको तो 1 घंटा. आज से कोई भी गलती होगी ना, मैं कहूंगा क्लाउड भाई. क्लाउड है भाई. मेरी गलती नहीं है, जस्ट क्लाउड. तुम समझ नहीं पा रहे हो. हाँ नहीं, ये सिर्फ ना वो देख के ना कुछ वियर्ड लग रहा है ना भाई. हाँ कुछ अजीब लग रहा है यहाँ पे. हाँ. So यहाँ पे I think apparently C4 is an interesting try to try and simply save this pawn. Right. And so yeah, we'll have to see how this moves. I think बहुत interesting position है. Can we quickly go to Vaishali's game, Ranjan bhai, एक बार?
because I also want to go back to Vidit's game quickly. I think कुछ ना कुछ हुआ है वहां पे. So let's go to the game of Vaishali quickly, who's playing the only player who won yesterday. Zhongyi इकलौती player है, and look at Vaishali's clock slightly behind there. हमने कहां तक देखा था? I think we saw the London opening, E6 castle, stakes, काफी solid setup. This is the kind of structure I play जब मुझे नॉर्म के लिए फाइट करना होता है, ड्रॉ चाहिए होता है. जो तब भी नहीं बना मेरा, अनफॉर्चुनेटली. सो व्हाट इज योर प्रेडिक्शन फॉर दिस गेम, साहज एंड राकेश? यार ये तो ड्रॉ है ना? ये तो पक्का ड्रॉ है. मतलब आप किसी को आप थोड़ा सा ब्लैक को अनॉय कर सकते हो यहाँ पे. थोड़ा सा वैशाली यहाँ पे अनॉयड रहेगी, बट लेकिन हाँ, थोड़ा सा सफर करने के बाद ये ड्रॉ हो जाएगा. ये B3 का नाइट थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे. लेकिन कहीं जा नहीं रहा. थोड़ा तो सह लेंगे ना, क्योंकि मतलब लंदन खेला है, तो मतलब इट्स डिजर्व्ड, तो देखते सहज भाई अगर अपना चैनल फॉलो करते हैं. कोने में घोड़ा, कंप्लीट द सेंटेंस. भाई एक सेकंड भाई, ध्यान से बोलना भाई प्लीज. नहीं राकेश भाई मैं दिल्ली से हूँ, ठीक है. प्लीज. तो बस हमने ये, आपको ये तो पता होगा सहज भाई की नाइट ऑन द रिम इज डिम, तो उसका हमने हिंदी कन्वर्जन किया है, कोने में घोड़ा काम करे थोड़ा. अच्छा ओके गॉट इट. मैं घबरा गया था एक सेकंड. राकेश भाई को क्या हो गया? आज तो भाई हिकारू को भी नहीं छोड़ा, तो कुछ भी पॉसिबल है भाई आज. नहीं यार, अरे भाई थोड़ा चैट को भी ना ऐसे चीजों से आप याद रखेंगे, ताकि आप आपके गेम्स में भी ऐसी गलतियां ना करें. अगली बार कोई घोड़े ऐसे कोने में जाएगा, इनको यही कोट याद आने वाला है साहज भाई को. ओपोनेंट पूछेगा आफ्टर व्हाई डिड यू प्ले दिस कोड. अरे भाई राकेश भाई ने कोड दिया था. नहीं बट यार लुक्स, आई थिंक वैशाली शुड बी हैप्पी विद हर पोजीशन. मतलब नॉट डजंट नो नीड टू वरी बेसिकली. हाँ, सो दिस वन आई एम गोइंग टू प्रेडिक्ट अ ड्रॉ, आई थिंक, जो मुझे समझ में आ रहा है. निरंजन भाई, कैन वी हैव वीडी एंड हिकारू देयर अगेन ऑन द कैमरास? लेट्स गो टू दैट वन. आई थिंक हमने वो गेम थोड़ी टाइम से देखी नहीं है. हैज समथिंग हैपेंड देयर? आई एम प्रीटी क्यूरियस. नॉट येट. सो राकेश एंड साहज भाई, क्या ये वीडी की प्रेप खत्म हो चुकी है अब? क्योंकि वो बहुत इंटेंस पोज में लग रहे हैं. दिस इज द पोज यू हैव, जो आपको फाइनली सोचना पड़ता है. यू डोंट हैव मच एनालिसिस, आप कैलकुलेट कर रहे हो लेजिट कि क्या हो रहा है. दिस इज नॉट द रिमेंबरिंग फेज, वो बोलते हैं ना, दिस इज लाइक द कैलकुलेटिंग फेज. बिल्कुल. आई थिंक डेफिनेटली वो प्रिपरेशन में तो नहीं है, पर उसको ये पता है कि उसकी बेटर है. उसको ये पता है, पर आई थिंक उसको ये नहीं पता होगा कि कितनी बेटर है. ये नहीं पता कितनी बेटर है. या ऐसा हो सकता है वो सोच रहा है, अरे यार सूर्या ने क्या बोला था यार ये मोमेंट पे ऐसे. शायद वही सोच रहा है अभी. हाँ, मुझे भी लग रहा है. मतलब मे बी आई हैव अ फीलिंग उसने कहीं ना कहीं बैक लाइंस में कहीं ना कहीं ये पोजीशन देखी हुई है. आई हैव दैट फीलिंग. नहीं देखी होती तो अब तक याद आ जाती. आई थिंक नहीं तो अभी भाई नींद तो थोड़ी ले रहा है. वीडी कह रहा है टाइम बराबर करके खेलेंगे यार. देखो हम बराबरी में विश्वास रखते हैं, इक्वालिटी फॉर ऑल. अनफेयर है भाई. ऐसे कैसे मैं घर से डट के आया हूँ भाई, वो बंदा सोच रहा है वोट भाई बराबर होना चाहिए, तो अभी थोड़ा सो लेता हूँ. उठ गया भाई वीडी अपना. उठ गया भाई. बट एक चीज टिकू में देखिए आपने, अच्छी चीज कि वीडी हमेशा पिछले 2-3 बारी से ना बीच में पानी पी रहा था. नन ऑफ दैट ऑरेंज जूस नॉनसेंस टुडे. अरे ये हुई ना बात, अपना शेर है भाई. वही तो हम कह रहे थे, नो ऑरेंज जूस, लेट्स गो. Yes, I like that somehow. एक बार क्या कहते हैं, प्रग के गेम पे जाए क्या? ये मैं कुछ मूव, लेट मी जस्ट चेक कोई मूव हुई है क्या. लेट मी जस्ट चेक मूव हुई है भाई. F5 हुई है. व्हाट मिस्टेक? मैं बोल रहा था आपको. अरे यार, he did not play the critical move, chat. नहीं खेला उसने F6. He should have. मैं कह रहा हूँ कुछ है यहाँ पे F C6 में. ये देखो, F5 खेलने के बाद प्रग ने इमीडिएटली 58 सेकेंड्स में खेला बेस्ट मूव ऑन द बोर्ड, नाइट टू E5. ये नाइट F7 D7 जाके बैठ सकता है. क्या प्रिपरेशन है ये, क्या प्रिपरेशन है ये. साहज भाई, can we get हाँ we have एंड साहज भाई, आपका ये बिशप नाइट
Rook, everything being really, really happy. And finally, Gukesh ने immediately खेला knight to f6. ये pawn बचाते हुए. बहुत शार्प पोजीशन, बहुत ही शार्प पोजीशन, और 1 घंटा 10 मिनट एक्स्ट्रा वाइट के पास, एंड ही इज द वन प्रिपेयर्ड. लगता है मैं फालतू में प्रेडिक्शन कर दी यार गुकेश की. यार बिल्कुल दिस इज नॉट गुड न्यूज. डेफिनेटली ये बहुत खराब लग रहा है मेरे को गुकेश के लिए. आई वुड नॉट वांट टू बी ब्लैक हियर, बिल्कुल भी नहीं. लुक्स बैड. एंड प्लस चैट डोंट फॉरगेट, आपको ना अगले जो है 24 मूव के लिए आपके पास सिर्फ 40 मिनट है. इंक्रीमेंट भी नहीं है. Yeah, that is the worst part for Gukesh, I think. भाई प्रग पानी पी रहा है. अरे that's usually पीछे कारुआना सिर्फ बस घूम बहुत रहा है यार. ये क्या चक्कर है? I just want to, can we keep the Pragg camera and have the Caruana game for 1 minute, Niranjan bhai? Is that possible? ठीक है, so let's go to Caruana's game for just 1 second. ठीक है, 1 minute के लिए, because आज वो घूम बहुत रहा है. कारण क्या है? Is it better? This is the position without going through the opening. शुरुआत से एक बार देखिए क्या है. हाँ, चलो देखते हैं. हाँ, so we had e4 e5. Oh, still on the board. Bishop d6. This is the position. Sajid, I'm running through the moves. I apologize. Bishop g5 pin, queen d3 takes, knight f3, a3, and this is the current position. ठीक है. ये अच्छी. Yeah, Fabi is like totally better. Don't like this pawn, yeah. ब्लैक का pawn b5 पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा. b6 पे होता है ना यूजुअली, तो pawn बच जाता है. बहुत वीक लग रहा है देख के. अभी फैबी बहुत घूम रहा है आज. हाँ, इज लाइक मतलब ये गेम तो अपनी है. This is going to be a long grind, मतलब, but जिसमें Fabi will keep pushing with no risk of losing. Yeah, agree. 2 results position, yeah, 2 results. And I think chat में बोल रहे हैं कि नेपो का भी गेम देखना है काफी लोगों को चैट में, तो वो भी एक दिखा देते तो एक पूरा राउंड अप हो जाएगा अपना. हाँ, सो फिलहाल के लिए चैट फैबी क्लियरली सीम्स बेटर, तो हम चलते हैं नेपो अगेंस्ट फिरोजजा. और ये क्या हो रहा है भाई यार? गजब भाई, क्या पोजीशन है ये? क्या है ये? ये तो सेम हिकारू वाली ओपनिंग है, बट d5 ऑन द बोर्ड, क्वीन. ओके, काफी नॉर्मल मूव्स डेवलपिंग. ये हम वहां से वहां कैसे पहुंचे? हुआ कैसे? ये हुआ क्या? क्वीन a2. अच्छा, ये कुछ. अरे भाई gf3 कल के गेम में 3 बार ही आया gf3, बाय द वे. मतलब ये पॉन स्ट्रक्चर रूइन करना कल 3 बार, और आज फिर से gf3. एंड दिस इज एन एक्सक्लेमेशन मार्क. अलाउ किया डबल करना, अलाउ किया पॉन मारना, किंग g2. ये तो प्रेप होगी यार. दिस हैज टू बी प्रेप, नहीं? श्योर, 100%. h4 यार. ये क्या मूव है भाई? चैट भाई क्या बताओ, कैमरा को क्या हो गया यार? मतलब अपन देखना है फिरोजा को, और फिरोजा शर्मा गए. कैमरा कह रहा है भाई ये मेरे सर के ऊपर से जा रहा है, कांट रिकॉर्ड दीस मूव्स. h4 देख के कैमरा बंद हो गया. ये बस अब हो गया मेरा, इसके आगे नहीं. बस बहुत देख लिया. तो भाई ये पॉन h6 पे पहुंच गया क्या है? एक सेकंड. h5. भाई साहब. एंड राकेश भाई, g5 is the best move. Did he play it? Man, yes, he did. He did. Firouzja is damn good, brothers. और भाई और बहनों, मुझे बताइए चैट में, क्या आपको लगता है नेपो जीतेगा फिरोजा? थोड़ा सा इंडिया के हट के गेम है, बट बहुत ही लाजवाब पोजीशन, रोमांचक स्थिति में. मैन भाई ये गेम बहुत ही सही है. कहां से भाई ये सब किंग? we have to say कि g5 खेलना और g5 मतलब h6 मतलब प्रोवोक करा के g5 खेलना शुरुआत से इतना मुश्किल है. आई थिंक मैंने आज तक कभी नहीं देखा g5 आफ्टर 8 पोजीशन में g5 मैंने आज तक कभी नहीं देखा. और हमारे एक महापुरुष ग्रैंड मास्टर सहज ग्रोवर ने कहा था कि आज चारों गेम में हमको खून दिखेगा, और शायद उसी के चलते आज ये हर जगह खून दिखेगा आज. बिल्कुल हर जगह खून दिखेगा. ये क्या है भाई? हर जगह.
नेपो की आंखें बड़े होते हुए ये क्या हो रहा है भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा है। नेपो भाई, वी आर ऑल इन द सेम बोट भाई। अब वो बोट डूब रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें, खतरनाक पोजीशन। आई थिंक वापस चलते हैं इंडियन प्लेयर्स की तरफ। ये इस गेम पे लेट्स कीप अ बिग आई ऑन दिस वन यार, ये बहुत खतरनाक गेम लग रही है। डेफिनेटली। सो लेट्स स्टार्ट विद अगेन वीडी हिकारू वंस। आई थिंक देखते हैं भाई क्या चल रहा है वहां पे, कुछ हुआ क्या, बिकॉज ओ वीडी अभी भी सोच रहा है क्या, हैज ही नॉट, ही स्टिल थिंकिंग इज अरे यस। इम्पोर्टेंट पोजीशन है, सोचने दो, सोचने दो। हाँ भाई, मतलब दिक्कत क्या है? इम्पोर्टेंट पोजीशन बता रहा हूँ ना, दिक्कत ये है कि बिशप देना है या फिर पॉन देना है। दिक्कत ये है। अच्छा। अभी भी डिसाइड नहीं हुआ है। क्योंकि अगर बिशप दोगे तो वो थोड़ा पोजिशनल है, पॉन दोगे तो वो बहुत टैक्टिकल है। इस तरह के डिसीजंस हमेशा बहुत बहुत डिफिकल्ट होते हैं। चैट एक चैलेंज करें, चलो भाई, दिस इज अ चैलेंज, ठीक है। सो वी हैव 200 लाइक्स डॉट ऑन चेस 24। एक चैलेंज करते हैं, 1:50 हो रहे हैं, 2 बजे तक अगर हमारे 3, 6, 8 लाइक्स हो गए नहीं यार, नहीं 368, मैं आउट हूँ, 36। नहीं 368 भाई, 368 भाई, चैट ये चेस जनता है भाई, थोड़ा इतना मुश्किल है भाई हर चीज का लाइन। 364, चलो 364। हाँ, तो 364 लाइक्स अगर हमारे हो गए तो एक बंदे को हम देंगे चेस का मेंबरशिप भाई, जल्दी से, यू नो व्हाट। और अगले चैनल में समोसे करेंगे, जल्दी से करो चैट। 364 लाइक्स, 5 लाइक्स कम, लेट्स गो जल्दी से। या जगह पे इंस्टेंट मैं यहाँ से ऐड कर दूंगा विनर को। एंड राकेश भाई पीछे चेस को हैक करके बैठे भाई, बताओ किसको देनी है मेंबरशिप। ये बढ़िया है ना, इंस्टेंट दे सकते भाई, पावर। बट यस, कमिंग बैक टू द पोजीशन, क्या लगता है आपको सहज भाई, क्या खेलेंगे विदित? मुझे लगता है वीडी नाइट जी6 खेलेगा इस पोजीशन में। हाँ, मुझे भी लगता है नाइट जी6 खेलेगा। स्पेशली अगर प्रेप में नहीं है तो बिशप देना, मतलब ये h7 अलाउ करना मुश्किल है। आपको क्या लगता है राकेश भाई? मैं तो हाँ, नाइट जी6 ही लग रहा है, लाइक नाइट knowing जी6 Vidit for the last 21 years, I think he'll go knight g6. एंड वही ना, h7 देना मुश्किल है यार विदाउट नोइंग। अगर पता होता तो अलग बात है, पर पता नहीं है। हाँ, Oh yes. let's Let's add a random move like a4 एक null move हाँ, ऐड करो a4 में। तो सहज भाई कौन से सिटी में रहता है? बुडापेस्ट। उसमें बहुत एक फेमस आइडिया रुक लिफ्ट का। तो रुक a5 से आगे चढ़ते हुए एक जो आई थिंक चेन ब्रिज है बुडापेस्ट में, ओहो, वो क्रॉस करते हुए नाइस h5 पे आएंगे। चैट एक दिल दहला देने वाली मूव, ध्यान से देखिए। आपका पड़ोसी भी ये मूव नहीं खेल सकता, वो है रुक टू a5 और रुक h5 की तरफ बढ़ते हुए। और हिकारू का किंग भाई कह रहा है मैं जाऊं तो कहां जाऊं भाई, मुझे बचा लो, कोई तो बचा लो, बट नहीं बच सकता भाई, दिस इज क्लोज टू लॉस्ट। सो हिकारू एक भी मूव वेस्ट नहीं कर सकते अब, एक मूव वेस्ट एंड इट्स ओवर, इट्स ऑलमोस्ट ओवर प्रैक्टिकली, बिकॉज सारे पीसेस अटैक में लगे और ये हम तीनों कोने में बैठे हुए कमेंट्री कर रहे हैं। सो आई थिंक कहीं ना कहीं हिकारू को कुछ करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा, ऐसे हम नहीं निकलेंगे हिकारू भाई, हमने तो आई थिंक संकेत जोशी ने बोला था ये 3 पीसेस को अपन को कंपेयर किया था, तो संकेत जी के क्रिएटिविटी को हैट्स ऑफ। हैट्स ऑफ भाई। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बढ़िया। नाइट कितने कितने हो गए टिको भाई? 7 मिनट बचे ना, और आर वी क्लोज? 284 लाइक्स है चैट, तुमने आधे से ज्यादा कर लिए हैं, 364 पहुंचना है एंड एक बंदे को चेस का मेंबरशिप, 7 मिनट पेंडिंग है चैट, लेट्स गो। कैन वी डू इट? मुझे लाइक्स दिख नहीं रहे, मुझे नहीं दिख रहे हैं लाइक्स, क्योंकि मैंने रिफ्रेश भी किया है, बट मुझे मतलब चैट दिख रही है, बट मुझे लाइक्स नहीं दिख रहे। अच्छा नहीं ठीक है, मुझे रिफ्रेश करना था, सॉरी। क्या कह रहे हो निधि भाई? हाँ दिखाओ भाई, दिखाओ भाई, फोटो दिखाओ भाई। निधि भाई ध्यान से रखना फोटो किस चीज की है भाई। स्ट्रीम चल रही है, लेट्स गो। वीडियो भाई मस्त पोज में बैठे यार, मतलब ऐसे चिल करके, ऐसे मतलब ऐसे कैफे में बैठे भाई, एक कॉफी देना। जब पता होता है ना पोजीशन अच्छी है तो पोज अपने आप आता है। भाई कहाँ है फोटो? ओ how could he know about bishop h3?
बहुत ही बढ़िया। नाइस। यार दिस इज बैड, दिस इज जस्ट बैड। एपिक। वीडियो ऊपर से पीछे पीछे देख रहा है भाई ऐसे अगर काश सीधा देखता है इसकी आंखों में ऐसे करके भाई, क्या फील आती भाई। नाइस। बट जबरदस्त आई थिंक। नाइस कैप्चर देयर निंजा भाई। निंजा भाई फोटो खींचने में बहुत सही है यार। ओ एसएसजी कह रहे हैं भाई, एसएसजी का क्लेम सुनो। नाकामुरा विल विन दिस गेम फॉर श्योर, $100 bet anyone। अरे बाप रे भाई। टेक दैट बेट, I'll take that bet. I'll also take that भाई। कि ट्रांसफर कैसे कर रहे हैं भाई ये बता दो। Come on Vidi भाई, let's go। रोहित जी बोल रहे हैं funny to see an accomplished blitz player like Hikaru have three undeveloped pieces. Very interesting observation there. मतलब Yeah, I that know. makes it two of us. You mean me and Vishi? Yeah, sure, of course. विशी सर को तो मैं क्या टिकू के साथ थोड़ी कंपेयर करूं। यार भाई कहीं ना कहीं से मैं वो फ्लाइंग थ्रोस पता नहीं क्या बोलते ना, वो हवा में चल रहा है, मैं खा लेता हूँ पता नहीं क्यों। अरे एक बार जाते हैं ना, एक बार गुकेश की पोजीशन पे। हाँ लेट्स गो, लेट्स गो। टाइम डिफरेंस बहुत बड़ा है वहां पे, तो लेट वीडी थिंक मीनवाइल। यहाँ पे भी डीप सोच, यहाँ पे भी डीप सोच, प्रग सोचते हुए अभी। That's interesting. I thought he would know exactly क्या करना है। I think he's just recollecting. I don't think कि out of prep होंगे अभी। आउट ऑफ प्रेप तो नहीं होगा, नहीं आउट ऑफ प्रेप तो नहीं होगा नाइट, क्योंकि F5 चाहे अलग मतलब थोड़ी सी वीकर चालो, बट लेकिन नाइट F6 वाज द ओनली मूव, ओनली तो पक्का कुछ ना कुछ तो याद रहेगा यहाँ पे। चैट हम नेपो की गेम भी देखेंगे। हम अभी कवर करी थी, क्रेजी मूव है, क्रेजी पोजीशन चल रही है। एंड एनीवन वाचिंग ऑन चेस.com पिन लिंक है, कम टू चेस 24 लाइव कैमरास चल रहे हैं अभी वहां पे। भाई कोई देख भी रहा है चेस.com इंडिया पे? है भाई, 80 लोग उधर भी है, 85 लोग है। जस्ट सैड। 65 सैड भाई, चेस.com इंडिया कह रहा है तुम चेस.com इंडिया में देख रहे हो भाई, दैट्स सो सैड भाई। क्या था नहीं यार, मतलब आप वो पार्टी मिस आउट कर रहे हैं ना, मेंबरशिप्स मिस आउट कर रहे हैं, सब कुछ हमारी बातें मिस आउट कर रहे हैं। है तो हम एक ही परिवार ना भाई। बिल्कुल। तो नाइट E5, नाइट F6, क्या सोच रहा होगा प्रग यहाँ पे? सहज भाई मेरा ना ऐसे हमेशा फैंटेसी रहता है कि ये नाइट को मैं उठा के रख दूं भाई, क्या वो ब्लैक सीधा मार देगा क्या? आई थिंक आई थिंक सो मार देगा क्या? आई थिंक सो। आई थिंक बहुत लॉजिकल है मारना मेरे अभी, नहीं तो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कि अगले 2-3 साल में मार दे, बट मारेगा जरूर। हाँ मैं भी क्वीन एट भी खेल सकते हैं, यहाँ से हट सकते हैं, मार दो कहीं ना कहीं तो मारना पड़ेगा। हाँ अब क्वीन से मार सकते हैं ताकि डेवलप हो जाए, मेक सेंस। बिल्कुल। आज राकेश, हाँ नहीं भाई एंड नीरी भाई कैन चैट हियर यू। हाँ सो श्रीनाथ भाई ने कहा है कि प्रग काफी स्मार्ट हो गए हैं विद हिज ओपनिंग चॉइसेस। आई थिंक आई एब्सोल्युटली लव श्रीनाथ भाई, बट इज ही यूजिंग इंटरनेट एक्सप्लोरर? भाई वो तो हमें पता है भाई बहुत टाइम से। लव यू श्री भाई। नहीं आई थिंक व्हाट ही इज सेइंग कि वो स्मार्टली हर प्लेयर के अगेंस्ट, बेस्ड ऑन हाउ मच ही नोज अबाउट द प्लेयर, उस हिसाब से ही इज चूजिंग द प्रॉपर ओपनिंग। अभी प्रिपरेशन तो सबकी डीप होगी यहाँ पे, बट लेकिन just what type of position to play, I think that's what he means. अच्छा कैटलन के हिसाब से। अच्छा मैं फालतू में इतना डीप हो रहा हूँ। एंड में जाके वही होना है। एंड कितना एक ना जस्ट टू काइंड ऑफ कंपेयर दिस, कितना एपिक मोमेंट है ना, ये लोग यही दोनों प्लेयर्स 10 साल पहले या 7 साल पहले कोई अंडर 10 या अंडर 9 नेशनल चैंपियनशिप खेल रहे होंगे, मतलब इन सम रैंडम सिटी इन इंडिया, इसका नाम किसी ने सिटी ने का सुना नहीं है, वहां बैठे होंगे फोर्थ बोर्ड पे ऐसे क्वीन ब्लंडर कर रहे होंगे, एंड नाउ दे आर सिटिंग इन द बिगेस्ट चेस टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड, जहां पे
इट्स बेसिकली टू डिसाइड कि दुनिया में नंबर 1 कौन है, एंड एलियन लाइफ पता नहीं है तो भाई यूनिवर्स में नंबर 1 कौन है, उस टूर्नामेंट के सिलेक्शन के लिए बैठे हैं. इट्स एपिक मैन, इट्स एपिक. एंड इट आल्सो सेज कि मतलब यू शुड हैव गुड फ्रेंड्स भाई. राकेश भाई अनफ्रेंडेड भाई जिनकी रेटिंग बढ़ रही है भाई यार, मतलब not even a chance to defend myself. But on that note, very very good point, Tico bhai. मतलब maybe for the first time in your life, but kidding. But chat जो टिको भाई बोल रहे हैं ना, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल. मे बी ही डिडंट नो इट, बट हमने स्टैट्स टीम ने कभी रिसर्च करा इनका मैचअप का. 4-3 Pragg is leading with 4 draws, but the first ever this game, rated game, क्लासिकल में was in 2014, जब ही गुकेश हारे थे प्रग से, और वो था अंडर-9 नेशनल्स इन पौंडीचेरी. ओह वाओ. तो फैसिनेटिंग स्टफ. मतलब टिकू भाई आपने मस्ती मजाक में बोल दिया, बट क्या ही सही निकला वो तुक्का. तुक्का एक चीज सही बोली. From that sense, what a story. Under-9 nationals. I mean, Under-9. You're competing basically at the same level. That's I mean, that's crazy. That's crazy to think of. Like this should make tomorrow's highlight, I think. मतलब very moving, beautiful story. And मतलब so amazing. And even maybe a few years before, सहज भाई was the world under-10 champion in chat. अगर किसी को नहीं पता होगा तो. बहुत साल पहले. बहुत साल पहले. But भाई, being a world champion is like a flex for life. मतलब लाइफ टाइम बोल सकते हो कि मैं एक बार तो वर्ल्ड चैंपियन था. अरे थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच भाई. मुझे ना एक चीज, सॉरी भाई, बट मुझे ना एक मीम याद आ रहा है जो करना चाहिए. अगर एक अंडर-9 नेशनल्स की फोटो हो ना, तो वो हाउ इट स्टार्टेड एंड हाउ इट्स गोइंग. अभी जो हमें फ्रेम दिख रहा है, how it started and how it, that would look amazing, I think. But भाई तभी किसको पता था ना ये दोनों इधर पहुंचेंगे, तो तभी किसने फोटो ही नहीं लिया. फोटो तो निकली है, पक्का निकली होगी, मैं बता रहा हूँ. फोटो होगी वो सारा सागर भाई के किसी फोन में पड़ी होगी भाई. सारी फोटो उन्हीं के पास है भाई. सारा उन्हीं के पास है भाई, सब कुछ. मतलब दुनिया में जितनी प्रग की पेरेंट्स की आदि इतनी फोटो नहीं होगी, सागर भाई के पास है. हाँ दिखाओ कौन सी फोटो भाई. हाँ यस. बहुत ही बढ़िया फोटो. तीनों इंडियन प्लेयर्स और सागर भाई सब दिख रहे हमको यहाँ पे. बहुत ही बढ़िया सागर. And I literally just said कि he has all the photos and there he is taking a photo. भाई सागर भाई की लंबर लंबी है भाई. बाप रे. वीडी भी लाइक मेरी भी खींचो, ऐसा एक्सप्रेशन लग रहा है. नहीं भाई मेरी भी खींचो, मैं भी पोज बना के बैठा हूँ यार. ऐसे कैसे यार. और वो मेरा इज ही कॉपिंग माय मेडिटेशन, ऐसे कैसे भाई. तो चैट, विल देयर बी अ कंपटीशन नाउ कि कौन सा मेडिटेशन करेगा, वीडी की गुकेश. आई थिंक पता लगे दोनों कॉम्बिनेशन, कोई 10 मिनट कर रहा है, कोई 11 मिनट कर रहा है. गेम खत्म हो गई, मेडिटेशन चल रही है दोनों प्लेयर्स की. इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि कुछ जो चल रहा है एक प्लेयर के लिए, उसको वो कंटिन्यू रखना है. तो रियली नाइस टू सी. इवन वो लेवल भी एक दूसरे से भी कुछ चीजें पिकअप कर रहा है, मतलब मेडिटेशन वगैरह. ऐसा नाइस टू सी दैट. और मूव्स तो नहीं खेल रहा है. चैट इज एब्सोल्युटली राइट दैट विदित इज बिलो नाकामुरा's टाइम नाउ. Vidit is below Nakamura. Can we go back to it then? Have a look. Yeah, shout out by chat. टिकू भाई, chat has been wonderful today, right? मतलब रोज ही रहती है, बट आज थोड़ा स्पेशल प्यार दिख रहा है. तो shout out to everyone for sticking with us 2 बजे भाई रात के. Grateful. Thank you everyone in chat. Okay, so फिलहाल, by the way, VD plays Bishop C7. So finally, एक deep सोच के बाद उन्होंने अपना बिशप बचाया है. That is one of the 2 good moves here for Vidit. But क्या अब हिकारू E5 खेलेंगे? And will he take the H7 pawn? He has to play. अगर E5 भी नहीं खेलेंगे तो सेम पोजीशन है, उसमें pawn भी नहीं है उनके पास.
तो E5 तो खेलना जरूरी है. Chat, if you are seeing a top left of our screen जिसमें है move timer, तो 32 minutes के बाद वीडी ने खेला बिशप C7, a very very long thing, मतलब हाँ, खाली कुर्सी वहां पे वीडी या की. E5 on the board भाई, E5 on the board, immediately played by Hikaru. immediate, yes. अब नेक्स्ट मूव तो थोड़ा जल्दी होगा. आई थिंक ये तो ऑलरेडी उसने एक्सपेक्ट किया होगा. But will he also be tempted with knight h5? Do you think he can also play knight h5 here? या knight d5 ही खेलेंगे सहज भाई? नाइट d5 ही लग रहा है मेरे को तो. नाइट d5 मतलब सेंटर पे लाओ. पॉन तो मरना ही है, बट लेकिन या नाइट d5 लुक्स गुड. अच्छा, कितने मिनट लेंगे वीडी यहाँ खेलने? ओ इमीडिएटली, ओ ही गोस knight d7. नाइट Why? वो ऑन वापस like सस भाई, हल्का सा सस ये मूव. हल्का सा so मैं कुछ देख रहा हूं और अपेरेंटली अब बिशप h7 इकलौती चाल है, खेलना ही पड़ेगा पहली चीज. सो लेट्स कंटिन्यू द वेरिएशन एंड सी कि क्या चल रहा है, क्या आइडिया. सो बिशप h7, किंग h8, और यहां पे अब व्हाइट के पास 2-3 मूव्स हैं जो उनको कुछ ना कुछ स्लाइटली वर्स पोजीशन दे रही है. पहली है क्वीन e4, which is, ये क्या चाल है? ये क्या चाल है भाई? f5 या f5, बिशप f5, सॉरी बिशप f5. भाई तू रहने दे, तू रहने दे. My bad, chat. Nice talking to you. Goodbye. Sorry. Bishop f5. Bishop f5. Queen h4 check. King g8. Bishop g5. Pinning the knight. Rook f7. एक से भाई ये Rook f7. Knight d6 attacking the rook. अगर मारोगे तो pawn से मारा, knight pinned. अब knight takes c5. Only move now is bishop takes c7, and now not taking it, queen to d7, and black is still better. नहीं. So chat, ये वेरिएशन देखते ही ये आपको मिलेगी वर्ल्ड कंप्यूटर चेस चैंपियनशिप में, soon coming up at a theater near you. क्योंकि यहाँ पे तो ये किसी एंगल में नहीं होने वाला. So this is the level of a calculation that's needed to play the best chess. तो यहाँ ब्लंडर आएंगे ही आएंगे. And by the way, he has taken it. Yes. King h8 played, but Hikaru bishop की तरफ हाथ ले जा रहा है. फिर से उसका हाथ जा रहा है वापस. And this is again the third time. तीसरी बार हो रहा है कि वो he's going for a move and then he's not sure. Queen e4 नहीं आएगा. chat. Definitely nervous तो है यहाँ पे. Let's continue it. किसी ने वीडी को देखा पीछे लर्क कर रहा है वीडी पीछे. ऐसे कोने से देख रहा है, ऐसे अंधेरे से. क्या उसने? हाँ, खेला कैसे? आई थिंक पीछे वो एक रेस्टिंग या लाउंज एरिया है प्लेयर्स के लिए, बट ही इज जस्ट बीइंग अलर्ट. उसको बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना. नहीं, मे बी विदित को पता है कि बिशप d3 या बिशप को टच करना खराब है, तो उसको वो जल्दी वापस आ रहेगा कि हाँ जल्दी. पॉसिबल यस. हाँ. सो बाय द वे, लेट्स से कि बिशप खेलता है हिकारू, जो आई थिंक वो खेलेगा. ये एक ह्यूमन चाल है कि भाई बिशप को वापस लाओ. एंड यहाँ पे वीडी इज अगेन बेटर अपेरेंटली. एंड ये दोनों किंग थोड़े थोड़े कमजोर तो है, बट वाइट डेवलप नहीं है. आई थिंक इट अगेन बॉइल्स डाउन टू दैट. एंड यहाँ पे e5 पॉन तो कैप्चर कर ही सकते हैं ना. आई डोंट सी एन इशू. साज भाई, इज देयर समथिंग? आई थिंक शी कैन टेक दिस, नो? I think b5. I like b5. b5 as well actually. Yeah, that also looks excellent. And एक बार ये नाइट हिलेगा ना, ये क्वीन अगर यहाँ आ गई तो खत्म भाई. फिर तो देर नहीं लगती भाई यहाँ. फिर देर नहीं लगती गेम खत्म होते हुए. So this is turning out to be such a crazy game, chat. किसी ने कोई पूछा है कि both kings are equally unsafe, क्योंकि मैंने ना वो h pawn वाला एक वो आर्ग्यूमेंट डाला था कि अगर h pawn नहीं है आपके पास तो आपका किंग अनसेफ है. अब इसने बोला कि अब दोनों किंग अनसेफ है. एक्चुअली दैट इज नॉट ट्रू, क्योंकि अनसेफ तभी होगा जब पीसेस अटैक कर सकते हैं. हाँ. और व्हाइट के पीसेस आप देखो लार्जली सारे के सारे क्वीन साइड पे. क्वीन भी क्वीन साइड पे, नाइट भी क्वीन साइड पे. सिर्फ वो बिशप बैठा हुआ जो भी अब वापस वो भी क्वीन साइड पे आएगा. कोई पीस है नहीं जो किंग साइड पे है, तो अटैक किससे करोगे?
हम्म। Whereas ब्लैक के पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं अटैक के लिए, तो आई थिंक ब्लैक का किंग ज्यादा सेफ है व्हाइट के किंग से। हाँ, अग्री। एक सॉच किंग कह रहे हैं डिंग लिरन निरंजन भाई है क्या? नहीं नहीं, आई डोंट थिंक सो भाई। निरंजन भाई कैजुअली। नहीं, बट एकदम ऐसे जेन्युइन क्वेश्चन था सोच के इनका, मतलब दिल से पूछा। Oof. Hikaru now again in deep thought. हिकारू कह रहा यार ये कैसे हो गया आज, है ना? मतलब दिस इज नॉट समथिंग वी एक्सपेक्टेड, नो? कि मतलब विदित ऐसे प्रेपरेशन निकालेगा इतनी लंबी, हिकारू इज डम्बफाउंडेड, व्हाट डू आई डू नाउ? दिस इज क्वाइट यूनिक, इट नेवर हैपेंस यार, नेवर एवर हैपेंस। भाई भाई ये क्या, मानिक भाई क्या लिख रहा है, ब्लैक इज द न्यू वाइट भाई। हम्म। चैट भी है। भाई बिशप भाई बिल्कुल। टिकू भाई 364 का क्या हुआ चैलेंज का? भाई 310 पे रुक गई चैट, बट एक और चैलेंज दूंगा। आई थिंक वो मेंबरशिप से मोटिवेट नहीं हो, लगता है समोसे निकालने पड़ेंगे मुझे अब अपने फर्नेस से। समोसे तो लगेंगे ना भाई। एक और चैलेंज करेंगे चैट बहुत जल्दी, इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स। पहले हिकारू मूव चल दे बस। मतलब अब ये भी सोचो ना कि उसका हाथ अभी गया था, मतलब उसने कुछ हाँ, देखा है अभी, उसने ही सॉ समथिंग जो उसको नहीं पसंद है, दैट्स व्हाई ही इज रिकंसीडरिंग एवरीथिंग। बेस्ट मूव आई थिंक क्वीन ई 4 है, जो मतलब जिसके आगे मतलब या इट्स जस्ट वॉर। उस उसके बाद देयर इज नो इट्स वे अ ही कंप्लीट फाइंड्स ऑल वॉर। ऑफ दैट, नो? कोई तरीका ही नहीं है क्वीन ई 4 वो निकालेगा। क्वीन ई 4 तो कहाँ से कहाँ देखोगे क्वीन ई 4 है, ऐसे हाँ ऐसे थोड़ी ना होता है। हाँ, दिस इज द रेसिज्म एंडेड कह रहा है एक बंदा। प्लीज हम नेपो का गेम देख सकते हैं क्या? कुछ कुछ चैट भी पूछ रही है। हाँ, एक बार नजर मार सकते हैं, तो हिकारू एक खेलता नजर मार है। लेते हैं। सो हमने जी ओ कुछ हुआ ही नहीं जीफे के बाद। नेपो वो सोच ही रहा G5 के बाद तो कुछ हुआ ही नहीं, ये है। तो वो यही शौक तो में ही है भाई। प्रॉब्लम थी। मस्त कॉफी पी रहा भाई, बस ये अच्छा है, बढ़िया यार। नेपो आई थिंक इज द मोस्ट फॉर्मली ड्रेस, सबसे बढ़िया ड्रेसिंग सेंस नेपो की लग रही है मुझे। आई डोंट नो, ही लुक्स लाइक रेडी टू एक्सेप्ट एन अवार्ड। नहीं नहीं, मेरे को अली रेजा का भी स्टाइल अच्छा लगता है। आई थिंक इट्स नाइस। हाँ वो तो है, हाँ। आई थिंक देयर बोथ ठीक है, क्वाइट। लेट्स गो बैक। आई थिंक अभी कुछ हुआ नहीं है द चैट। एक बार डू यू वांट टू लुक एट प्रग्स गेम, या फिर अभी विडी पे रहे? वीडी पे जाते पर हैं। खेला ही नहीं, नहीं। प्रग प्रग खेला नहीं है अभी। खेला ही नहीं, खेला नहीं है। Oh, he is still not. Oh, oh no, this is my move. Sorry. Like, sorry, plug by. Sorry there. I'm going back to Vidit's game then. Let's see. Obviously, he's the fashion designer. भाई ये बात तो है यार, ये बात तो है. He बिल्कुल has to flaunt बिल्कुल it, yeah. बिल्कुल, का स्टाइल काफी चैट, अच्छा है। जो लोग चेस कॉम पे घूम रहे हैं, अगर आप कंफ्यूज्ड है कि हम क्या शक्लें, क्या सूट, क्या हिकारू के एक्सप्रेशन से हम हंस रहे हैं, यू कैन क्लिक द पिन्ड लिंक। आप पहुंच जाएंगे चेस 24 के ऊपर, और जादू से आपको हिकारू दिखने लगेगा भाई। मतलब वीआर ग्लासेस अलग चीज है भाई, हम आपको जादू करवा रहे हैं भाई। क्लिक करो और देखो कैमरास। समर इन क्वीनी इफेक्ट फोर इज रियल। कहाँ क्वीनी फोर कहाँ देखेंगे यार? क्वीनी फोर थोड़ी ना होती है, ये तो एंड पॉसिबल। जस्ट टू रिमाइंड चैट, वेरिएशन क्या थी, क्या ही मतलब। क्वीन ई 4 F5, जहां मैं ये मारने लगा था, बिशप F5, बिशप F5, क्वीन H4, किंग G8, बिशप G5, रुक F7, नाइट। छोड़ो यार, दिस इज लाइक मतलब पता नहीं कहां पहुंच गए हम, कौन से वीराने में। थोड़ा ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया भाई सही में। भाई हिकारू फाइनली बिलो द 1 आवर मार्क। 6 मिनट की लीड, फिर से हल्की सी लीड है, बट बहुत इफेक्टिव लीड है, बिकॉज हिकारू को अभी 3 मूव तो कम से 4 मूव तो चाहिए सिर्फ पीस डेवलप करने के लिए। कम से कम 4 मूव। ब्लैक के सारे पीस डेवलप्ड है चैट, सारे। There's not a okay. Rook A8 is still kind of developed, yeah, connected ही है at least. So it can directly someday, come to H8. Who knows? By who knows? So ये तीनों पीसेस, एटलीस्ट ये दोनों तो भाई बिल्कुल अभी लगेंगे, और ये भी एक मूव वापस आएगी, तो 3 मूव तो कम से कम पीस चल रहा है व्हाइट। Has VD lost his advantage? No, 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 absolutely not. I think Hikaru की next few moves are very, very difficult. So I think advantage definitely वापस आने वाला है, मेरे को इसका 100% चांस लगता है।
भाई भाई चैट अलग ही टैंजेंट पे है, मतलब गौरव भाई बोल रहा है आई एम लुकिंग लाइक कुणाल शाह ऑफ क्रेड। मतलब गजब है कौन है भाई, वो? गजब। राकेश भाई फंडिंग दे दो यार मैं पंडे टू आई एम नूब्स ग्लैड मेरे प्लेइंग। वाले जोक्स बंद हो गए, आई एम सो भाई ग्लैड. आप आपको क्या बोल रहे थे वैसे? Oh, they were comparing me to this other famous Grover. सुनील Uh, ग्रोवर? नहीं, गुत्ती? कौन से ग्रोवर थे साहिल भाई? सुनील ग्रोवर? No, 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 not हाँ wasn't अश्नीर ग्रोवर हाँ Ashneer Grover. हाँ Ashneer ओ, Grover. मैं याद नहीं दिलाना चाहता था किसी को, by the way. It's okay. We can. नहीं आई डोंट थिंक यू लुक लाइक अश्नीर ग्रोवर। नहीं, वो लोग पूछ रहे, देखो देखो अब सारे ग्रोवर्स आ अब गए. सारे गुलशन अब ग्रोवर सारे वरुण ग्रोवर्स, कौन कौन great. आज That's दुनिया के सारे ग्रोवर amazing. के नाम जान जाएंगे हम सारे That's ग्रोवर भाई जो amazing. भी है भाई ये नहीं, ये तो विजुअली अनयूजुअल, ऐसे ऐसे मत लिखो यार, आपको निकालना पड़ेगा चैट से। भाई आई थिंक फेमस पर सुनील ग्रोवर याद आ रहे हैं राकेश भाई कि क्विज कर अबे करण जौहर कहाँ से भाई किस एंगल से भाई ये क्या चल रहा है चैट में? ग्रोवर क्लीवलैंड मतलब कोई भाई यूएस की बास्केटबॉल टीम है क्या कोई? यू लुक लाइक Cleveland सहज Cavaliers है ना? Cavaliers. हाँ, बास्केटबॉल क्या देखता हूँ. पता। That is the only sport I watch besides chess. यार कॉफी विद करण में भी ना सुपर चैट रखनी चाहिए इनको बीच में रैंडम क्वेश्चन पूछ रहे हैं ऑडियंस एक फिर से हम भी पूछेंगे यू लुक लाइक साहिल टिकुदन करण उसको करण जौहर को तब मजा आएगा यार ऐसे कैसे Actually, ये जो बोल रहा है ना, Grover is a blue muppet, the super Grover. You know who told me about this character for the first time in my life? We all know this person. We all know this person, and actually, विशी, we have विशी mentioned सर him. We have mentioned this person on this stream today. है? Today, today we have श्रीनाथ? mentioned. नहीं, नहीं. Think अच्छा bigger. मतलब कोई कोई अच्छा बड़ा आदमी है या कोई फालतू ऐसे? अच्छा बड़ा, बहुत बड़ा आदमी है. Yes. And he was the विदित? first one to call me that super Grover, like to my face. I was अरे नहीं क्या बोल रहे, मैं इतना अच्छा भी नहीं खेला, but he meant something else. And chat, you all of you, हम देख रहा हूँ कितने लोग थे, 350 लोग. All of you will know this person. All of you. सूर्य शेखर गांगुली? No. मैं आपको 2 और guesses देता हूँ, चलो. साहिल भाई, come on, one guess. मैं तो सबसे चलो वियर्डेस्ट नेम एक और सोच के रहा बाद हूँ ना, एक और के बाद आपको एक हिंट देता हूँ, ठीक है? एक गेस मार दो, आपको एक हिंट देता हूँ उसके बाद. अनीश नायक हैं? भाई अनीश नायक ये क्या रिस्पॉन्स था हैं? है नहीं. है भाई ये क्या रिस्पॉन्स था भाई रोस्टेड फॉर नो रीजन अनीश नायक कि किसी ने ना सेसमी स्ट्रीट पे कैरेक्टर भाई मेरे को सबसे पहले ही मेड मी अवेयर ऑफ दैट कैरेक्टर. एंड हिंट ये है कि वो बंदा इंडियन नहीं है. निजात अब्बासो? नहीं. गुड गेस तो, बट नहीं. इसका तो नाम कि भी नहीं who लिया हमने पता यार है वो प्लेयर yeah कौन yeah है. chat so question is who called Sahaj Grover as Super Grover for the first time, Like, and we I'm have pretty taken sure if his I name look on back, stream. अगर मेरे पास वो था, I'm pretty sure I can find proof of this also. मोहम्मद Pretty sure. यारोफ नहीं. Actually, though, there we have it. अनीश It's गिरी Anish. ओ ऑफ कोर्स अनीश It ही was होगा यार Anish. ऐसे नाम तो अनीश ही लगता It है was during Tata Steel, जब वो C group रहता था ना, so I played there once, and like right after one of the games, अच्छा, they were like, do you know Super Grover? And I was like, ये कौन है भाई? तो उसने मेरे को कुछ वीडियोस दिखाई उसकी. Yeah, that's how I remember. गॉट इट गॉट इट Anish अनीश ही OP होना भाई, था यार Anish OP हो जाए chat में. Anish, okay. What a guy. Sahil look like Willy Wonka. भाई ये कौन है? चॉकलेट फैक्ट्री वाला. नहीं भाई वो नहीं हूं मैं भाई वो कुछ भी है टोपी मतलब. टोपी वाला ना जो वो बंदा है हाँ हाँ, ये भाई ये विदित या प्रग से मूव करा यार, नहीं तो ये मतलब अपन कुछ भी बात कर रहे हैं फिर अभी ऐसा. पुनीत सुपरस्टार देखिए नहीं अबे सॉरी यार नहीं सॉरी सॉरी यार नहीं. भाई ये चल क्यों नहीं रहा Oh यार हिकारू भाई God. चल दो यार तेरा साबुन स्लो है क्या? जाए क्या उसके गेम पे? ब्रेक पे, ब्रेक पे जाए.
भाई जा सकते राकेश भाई ने कितना एक्साइटेड कहा जाए क्या उस ब्रेक पे नहीं मतलब एटलीस्ट यार मैं तो ब्रेक लेके आता हूँ थोड़ा मतलब हाँ भाई भाई राकेश कब भाई, से ऐसे अकड़ गए ना मतलब हाँ बिल्कुल राकेश भाई, कैमरा ऑन छोड़ के जाओ, ब्रेक पे होके आओ, तब तक के लिए मैं और साज भाई हैंडल करते हैं भाई। कैमरा ऑन कैमरा ऑन, हाँ यस भाई। ठीक है भाई शर्ट में चेंज करना भाई, आजकल ये कलर पहनना पड़ता है। अरे नहीं गुड अरे लक चेंज हो म्यूट जाएगा उससे। म्यूट भी तो वॉचिंग, करना पड़ेगा भाई म्यूट भी तो करना ऐसा क्या कर पड़ेगा रहे हो भाई? अरे भाई मैगी बनाऊंगा तो आवाज आएगा ना अवन ओहो का अच्छा। तो म्यूट कर दो ना। कर दिया भाई, कर दिया। सो चैट, वी आर हियर विद सहाज एंड राकेश की दीवार। लेट्स हैव अ लुक एट द गेम। फिलहाल के लिए फुल प्रेशर में है हिकारू नाकामुरा, वर्ल्ड नंबर 3, कैंडिडेट्स नंबर 2 विदित क्लियरली ड्राइविंग सीट में। सहाज भाई, कितने मूव में गेम खत्म होगी? क्या गेस लो भाई, कितने मूव में, चाहे रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट, कितने मूव्स लगेंगे ये गेम खत्म होने में? ये गेम खत्म होने में आई थिंक लगेंगे, लेट्स मेक अ वेरी स्पेसिफिक गेस, ठीक है, आई से चैट तुम भी गेस करो भाई, कितने मूव्स लेंगे इस गेम में खत्म होने? 15 मूव हो चुके हैं मैं एंड कहता हूँ हाँ 37 moves. This game will टोटल, finish in 37 moves. Yes. सो 20, तो बेसिकली 22 मूव्स फ्रॉम नाउ। मैं रिजल्ट नहीं बता रहा बट 37 moves. That's it. ठीक है, 37. सो आपको क्या लगता है? आई एम गेसिंग दिस गेम विल बी ओवर बाय मूव, आपने को कितना बोला? 37 ना? 37. आई विल से Why? What's the natural looking move for Nakamura? I think natural looking move यही Bishop D3 जब Bishop को वापस लेके आओ, वो थोड़ा वही that's the natural response here. हाँ तो वो हाँ अच्छा हाँ। नहीं है, वो अच्छा नहीं है हिकारू के लिए. तो That's not the तो best move. चैट 80 मूव्स, 12 मूव्स, 5 मूव्स, 60 मूव। आई एम गोइंग टू गो विद 32 मूव्स। लेट्स गो भाई, 32 चलते हैं। 32 और 37. ठीक है, डन. हाँ डन। हिकारू गॉट द मिड गेम क्राइसिस, ये क्या है भाई? that's a good comment. नाइस। नेक्स्ट 10 मूव में खत्म हो सकता है, ऑनेस्टली नेक्स्ट 7 मूव में खत्म हो सकता है यार। यहाँ पे एक गलती एंड बेसिकली हिकारू इज लॉस्ट, फिर तो हम सिर्फ इंतजार कर रहे होंगे यार कि रिजाइन करने का। मैं कह रहा हूँ 37 या 32. ठीक है, I'm good with either. पर ये बहुत बहुत डिफिकल्ट है ना, आई मीन इफ यू थिंक अबाउट इट, कि जब नेचुरल मूव बेस्ट मूव नहीं होती ना, तब ब्लंडर्स होते हैं, तब मिस्टेक्स होती हैं डेफिनेटली, क्योंकि उस टाइम समझ नहीं आता। एंड साज भाई, इट्स ऑलवेज डिस्ट्रैक्टिंग अगर ओपोनेंट चेयर के सामने से खड़ा हो कैसे हिल रहा है भाई, मतलब हिकारू कह रहा होगा यार ये क्या भाई, यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ आज। अरे मतलब छोड़े, मतलब लोअर लेवल पे ना 2500 2600, मतलब आई एम सेइंग लोअर एज इन जैसे 2200 से 2400 एट दैट लेवल और समथिंग लाइक दिस इज वेरी कॉमन. लोग उठते हैं बैठते हैं, दे कीप डूइंग दैट ओवर एंड ओवर अगेन. आई थिंक दिस इज आल्सो अ टैक्टिक इन अ वे. चैट बाय द वे, हिकारू की एक्यूरेसी अभी के लिए 94.8 और वीडी की 97.0, सो अभी के लिए पूरा बढ़िया वीडी आगे चल रहे हैं, परफेक्ट. Has Pragg made a move? Let's also check out that. My laptop is stuck now. Awesome. Am I there, Sahaj bhai? Can you hear me? देख पा रहा हूँ आपको, बिल्कुल. So जो कल हुआ था लैपटॉप में सेम हुआ है. My screen is black. Your screen is black. Oh, lovely. I can't see anything. Lovely, I can't. But we can see you. We can see you. We can see everything. अच्छा बढ़िया, तो जब तक लैपटॉप मेरा फिक्स होता है तब तक के लिए इसी गेम पे हम अटके हुए हैं. बढ़िया बढ़िया बढ़िया. No worries. Yeah, but I wish I could take a photo and send you. It's all black. My laptop is black. My screen is black. Everything is black, bhai. अच्छा, अब वहां पे वो स्नैप दिखा रहा है. हाँ, अच्छा अब वो रिफ्रेश हो रहा है. ठीक है, बढ़िया बढ़िया. हाँ, got it. Exactly. Oh snap. Let's go, bhai. Let's refresh it quickly. So Grey Hat said when VD said अभी बर्तन धो रहा हूँ, बाद में अपोनेंट धोऊंगा, he really meant it. Did Chesscom crash या फिर मेरा चल रहा है कुछ? What is the case here? क्योंकि मेरा जूम तो चल रहा है. नहीं, मुझे आवाज आ रही है आपकी. हाँ, कैन वी हैव फुल स्क्रीन में भी रंजन भाई तक के लिए, कैमरा के लिए तो फिक्स होता है. ग्रे हैट का कमेंट बहुत 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 बढ़िया था. क्या कमेंट है भाई? अरे जाके देखो ना भाई. मैं अभी कुछ नहीं देख सकता. अच्छा, I'll read it for you. When VD said अभी बर्तन धो रहा हूँ, बाद में अपोनेंट धोऊंगा, he really meant it. Oh, nice. Oh yes, yes. Nice. One.
हम फुल स्क्रीन देख रहे हैं ना अभी यार, आई होप। राकेश भाई, अगर आपका लैपटॉप ब्लैक हो जाए तो क्या करना चाहिए लाइफ में? नया लैपटॉप लेना चाहिए। भाई वो तो, हाँ निरंजन भाई। हाँ तो फुल स्क्रीन हमारा वीडियो फुटेज चल रही है ना, वीडियो हिकारो की? यस यस। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, फिर बढ़िया भाई, फिर लाइफ सेट है अपनी। भाई ये और हो क्या गया हिकारू भाई लेकिन? ने मूव भी नहीं खेला, तो टेक योर टाइम टिकू भाई। Rakesh हाँ bhai, there is some solid concern for you from Mr. Anshu Pandey. Can you just look at the comment? राकेश Serious मैगी concern. देख लो नहीं तो जल जाएगी। ओ यस भाई, चैट इतनी प्यारी है ना, मतलब क्या बोलूं भाई। Yeah, मैं तो just so भाई, you know, बुडापेस्ट में एक्चुअली इंडिया के बाहर रहने का ये सबसे बड़ा लाइक नेगेटिव पॉइंट ये है कि मैगी वो प्रॉपर वाली नहीं मिलती, यू नो। ओ यस, अनलेस यू That is a टेक big योर, point. करेक्ट, वो तो है। That is a big और point. मतलब बट चैट इतनी प्यारी है, बट हमारे को होस्ट टिक्कू भाई ने जो कारनामे किए, उसकी वजह से पानी उबालते हुए ही वापस आना पड़ा मुझे। जब मैंने सुना कि कि भाई ब्लैक ब्लैक हो गया है, तो मुझे आना पड़ गया चैट। भाई तो ये हो क्या रहा है? सो आई कैन सी माई स्क्रीन रिफ्रेशिंग, बस रिफ्रेश ही हो रहा है भाई, कुछ हो नहीं रहा लेकिन। और नेट चल रहा है क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ। सो अच्छा, कोई योर बंदा, स्क्रीन इज स्टिल ब्लैक क्या, या फिर आपको कुछ दिख रहा है? नहीं, नहीं दिख नहीं रहा आपको? स्क्रीन इज नाउ ओके, बट आई कैन ओनली सी इट रोलिंग। कैन समबडी चेक चेक की चेस कॉम काम कर रहा है ना? इज इट ओनली मी? हाँ हाँ, यार, मुझे दिख रहा है आपका आपकी स्क्रीन chess.com काम कर रहा है। भाई प्रॉब्लम तेरे में ही, आई मीन तेरे कंप्यूटर में ही है। हम्म। अरे यार चल जा भाई टिकू भाई, प्लीज यार। ऑल्ट ऑल्ट कंट्रोल डिलीट करके कुछ कर सकते हो क्या? देखो मतलब भाई कोई। ऐसे कुछ नहीं ध्यान नहीं, से कमांड अभी बोलो भाई। कंट्रोल और डिलीट थोड़े ना होता है, अभी कंट्रोल शिफ्ट एस्केप है। हाँ That's the command bro. Command change हो गई राकेश भाई, come on, you या should know. सो एनीबडी इन चैट हु प्रेसेस दैट विल बी गेटिंग a course, a Google course on computers, not a diamond membership. हाँ, वो बोर्ड बाय अभी द आ वे, रहा है, just wait a आ रहा है little बोर्ड, bit. आ रहा है रास्ते में भाई, Hikaru होगा रुक। Hikaru is making a move. Hikaru is making a move. Oh yes, let's chat. Be Let's serious. see, let's see, let's see, let's see. Chat, by the way, what is this? Rakesh, what do you suggest? What do I do? I can't see anything. It's just refreshing. अरे आप बंद करके आ जाओ ना वापस, मतलब बंद करके आ कंप्यूटर जाऊं, रीस्टार्ट कर, चलेगा? कंप्यूटर रीस्टार्ट कर लो। रंजन भाई, विल इट वर्क? ठीक है, आई विल बी बैक इन जस्ट 1 मिनट चैट, ठीक है? Okay, या ठीक है, okay, ठीक okay. है, बढ़िया बढ़िया। Hikaru is going for something. He's playing. Okay, bishop to d3. Looks like it was bishop to d3. बोर्ड नहीं दिख ओ रहा है ना यस, आपको? नहीं नहीं नहीं, बोर्ड नहीं है चैट को भी आपको? नहीं दिख रहा साइडली। अच्छा 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 अच्छा, बिशप टू d3 गाइस, हमने ये सोचा था पहले। We had looked at this one. This was the natural looking move, which is not necessarily the best for white. Yeah, true, and I think Queen E4 was the best move, but which had a crazy variation. Yeah, yeah. तो Queen उसके e4 तो चलते खेलना हिकारू ने impossible. जो एक ह्यूमन हम्म वे से रिप्लाई किया, वो है बिशप D3 के बिल्कुल साथ। बिल्कुल बिल्कुल। बिशप so Queen e4 was impossible. Bishop d3, अगर अगर याद हो राकेश भाई, तो उसका हाथ जा रहा था बिशप पे। सो यस मे यस, बी ही थॉट करेक्ट। फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि उसको कुछ नया दिखा, फिर उसके बाद उसको उसका हाथ वापस चला गया कि आप बिशप नुकर को नहीं टच करना। देन ही थॉट फॉर एटलीस्ट अनदर 20-25 minutes एंड देन ही प्लेड द सेम मूव अगेन। करेक्ट, एंड इफ यू आस्क मी भाई, 43 मिनट्स टू गो, मतलब बेसिकली गुकेश का हिसाब है 40 मूव आपके पास, 24 मूव के लिए। सो हम्म नॉट अ लॉट, मतलब 1-1.5 मिनट पर मूव इज वेरी लेस एट दिस स्टेज। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ऑल्सो अगर ये भी सोचना थोड़ा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि आधा घंटा सोचने के बाद सेम मूव चलना। सो वो इसलिए खेला कि ही फाउंड द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ही सॉ, या फिर उसको और कोई चाल नहीं दिखी? आई थिंक द लैटर, उसको उसको और कोई चाल उसमें नहीं थोड़े दिखी। डीमंस दिखे, और हम्म फिर उसने थोड़ा और ज्यादा सोचा कि, और उसको ना उसका ये भी नहीं दिखा, मतलब एंड में लाइक समथिंग बेटर।
तो इन अ वे इट इज फ्रस्ट्रेटिंग इफ यू आर दैट प्लेयर कि अरे आपको टाइम भी बर्बाद कर लिया और चाल भी वही खेलने पड़ी है सर. और निरंजन भाई प्लीज ओपन द गेट, ओपन द गेट्स, ही इज वेटिंग. Oh, ये ओह अच्छा 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 अच्छा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया. तो बिशप D3 ऑन द बोर्ड. क्या देख रहे थे हम इधर? नाइट C5 या B5 था ना कुछ तो इधर. B5 वाज द मूव. फिर उसके बाद नाइट टेक C5 मारना था एंड ब्लैक इज डूइंग अमेजिंग आई थिंक. इसके बाद नाइट E5 सीधा भी मार ही सकते हैं. oh, here he is. हेलो हेलो हेलो, गेस हुज आ गया हियर? भाई, आ गया ये गणेश नायक. वापस शैतान आ गया, शैतान. आई एम बैक चल चैट. गया. हाँ भाई चल गया भाई, बढ़िया भाई, सब चल गया भाई, लाइफ सेट है भाई, नाम हैप्पी. बढ़िया बढ़िया. हाँ तो वी आर बैक चैट एंड अपेरेंटली चैट मिस्टेक्स हो रही हैं. जल्दी से बोर्ड चालू करते हैं एंड देन वी विल लुक एट व्हाट्स हैपनिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल चैट, आई थिंक आई विल गो टू वीडीज गेम क्विकली. क्या चल रहा है वहां पे, कुछ हुआ है क्या अभी? बिशप D3 खेल चुके हैं हिकारू. ओ सॉरी, मैं शेयर ही नहीं किया, माय बैड. बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया. नाउ इट्स फाइन. राकेश भाई जस्ट थिंकिंग मेरा पानी उबल गया. हाँ भाई चलो, भाई पानी सब मतलब सब उबल गया भाई. वी आर बैक एंड वी हैव द बोर्ड एंड हिकारू हैज ब्लंडर्ड. बिशप D3 खेला है उन्होंने और हमें चेस को हम चीख चीख के कह रहा है कि उस वो क्वेश्चन मार्क है. सहज भाई F5. क्यों क्यों है ये क्वेश्चन मार्क? कैसे वीडी एडवांटेज गेन करेंगे, क्या लग रहा है? आई नो कंप्यूटर F5 कह रहा है बट मुझे B5 बहुत लॉजिकल लग रही है. यहाँ पे B5 खेलो और जस्ट E5 के पॉन को मार दो और इसके बाद दिस इज लुकिंग सो 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 डेंजरस. व्हाइट का किंग इतना अनसेफ है. और बट डू घास यू का थिंक कि हिकारू ने वो देखा नहीं होगा? अरे पॉसिबल ही नहीं, ऑफ कोर्स देखा होगा बट एज यू सेड ना कि उसको डीमंस थे एंड देन इवेंचुअली जैसे ओके चलो लेट्स गो फॉर इट एनीवेज क्योंकि उसको कुछ बेटर नहीं दिखा. आई थिंक दोनों राइट को समझ राइट. तो आ गया होगा कि हिकारू की पोजीशन खराब है ऑब्वियसली. और वीडी हैज गॉट, डिड वीडी गेट अप? नहीं नहीं नहीं, पिछला वाला था. हम्म. 20 मिनट का डिफरेंस है चैट, विच इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एट द एंड. एंड ओनली यार 15 लोग मूव्स पूछ डन. रहे हैं इज F5 सेफ. सो आई मीन जस्ट यू नो F5 ऐसी चाल ना बहुत अननेचुरल लग रही है मुझे क्योंकि आप क्या प्रिवेंट कर रहे हो, आप क्या, आपका पॉइंट क्या है खेलने का. तो इस तरह की चाल आई थिंक इज वेरी 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 अनलाइकली. सहज भाई, व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि जो आइडिया है विच इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. I mean it has So to be right क्योंकि it's something crazy is coming but it's मुझे ये रियलिस्टिक नहीं लग रहा है. What's the idea साहिल भाई? so it's so ridiculous कि मतलब I understand why मेरा लैपटॉप क्यों अटका, प्रोसेस नहीं कर पा रहा होगा. I'll tell you why. So EF6, I mean obvious move. एंड यहाँ पे नॉर्मल आदमी कहेगा यार मैं मार देता हूँ यार प्यादा, चलो नॉर्मल मूव. नहीं नहीं मुन्ना नहीं. आइडिया है नाइट टू D5. अरे भाई चाहते क्या हो भाई, चाहते क्या हो भाई? That is crazy. ये बहुत this crazy है. allowing this check, king G7 and apparently VD is winning this. It's winning for VD. Queen H4, rook H8 आ रहा है and there is almost no defense. Best move here is G3 जो मतलब 100 साल में नहीं होने वाली भाई, allowing bishop F3 and stuff. अच्छा किसी ने ना चैट में क्वेश्चन पूछा था कि ब्लैक का किंग अनसेफ है कि नहीं क्योंकि अब देखो ब्लैक का किंग एकदम कंप्लीटली एक्सपोज था जब वो G7 पे था राइट. क्या हम वो पोजीशन पे जा सकते हैं क्या? एक सेकंड, जस्ट फॉर अ सेकंड. हाँ ये तो पोजीशन है. किंग अब देखो ब्लैक का किंग एकदम पूरा एक्सपोज्ड है इस पोजीशन में और व्हाइट का किंग थोड़ा सा प्रोटेक्टेड है. बट देखो बिकॉज व्हाइट के पीसेस बिल्कुल भी किंग साइड पे नहीं है, इट इज कंप्लीटली सेफ. ब्लैक का किंग को कोई डेंजर नहीं है यहाँ पे और व्हाइट का किंग इज वेरी 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 अनसेफ. ब्लैक का घर एक्सपोज्ड है. मेरे घर एग्जैक्टली. एंड दीपेश भाई, यस बिल्कुल बिल्कुल लाइव है भाई फ्रॉम टोरंटो. एंड भाई ये जो लाइन था ना, ये इट वाज ब्रूटल. मतलब ये गेम के सारी लाइंस ही इतने कॉम्प्लिकेटेड है ना भाई, मतलब क्रेजी. यार राकेश भाई, एक मेरा आई थिंक हमारे एडिटर सुन रहे होंगे तो एक अलग सजेशन है भाई कि इस गेम का एक अलग वीडियो बनता है एनालिसिस का. मतलब दिस इज जस्ट फैंटास्टिक. मतलब अगर कोई बन पाए, मतलब है ना, दिस इज जस्ट फैंटास्टिक मैन.
but I would add something कि if VD wins तो हाँ, of course, of course, of course, of course, मतलब हाँ, आप भी सोच लो ना कि ऐसे एपिक मोमेंट था बिशप S3 वगैरह हुआ, अगर ये हाँ, फिजल आउट हो गया ड्रॉ में ना, तो अपन छह भाई, महीना याद रखेंगे, राकेश भाई, बट अगर ये आपको, जीत गया ना तो अपन 10-15 साल याद रखेंगे ये। राकेश भाई, हम्म। देखो ना, आई लव यू आपको पता है, बट ये ड्रॉ नामक काला शब्द मत लाओ यार। इस अरे पोजीशन मैंने से, क्या लाया, नहीं 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 भाई, मैंने इस पोजीशन ड्रॉ का सोचना ही नहीं है भाई, सोचना ही नहीं है यहां से, तो आई वुड एक्सेप्ट ग्रेशियस डिफीट देन गो फॉर अ डल ड्रॉ। क्या ही गेम रही है भाई ये, मतलब क्या ही बिल्कुल गेम है ना। सो लेट्स गो भाई, फुल अटैक मोड। ट्रू ट्रू। भाई संकेत भाई, नहीं यार मैगी बनी नहीं, टिक्कू भाई बनाने कहाँ देते यार, टाइम ही नहीं देते। अब जाके बना लो, अब तो सही है। भाई भाई एक्चुअली अब वो तो मेरा, सबसे मसाला तो अब तो गेम में आ रहा है, और अब मुझे नहीं उठना, डन। वीडी डीप सोच में, चैट फुल सोच में, क्या करें, अब सिर्फ 12 मिनट की एज है उनके पास, एंड करंट पोजीशन ये है चैट। और जो हम देख रहे थे F5, जो बिल्कुल करेक्टली साहज भाई ने कहा कि मतलब इट इट व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू, बट आइडिया था कि EF6 के बाद नाइट टू D5, पॉन से पॉन, किंग से पॉन, एंड ये किंग पूरा ओपन है बट कोई अटैक नहीं हो रहा। रूक H8 आ रहा है, क्वीन H4 आ रहा है, बिशप इज हियर, और यहां पे व्हाइट इज लॉस्ट। सो यहां पे क्या वो F5 खेलेंगे, और अगर वो खेलते हैं तो क्या हिकारू मारेंगे। अब साहस भाई, अगर F5 नहीं तो आपने कहा B5, इस मेरे मूव को तो का आइडिया, B5 ही लॉजिकल लग रही है यहाँ पे बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। सो नाइट आई थिंक विल कम टू E3 नाउ, आई थिंक दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, राइट? So do we take this pawn? I assume that's the idea. Knight takes 95, E5. हाँ काफी logical. So what does white बिल्कुल। play here now? ही विल प्ले F5। भाई अपने मॉड्स को बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस, सुदर्शन जी बोल रहे F5 आएगा। भाई मैं will lose my mind अगर F5 आया ना, and then if यार Hikaru कोई takes, कोई किसी कोई इधर कोई, आई थिंक देयर इज अ गुड कमेंट। क्या क्या क्या? सोजवाल डंगर just said हिकारू का वीडियो टाइटल। Reference के लिए chat, you had to be there half an hour ago. Instead, don't miss any moment of the stream हाफ chat. एन आवर नहीं भाई, उसको दो 2 घंटा हो गया मतलब। भाई in my laptop terms half an काफी hour ही हुआ है ना भाई। टाइम स्लो चलता है उसमें। भाई, नसीब से तेरा लैपटॉप मतलब नहीं चल रहा। गुकेश इज 10 स्टैंडिंग टाइम प्रेशर, सलमान खान भाई 30, Really? भाई 30 ही मिनट है, सही बोल रहे हैं सलमान भाई। सो जल्दी से आते हैं इस गेम पे वापस, जैसे ही वीडी चलेंगे। लेट्स गो टू प्रग अगेंस्ट गुकेश, जहां पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड गेम हमने देखा था। नाइट E5, नाइट F6 देखा था हमने, एंड क्वीन टू C2। जो सहज भाई, यू नो व्हाट, मैं कहना चाहूंगा क्लाउड, लेकिन मुझे लग रहा है मिस्टेक भाई, बीइंग ऑनेस्ट। ये हो कंप्लीट सकती है मिस्टेक। ये हो सकती है मिस्टेक, ये बिल्कुल हो सकती है मिस्टेक, पर अभी भी उसने चालें हो गई है ना, इसके बाद तो 2 मूव्स हाँ, और हो गए। तो ब्लैक ने खेला हाँ C6, उनकी तरफ से भी एक क्वेश्चन मार्क, उन्होंने ये पॉन दे दिया। ही इज करेक्ट होपिंग कि करेक्ट, भाई, प्रग हैड ब्लंडर्ड, करेक्ट चैट। अब आई थिंक प्रग हैड ब्लंडर्ड, क्योंकि ये इस साल को बहुत टाइम भी हो गया था ना। पर लेट्स फोकस ऑन 38 समथिंग एल्स कि भाई वी हैव 22 मूव्स फॉर गुकेश इन 29 मिनट्स इन अ वेरी 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 कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन। आई मीन आप देखें तो आई मीन सिर्फ पॉन्स ही एक्सचेंज हुए हैं, पीसेस सारे बोर्ड पे, सारे पीसेस है बोर्ड पे। तो ये पॉन वीक है कि स्ट्रांग है? बिकॉज आई थिंक द गेम बॉइल्स डाउन टू दिस पॉन कहीं ना कहीं, ये वीक है कि स्ट्रांग है भाई? कि क्वीन E8 ऑन द बोर्ड। यार ब्लैक का फॉलो अप करना कितना मुश्किल है ना यहाँ पे। या आई एग्री, पीसेस थोड़े से ऐसे ऑकवर्ड से गुकेश के लिए मूव्स निकालना बहुत मुश्किल होगा यहाँ पे। एंड 29 या मिनट हाँ, जैसा वाइट कैन जस्ट प्ले रुक E1, मतलब रुक को डेवलप कर लो, सिंपल 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 रखो चीजें। ब्लैक को कुछ करना है समथिंग क्रेजी टू लाइक टू फाइंड सम ब्रीदिंग स्पेस, नहीं तो राइट, कुछ ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पे। और प्रग लुक्स लाइक प्रग इज गोना, नहीं नहीं नहीं, मेरे को लगा प्रग खेलने वाला इमीडिएटली। ये कितना सुंदर एंगल है ना, वहां पे यू हैव प्रग गुकेश, वहां से हल्का सा अलियजा, वहां से हल्का सा हिकारू, क्या मस्त एंगल है, लाइक दिस। आपने आपने ये मतलब इफ व्हाइट प्लेज रुकी 100, आई मीन कुछ भी ब्लैक खेले ऐसा हाँ लगता है कि मतलब सब सब कुछ ही ब्लैक के लिए खराब है, राइट?
मतलब पोजीशन लग विजुअली ब्लैक के लिए खराब लग रही है. बिल्कुल. हाँ मतलब it's like knight on the rim, bishop blocked by the pawn, bishop right now defensive, king is also not ओ completely ओ safe. अंग्रेज, ओ अंग्रेज, नाइट ऑन द रिम नहीं, क्या बोलते हैं उसको? कोने में घोड़ा. है? नहीं नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, गलत गलत कंप्लीट कर रहे हो भाई, गलत कंप्लीट कर रहे हो. मैं अभी भी दिल्ली से हूँ. काम करे थोड़ा भाई, काम करे थोड़ा भाई, काम यस करे यस थोड़ा. करेक्ट. बट या एंड सो भाई, भाई VD has played Sahaj का move B5 on the board. B5 है. हाँ, Knight B5 looks E3. logical. भाई साहब, F5 was difficult chat, बहुत भाई मुश्किल chat थी. Hikaru has हिकारू blundered. ने कुछ ब्लंडर What किया. what what? Hikaru Knight has E3 played. blundered. Knight Yes. takes E5 Let's and go to bishop Hikaru. E2. Bishop E2 Oh, question this mark. is- What is the problem here? Oh, So this first is of all, chat, obvious move. This would be the obvious try, but I don't think this is it because now White's position is much better than it अरे was. नहीं Queen नहीं, D6 नहीं. Queen D6 Oh, Idea, Queen knight D6. F3 check, Queen Knight H2 F3 mate. but Rook D1, Rook D1. Knight F3 तो फिर भी Oh, Knight F3 come on. Osh, Bishop F3, Queen H2 अरे ये check, तो King F1, आंख बंद करके खेलूंगा मैं. Bishop F3, तो G कैमरा F3, बदल and गया, now कैमरा बदल गया, अरे भाई full board, कैमरा बदल गया निरंजन भाई. अच्छा भाई क्या फॉर्मल लैंग्वेज सॉरी बोलते हैं भाई सॉरी ये? सॉरी. अरे हिकारू भाई गेम दे दो भाई, दे दो ये है चल. भाई VD OP chat. Let's go. हिकारू को हरा देगा ये. That's crazy. Let's वो भी go. ब्लैक से. लड़के, come on. I think he senses it. मुझे लगा उसको सेंस हो रहा है. हाँ, यहाँ पे अभी कुछ है. उसको काफी सेंस हो रहा है. तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर मी टू कॉल इट अ डे कि मैं रुक जाऊं भाई. कंफ्यूज्ड हूं मैं. राकेश भाई आई वुड से कि 1 घंटा खींच लो भाई. 1 घंटा खींच लो भाई. भाई मैं अगर गलती से वीडियो नहीं जीता ना, चैट बहुत गाली देगी यार. ये 1 घंटा खींच लो भाई, पक्का 1 घंटा खींच लो. 3:30 तक खींच लो भाई. 1 घंटा भी नहीं, 45 मिनट्स. अरे यार, इट्स बीन अब की तो आई थिंक वीडी का गेम होगा. अरे जाके आप मैगी बना लो ना, फिर उसके बाद आ जाओ. then you'll feel energized. नहीं, आई थिंक और कोई और भी जुड़ने वाला था टिको भाई की, क्या सीन है उसका? हाँ वो भी था, बट देयर आर सम इश्यूज देयर, तो इसलिए. अच्छा, तो मैं रुक जाता हूँ. इफ पॉसिबल, अगर लग रहा है तो इफ पॉसिबल. या कूल. सो बाय द वे, राकेश भाई पानी पी लो. we have the board. Oh yes, this thank is you the current position. Gaurav Sharma, thank you. And by the way, एक क्वीन D6 मूव है जो बहुत बहुत उम्दा चाल. एक और चाल है यहाँ पे, वो है F5. F5 फिर से वही चाल. अगर हम यहाँ मारेंगे तो F takes G4. अपेरेंटली इसमें भी काफी कुछ ड्रामा हो रहा है. क्योंकि कहीं ना कहीं वही सेम आइडियाज है. नाइट आ सकता है गेम में, क्वीन आ सकती है गेम में, बहुत सारे आइडियाज है. सेम बिशप, वही ये बिशप में है यार असली पीस. इसने पूरी गेम ऐसे बना के रखी हुई है ना. राकेश भाई मैगी खाते खाते कमेंट्री. दैट्स आल्सो पॉसिबल. We need you to stay awake राकेश. अरे भाई ये अलग ही प्रेशर आ गया खाली. बड़ा दिन है भाई, बड़ा दिन है. मतलब ये गेम जीत. राकेश भाई मेरा गैस है, ठीक है, मेरा गैस है कि अगर आप रुक गए तो 3:30 तक वीडियो जीत जाएगा. हंसा क्यों रे तू? हंसा क्यों? हंसने में क्या भाई, मैं हंसता रहता हूँ भाई. आई हैव अ स्माइलिंग फेस. ऐसा ही क्या है. ऑलरेडी 3:30 हो गए क्या? कहीं मतलब कोई टाइम गलत देख रहा हो क्या? नहीं भाई, मेरा स्माइलिंग फेस है भाई, वो चलता रहता है. नहीं, कुछ तो तेरा और सहज का मिली भगत लग रही है मेरे को. दोनों हंस रहे हैं. नहीं. सहज बस मेरे लेन जोक्स में हंसना सीख चुका है, और कुछ नहीं है. भाई, why this feels like cricket World Cup going on? All credit goes to you three. Superb commentary. Fantabulous. Mind-boggling. Thank you so much. Visually unusual. राकेश भाई, जब तक वो 3 पीसेस में से एक एक्टिवेट हो तब तक मत जाओ. सही है भाई, ये भी सही है. Those 3 pieces haven't moved at all.
guys. Rook on A1, knight on B1 और bishop C1 कभी भी नहीं हिले आज तक. और I think हो गए हैं total 18 moves already in Nakamura versus Vidit. F5 F5 भाई, F5 on the board. F5 आ गया बोर्ड पे भाई. Let's go. Oh, has he played it? F5 is on the Oh, it's board. on the board. Yes, It's on the it's board. on the board. Best move in the position by the best player in the best of form, and Hikaru Nakamura in deep, deep trouble. And Yes. by the way, chat, यहाँ पे ज्यादा choices है भी नहीं उनके पास. I think he has to take this. He has to take this because chat piece develop कर रहे हैं ना. क्या develop करोगे? Knight D2 तो possible नहीं है. Right. Maybe you're right. ये game 37 moves नहीं चलेगा अब. Maybe Because you're right. the only developing move I can see is knight A3, which is like भाई काहे ही develop करना है उसको. So यहाँ पे queen D6 आ जाएगा फिर से with the idea of also queen H6 sometimes and also this idea. So ये this is very very difficult. Practically मुझे लग रहा है this game is already lost. क्या opinion है साहज भाई और राकेश भाई आपका उसके ऊपर? I think practically this is already lost. अरे हम I body also language देखो ना विदित की भाई. Yeah. विदित की body language देखो. He लग रहा है उसकी शक्ल देख के it's winning. I mean he's moving. You know he's looking very pumped. I feel it is really lost. मतलब, I mean, even Tikku would win from black. I mean, against all of us. So, this looks over right now. Yeah. But I think this would be the cleanest game from start to finish. मतलब, with it dominated. शुरू से. Yeah. Incredible भाई, incredible. Thanks to Cloud. ये Cloud. Thanks to Cloud. है भाई. भाई सूर्या भाई को मिष्टी दोई रसगुल्ला और डैनियल वोकाटूरो को पिज्जा आज हमारे तरफ से भाई. Exactly. किसी को. Man. So that means if Vidit does win, touch wood, we're not jinxing it, he will be leading the candidates after round 2. That is for sure. चाहे joint हो या अकेला हो, he will be leading. That is confirmed. Wow. और also कितना shattering होगा हिकारू के लिए white से second round में हारना. बिल्कुल. हाँ. कितना shattering होगा ये. एक सवाल बनता है यार इस पे. And I would ask राकेश भाई this because वो आजकल हिकारू का psychology जैसे अच्छे से कर रहे हैं. हिकारू वापस आ पाएंगे क्या उस हार से अगर वो हारते हैं तो? Do you think he would still have chances to win the candidates? 100%. Because वो जो उनका ट्रांसफॉर्मेशन था from being a 2800 player, फिर वो आ गए थे बीच में 27, 30, 40 के बीच में थे. फिर स्ट्रीमिंग की वजह से जो उनको कॉन्फिडेंस मिला है, so he's basically at nothing to lose throughout. So he definitely will make a big comeback, I feel, even though he might lose this. And I mean, ये सब हम मजाक मस्ती तो कर रहे हैं, but big kudos to Hikaru because pretty sure he'll still make a recap video for this, and then he'll still come back fighting for tomorrow's game and उसका भी recap करेंगे. So it's not easy, guys. मतलब being a top level player and a full-time streamer, hats off to Hikaru. Hey, someone is saying Vaishali lost. What? Is that? नहीं हल्का सा माइनस है भाई, लॉस तो नहीं. यार दो लोग बोल रहे हैं. Okay, I'm going to check that chat. Oh, but we should go there because she has only 5 minutes remaining. Because that's a big point. Oh, and I think we are getting word from Canada that Vaishali has actually indeed lost. Oh, really? Oh, yes. Oh, because chat, look at Vaishali's position. It does feel like it's hanging by a thread, no? It's really hanging by a thread. Oh, Zhongyi has won two games out of 2 now. So she is dominating. That seems like the Nepo of the women's section, from last time. Yeah, definitely a Nepo level start, Yeah. Difficult to break that chat. Delay hai 15 minute ka chat in the actual games being played and the moves on the board. So that means ki Vaishali basically lost a few moves from here, like not too long. So Zhongyi dono game jeet chuki hai and she is the clear favorite now in the women's section. अब यहाँ पे आए हैं
we should have a look at Humpy's game, which right now I would say slightly worse. Yeah, White has a pass pawn. क्या लग रहा है यार सहज भाई? थोड़ी सी खराब है, बट लेकिन कोई ना कोई परपेचुअल निकल आएगा या कुछ ना कुछ निकल आएगा. क्वींस है ना बोर्ड पे, तो सब सही है. So you're hoping this will be a draw, yeah? I mean, I think that's the best result that can come out of this position. Definitely. I think इसके आगे मुश्किल है. इसके आगे बहुत मुश्किल है. Got it. So that means कि chat women section में we'll have most likely 1 point for Humpy and half point for Vaishali. Not the ideal start for Vaishali at least. Humpy ये दोनों black pieces थे. So I don't think she'll be too disappointed अगर 2 draw मिल जाए तो. I think that sounds okay. Right? Oh yeah, and if we just go to Tan's game, we see the blunder actually. जो वैशाली ने किया. Oh, she played F5 was the blunder. Oh. And apparently chat यहाँ पे knight f4 आ रहा है as a move. Then you can also play g6. You can completely open the king side. कोई play नहीं है. And black नहीं खेल सकता g6 क्योंकि knight f6 check आ रहा है. यहाँ पे mate in 4 है actually. Correct. So this is the problem. So yeah, I think Vaishali has lost this game and it's not a surprise. ये knights out of play लग रहे हैं. कोने में लग रहे हैं. कुछ कर नहीं रहे. और ये knights तो king की मतलब लगा रखी है यार basically. नहीं वो स्टार्ट से पहले भी पोजीशन थोड़ी खराब ही थी आई थिंक. और वो मतलब डिफिकल्ट है ये डिफेंड करना, स्पेशली टाइम प्रेशर में भी. 5 मिनट, आई मीन या इट्स अ बिट डिफिकल्ट. Oh भाई, Pragg has blundered, guys. Really? Yeah, Seriously? yeah, confirmed. भाई ब्लंडर हो रहे हैं क्या यहाँ पे? Oh, so queen e8 देखा था हमने. Big update. Knight comes to f7 question mark. और सहाज भाई और टिक्कू के मूव्स खेलोगे ना तो भाई ब्लंडर ही होंगे. उसने पनौती यही मूव सजेशन पूछा था उसने शायद. यार बट नाइट f7 क्यों? नाइट f7 क्यों? तो रुक f7 तो थोड़ा क्या पता यार. टिक्कू भाई ने एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन पूछा था, एग्जैक्ट सेम. ब्लंडर करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है भाई. ये तो यार सिंपल है, मारना ही है, मारना ही है. एंड इट्स आल्सो वर्स वर्जन भाई बिकॉज़ ऑलरेडी ये मूव आ चुकी है. तो ये पॉन बहुत सेफ है. इट्स अ वर्स वर्जन ऑफ व्हाट आई प्लेड. So now there is no counterplay whatsoever and I think यहाँ पे Gukesh should convert this comfortably. क्योंकि ये जो pawn chain है ना, बहुत ही ऐसे वो कोई play ही नहीं बचेगा white के पास, ऐसा मुझे लग रहा है. Definitely. I don't know. Knight f7 just feels wrong. रुक बहुत बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा ब्लैक. हाँ. बहुत कंफर्टेबल क्योंकि पॉन भी नहीं है e6 पे, नाइट भी चला गया. हाँ. एंड वो जो चक्कर में ना ये टेक्स में 2-3 मूव और कट जाएंगे तो जो 40 मूव का है टारगेट गुकेश का वो भी रीच हो जाएगा बहुत जल्द. Manik bhai is saying Sahaj bhai will still call it cloud. अरे भाई ये तो अच्छा एक ये मिल गया हमको सहज भाई के लिए फ्रेज. So chat, yeah, I think Gukesh will play this very quickly. Let's give him a few minutes. क्या विदित की गेम में कुछ हुआ है क्या? I'm still curious. Has Hikaru played? Not yet. So question for everyone actually, chat को भी और राकेश एंड साज भाई को भी, कौन सी गेम पहले खत्म होगी, विदित वाली की प्रग गुकेश वाली? नहीं विदित वाली. ना विदित का आई थिंक बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा. विदित का एकदम कंसिस्टेंट गेम, एकदम नाइस. So that means कि मतलब you are expecting a clear win now. किसी को डाउट नहीं है अब? नहीं मतलब हिकारू ऑफ कोर्स हाथ पैर मारेगा, थोड़ा डिफेंड करेगा, बट looks very F4 on the board. F4 on the board. Okay, this feels wrong to me. This feels wrong क्योंकि अब ये डायगोनल ओपन हो चुका है. तो बहुत नीचे है. It's -5. बार तो छलांग मार ली उसने. ये 32 मूव्स भी नहीं जाएगा फिर तो भाई. बट एक सेकंड, क्या बिशप b6 एंड यू कैन नॉट टेक. f4 अगर आ जाए. Bishop b6 chat, and if you take, I assume there is like
some f4 या takes f4 something. Oh, not even f4, just knight d5. Vidit has arrived, chat. Vidit आ गया board पे. He knows it. He feels it. He पता मैं तो senses it. खत्म. There you go. Another sip of water. No OJ today. So, पूरा कामली ऐसे सिप किया है, आराम आराम से, कोई स्ट्रेस से नहीं. आई थिंक ही अंडरस्टैंड्स कि भाई ये गेम जेब में है. बिल्कुल. I think तो Hikaru petition होनी very चाहिए कि tense. उसको ऑरेंज जूस नहीं पीना चाहिए कभी भी. हाँ, हम this is सबको pretty petition obvious. डालनी चाहिए, I think. हाँ हाँ. I think this is over ना, मतलब खत्म ही है अभी. खत्म है अब क्या तो. ही हाँ. क्या ही कर लेगा. मतलब इमेजिन it's यार, just हिकारू व्हाइट पीसेस से 19 साल के अंदर डेड लॉस पोजीशन में. कहाँ दैट इज सो क्रेजी. he got surprised, I think. सच I वो think मुझे वो C6 ना, वो C6 में क्या अब मैं बोलूंगा कि वो क्लाउड प्रेप थी तो सब सब वो वापस रेड चैट C6 चालू ना. है. मुझे लग रहा है 3 घंटे पहले जो आपने बोला ना कि D5 के चक्कर से जगह पे सिंपल बिशप E3 के तरफ आपका हाथ जा रहा था. So that could have been like the savior for white. हाइंडसाइट में डेफिनेटली, क्योंकि बिशप बाहर ही नहीं आया. Exactly, you were बिशप playing the bishop out 12 moves ago. हाँ, वो तो अभी भी यहीं पे ही है. हम अभी भी सैल्यूट वाला वो फोटो डाल सकते हैं, क्योंकि अभी भी तीनों पीसेस उधर ही हैं. हम तीनों ने फिर से कर सकते हैं. राकेश भाई, आई हैव अ डाउट. ठीक है, आप 3:15 Yes. 3:30 जब भी जाओगे, डू यू थिंक तभी एक पीस चलेगा यहाँ से? नहीं, क्योंकि ये गेम ऐसे ही खत्म होने वाला है. लाइक बिशप B6 FE5 या हाँ. 1-2 ट्रेड होंगे. एंड हाँ. Hikaru is, I think, just he will just resign in disgust. Like Hikaru expects इतना high level of play from himself. I don't even think ऐसे checkmate या +5 तो भाई ऑलरेडी है. मतलब at his level he knows he's lost. मतलब ऐसा है. एंड एक्चुअली ये +5 से बुरा लग रहा है देखने में, बहुत बुरा लग रहा है. टाइम भी Correct, ज्यादा correct. है, ऑब्वियसली टाइम भी ज्यादा है. आई मीन पोजीशन भी कंप्लीटली विनिंग है. I agree. एंड कुड ही प्ले समथिंग एल्स आल्सो? इसके अलावा कोई और ट्रिक है क्या यहाँ पे? बिकॉज़ आई वुड आल्सो लाइक टू टेक एंड मूव द नाइट समवेयर. इवन दैट लुक्स वेरी लॉजिकल. नो, ऐसा कुछ गलत नहीं लग रहा है देखने में. आई डोंट नो वेयर आई मूव द नाइट दो. मे बी नाइट D3. Yeah, that looks good. Yeah, but bishop B6 I think ज्यादा खेल दिया बिशप B6. बिशप B6 on the खेल दिया board. क्या? Oh, on the Oh, board. Oh, बढ़िया. Over. brilliancy, let's go. That's over. Brilliancy, भाई. बढ़िया. Over. हिकारू का शक्ल देखो भाई. He's like, ये क्या हो गया भाई? ओ ये तो मैंने नहीं He's देखा. shaking his head. He's shaking his head. Oh, He he's sees not it. happy. He sees it. Maybe उसने knight D5 मिस कर दिया. Can we have full screen if possible? नहीं भाई, this would be perfect. That's crazy. Yes, let's focus on Hikaru, यार. He's shaking his head in disgust, literally. वही शब्द आ रहा है दिमाग में. Oh, Yeah, that's bad. विद्युत का बॉस पोस्ट चल रहा है यार, है ना? बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया. Oh, will he resign? चार लगा रिजाइन करने वाला है. ऐसी फीलिंग आ रही है नहीं, पूरी. और 2-3 चाल खेलेगा. और 2-3 चाल खेलेगा. Oh भाई, that is crazy. Hikaru के reactions. But bishop B6 was obvious. I mean, that's the first one that comes to mind. So मुझे समझ नहीं आ रहा कि यार actually Beating Hikaru in 19 moves is black. chat, जब भी वीडी जीतेगा ना, तो पूरा वीडियो पे स्पैम होना चाहिए यार. इतना स्पैम होना चाहिए कि अगर गलती से वीडियो कोई फैमिली मेंबर या वीडियो देख रहा हो ना, वो मतलब ऐसे लगे भाई ये क्या हो, इतना सपोर्ट तो कभी देखा ही नहीं है. क्योंकि हिकारू को, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रिमाइंड यू, हिकारू वही है जिसने कहा था वीडी लैक्स द नर्व टू फिनिश इट ऑफ एट द एंड. याद है? सो यही वो मोमेंट है, फिनिशिंग हिम ऑफ. दिस इज द टेस्ट. एंड हिकारू के finishes off in style. जैसे वो वर्ल्ड कप फिनिश था. डर गया मैक्सिम के लिए भाई. बट चैट मूव नंबर क्या है? कोई बताएगा मुझे प्लीज? 19. तो फन फैक्ट सहज भाई और टिक्कू भाई, सिंस 1951 जब ये फर्स्ट कैंडिडेट्स हुआ था, तब से लेकर आज तक सिर्फ 4 गेम्स हैं
जो 20 मूव से पहले खत्म हुए डिसाइसिवली इन द कैंडिडेट्स। बाप So, रे, सीरियसली वाओ। तो सोच लो कितना मुश्किल है ये चीज करना जो विदित कर रहा है। अच्छा, उन 4 गेम्स में से ब्लैक हम्म, कितनी बार जीता था? 2 बारी। गुड क्वेश्चन, तो गुड इट्स 2 क्वेश्चन। and 2। वाओ। या 2-2। कोई चिराग भाई सेइंग वीडी सर्कलिंग हिज स्प्रे। नाइस, ओह यस यस। नाइस। बट या अनदर क्वेश्चन उससे रिलेटेड कोई पूछ रहा था कि व्हाई इज वीडी गेटिंग अप एवरी टाइम एंड वैनिशिंग बैक स्टेज। तो सहज भाई क्या आप हमको बताना चाहेंगे क्यों? कि व्हाई इज वीडी वैनिशिंग? उसको पता है या वो क्यों विनिंग है। वो घूम रहा है क्योंकि ही नोज, आई मीन दिस इज आई थिंक अ यूनिवर्सल साइन एटलीस्ट फॉर चेस प्लेयर्स के अब विनिंग है, अब घूम सकते हैं, अब औरों के गेम से फोकस करो, पानी ओके। पियो, मौज करो, यू नो, इट्स टाइम टू रिलैक्स। You can see हिकारू, from their body language. I mean, Hikaru भी हिकारू, अपना head shake कर रहा है, and yeah, they're both accepting that something seriously went wrong. या सो या यू नो व्हाट, एक काम करते हैं, जल्दी से ना चारों गेम का राउंड अप करते हैं, देखते हैं कि वीडी को कौन ज्वाइन कर सकता है एट द लीड, गुड आइडिया। है ना? लेट्स सो लेट्स डू दैट। ऑल द 4 गेम्स पहले स्टार्ट Ooh, करते हैं Gukesh didn't take भाई। But yeah, go wherever you want टिकू हाँ भाई, मैं हाँ। सिर्फ बोल रहा सो नाइट F7 बिशप C8 खेला गुकेश ने, अच्छी क्या चाल हो तो रहा है, है आज? एंड रूक F1, दिस इज द करंट पोजीशन चैट, एंड अभी भी वही ऑप्शन है उनके पास। सो फिलहाल के लिए गुकेश बेटर, बट बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड। तो लेट्स अज्यूम कि अभी ये इट्स नॉट अ क्लियर आंसर है, बिकॉज टाइम में भी गुकेश 30 मिनट पीछे हैं, और उनको अभी 20 मूव खेलने हैं 22 मिनट में, 21 मूव एक्चुअली। बिशप E6 मार सकते हैं क्या यहाँ पे या नहीं? बिशप E6 also Is that also possible या नहीं? Is the yeah, knight H6 check or something? What's going on? हाँ 9 6 होगा आई थिंक, या इट विल एटलीस्ट मेक इट सिंप्लीफाइड, या थोड़ा सा। थोड़ा सा okay. राकेश भाई अटक गए क्या? राकेश भाई इतनी शरीफ शक्ल में अटके है ना। राकेश भाई, No, राकेश भाई, I राकेश think उनका उनका या राकेश भाई का लैपटॉप पता नहीं, वो खुद खुद पता नहीं लैपटॉप भाई सो गया भाई इनका। ओए या कारू की आंखें देखो भाई, उसको विश्वास ही नहीं हो रहा है। I चैट, think अंटिल वी फिक्स दैट आई विल लेट यू नो। फिलहाल के लिए गुकेश की गेम काफी काफी इंटरेस्टिंग। नेपो की गेम में अभी डेड इक्वालिटी चल रही है, एंड कारुआना की गेम में कारुआना अभी बेटर है। सो कारुआना एंड गुकेश कुड जॉइन विदित। फिलहाल के लिए विदित इकलौते प्लेयर जो क्लियरली विनिंग है, क्लियरली विनिंग है, एंड हिकारू यहाँ पे स्ट्रगलिंग। उनके एक्सप्रेशंस देखने लायक, फुल प्रेशर के साथ, उनको पता है कि क्या रिजल्ट होने वाला है इस गेम का। ज्यादा यहाँ पे वो अब कुछ कर नहीं सकते, इट्स टू लिटल टू लेट। yeah. Sayaji, should Hikaru have had a better team of seconds? I am not sure who his seconds are. I'm not fully sure, but I think he probably has the best team of seconds that money can buy, basically. अरे राकेश जॉइनिंग फ्रॉम द फोन, क्या हुआ राकेश भाई? या अरे आपके जैसे लैपटॉप क्रैश हो गया, सो भाई आई विल बी। आज लैपटॉप लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, कहीं यूएस में बने क्या? भाई नहीं ये सब क्लाउड की वजह से। क्लाउड, यस, या यार भाई लैपटॉप मेरी, में क्लाउड नहीं यूज करना चाहिए, लाइक भाई मेरा ब्रेकअप हो गया क्लाउड की वजह से। बट आई थिंक या नो अदर मूव्स राइट, बिशप B6 के बाद बिशप ये। B6। बट हुआ क्या लैपटॉप को? अरे वो ओवरहीट हो गया आई थिंक, बहुत ज्यादा चीजें अच्छा लोड अच्छा ले। हाँ हाँ। अच्छा, सो आई मेरे साथ कैन भी कम होता है बैक यार, बट एक 10 मिनट मेरे साथ ब्रेक भी की बहुत वजह होता है। से। तो आई गॉट दिस वन ऑफ दोस एक्सटर्नल फैंस, उसके लिए वो स्टैंड में रह दिया, तो उससे एकदम ठंडा रहता है। हाँ करेक्ट, वो चाहिए। वीडी कैसे बट आई पानी थिंक पी रहा है? आप लोग राउंड अप पे थे ना, मतलब डिड यू हाँ, फिनिश so दैट? so now I think VD पानी पी रहा है, that's the frame chat. So what we're going to do is we're going to look at all the 4 games for 1 minute 30 seconds each, देखते हैं कि क्या रहेगा। So सबसे पहले I think हमारी कारुआना against अब्बासोव, this is the position currently, and board आ रहा है क्या? I think yes, this is the board, and अगर हम देखें तो काफी काफी इंटरेस्टिंग है। व्हाइट के सारे पीसेस किंग साइड पे हैं, फुल प्रेशर ऑन F6, टाइम भी नहीं है उनके पास ये पॉन मारने का, एक पॉन 3 पॉन कंट्रोल कर रहा है। बिशप
knight, मेरे को तो knight थोड़ा better लग रहा है at least. Sahaj bhai can elaborate for sure. So yeah, do you think Caruana will convert this? I would say like yeah, that there is a बहुत अच्छा chance है कि वो I mean definitely black suffer जरूर करेगा इस position में for a long time. That is 100%. पर I think अगर दोनों sides best moves खेलेंगी तो I think it's not winning. I don't think it is winning, but I think it is impossible कि इतना pressure के ऊपर आप mistakes ना करो. I mean black के पास कुछ ज्यादा खेलने को है नहीं क्योंकि दोनों साइड से you are kind of blocked. और क्वीन साइड पे वो B4 का पॉन इतना स्ट्रांग है ना आप उसको मार सकते हो ना मतलब आप उसको हटा सकते हो एंड F6 का पॉन इज ऑल्सो वीकनेस ऑन द किंग साइड जस्ट लाइक दोनों साइड्स में व्हाइट ने एकदम कंट्रोल करके रखा हुआ है पूरी पोजीशन को तो आई थिंक जब आप कहीं पे भी नहीं खेल सकते ना तो इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू काइंड ऑफ कैरी ऑन इससे ना वो एक दिस इज अ कोट फ्रॉम अ मूवी इट्स कॉल्ड मिस्टर नोबडी आई डोंट नो आपने देखी है I mean, the quote is something like this. He says that when you can choose between good and bad, that's an easy choice to make. But when you have to choose between bad and bad, then everybody makes a mistake there. So this is kind of like this, because आप कुछ भी खेलोगे, your position is going to be bad, and in that moment, people make the most mistakes. Got it. Right. Well, lesser evil choose करना है basically. Exactly. Which one is more bad and which one? Because they're both bad. So. God. And also यहाँ पे ऐसा भी है ना कि बराबर के प्लेयर है. Clearly white is the stronger player. So यहाँ पे बहुत मुश्किल रहेगा. I do think Caruana can convert and with time हमें पता लगेगा चैट क्या होने वाला है. So फिलहाल के लिए Caruana in the driver's seat. सेकेंड गेम है नेपो अगेंस्ट फिरोजा जो हमने गेम देखी थी और ये कुछ सुधरी नहीं है साहब क्या हो रहा है ये गेम नहीं सुधरी भाई ये वैसी ही नॉटी है लेट्स हैव अ लुक एट द न्यूज़ आफ्टर G5 chat so queen d2 IR next which in itself feels so in chess to be a world champion means your name etched in the history books alongside greats of the past. Dingley Ren a deserving world champion. Thing is overtaken by emotions. What a match this has been. But for 8 men and 8 women, it's here and it's now. As the road to the World Championship goes through Toronto, Canada. Over 3 weeks, chess's elite compete for their right to challenge for the crown. For some, it's a story of redemption. He knows this might be the last few moves of his world championship. Oh my God. There's experience. There's youth, and for one nation on the rise, fortune could favor indeed. An amazing day for Indian chess, making their way into the Candidates tournament. Only one will advance. Only one will play for it all. Watch the 2024 FIDE Candidates on chess.com. History, prestige, legacy. Words synonymous with the most coveted title in chess. To be a world champion means your name etched in the history books alongside greats of the past. Dingley Ren a deserving world champion. Thing is overtaken by emotions. What a match this has been. But for 8 men and 8 women, it's here and it's now. As the road to the World Championship goes through Toronto, Canada. Over 3 weeks, chess's elite compete for their right to challenge for the crown. For some, it's a story of redemption. He knows this might be the last few moves of his world championship. Oh my God. There's experience. There's youth. And for one nation on the rise, fortune could favor indeed. An amazing day for Indian chess, making their way into the Candidates tournament. Only one will advance. Only one will play for it all. Watch the 2024 FIDE Candidates on chess.com. History, prestige, legacy. Words synonymous with the most coveted title in chess. To be a world champion means your name etched in the history books. Yes. We are live chat. I think we are live. Let us know when you can see us, hear us. मेरी आवाज इतनी बुरी नहीं है chat. बता देना यार. Hello chat. We are back. Yep, I can see video on the camera now. I can see video on the camera, bhai. He's there. बढ़िया.
You can hear us क्या? You can hear us. बढ़िया, we are back. Yo chat, we are back. Sorry for chat the को problem कंफर्म there. करना था एक बारी. हाँ, they can hear us. They can hear us. We can't see. हाँ भाई, अभी आ रहे, शक्ल भी आ रही है हमारी chat. Don't worry. It's all going to be okay. But we can see VD and Hikaru. Hikaru realizing the moment of his downfall. The moment जहाँ पे he realizes कि जो words है उनको काटने को आ रहे हैं past के. VD will finish off Hikaru Nakamura soon. He will win with the black pieces. जो अचीव करना कैंडिडेट्स में नेपो ने किया था लास्ट टाइम, डिंग को हराया था ब्लैक पीसेस से राउंड 1 में, एंड वही टूर्नामेंट जीता था. सो ब्लैक से जीतना माइट बी द सीक्रेट कोड, द सीक्रेट हैक टू विन द कैंडिडेट्स. एंड वीडी भाई फुली एग्जीक्यूट करते हुए उसको. कल भी स्पेक्टैकुलर गेम खेली थी बिशप G4 मूव के साथ, जहां गुकेश को ड्रॉ लेना पड़ा, और आज तो ड्रॉ भी नहीं मिल रहा हिकारू को. Beautiful game, bhai. Beautiful game. Let's see the final few moments of this. कैसे हिकारू रिजाइन करते हैं. Maybe वो he has resigned also. Delay 10 मिनट का, but I still want to see Hikaru resign. I want to see the final moments. कैसे VD win करते हैं. उनकी body language इतनी comfortable. I have not seen a single nerve in any cell of his body. Beautiful composure. VD seems to be in top form. What do you think, Rakesh bhai? बिल्कुल 100%, and it's a honor and a pleasure to see our countrymen win. और वो मजा ही अलग है हिकारू जब ही रिजाइन करेगा ऐसे. हाँ, वो मोमेंट एपिक है यार. Yeah, I think I'm just joining from the laptop also. हाँ, ask. Niriba is going to be mad, Rakesh bhai. Let's see the expressions. बिल्कुल भाई, उसी का वही देख रहे हैं. राकेश भाई is back. बढ़िया, awesome. Yes, let's go. चैट एक चैलेंज करते हैं. लेट्स गेट टू 400 लाइक्स. जल्दी 400 लाइक कर दो, 420 लाइक कर दो भाई. एक बंदे को समोसे मेरी तरफ से यार. मैं बता रहा हूँ भाई, लाएंगे समोसे. इमेजिन करो समोसा हाथ में, उस पे ग्रीन चटनी ऊपर, साथ में भाई तुम्हारे मुंह में से गरम क्रंच क्रंच मस्त फील आएगी भाई. लेट्स गेट टू 420 लाइक्स. एक बंदे को समोसे मेरी तरफ से. लेट्स गो चैट, जल्दी से लाइक करो. 420 लाइक होने चाहिए. 420 की 400. 420 भाई, 400 इज नॉट इनफ. Okay. Come on, हिकारू भाई. हिकारू कहेगा भाई मेरे उसका तमाशा बना रहे हो मेरी हार का भाई. समोसे खा रहे हो भाई, शर्म नहीं आती तुम्हें भाई. 17 मिनट है सिर्फ, और 17 मिनट में 21 मूव खेलने हैं. आई थिंक दिस इज मूविंग अप टुवर्ड्स रेजिग्नेशन. बिल्कुल, and we can expect a resignation any moment, at least in Hikaru versus Vidit. हाँ. Niri bhai, are we on camera? I think we are on camera, no? Ninja link same है क्या Niri bhai? बता देना एक बार. हाँ. So Hikaru is saying like every other employee resigns in April. ये क्या है भाई? ऐसा क्यों भाई? ऐसा employee resign करते हैं क्या अप्रैल में? सुबह 4 बजे. अरे भाई, तो सुबह 4 बजे अगर तुम्हारे यहाँ पे स्टोर में कोई बंदा जागा हुआ है तो तुम्हारे यहाँ समोसे आएंगे भाई. ऑल डिपेंड्स. अपने जाओ स्विगी जोमेटो पे देखो, एक बंदा भी अगर तुम्हारा स्टोर ओपन है तो हम कर लेंगे भाई. फाइव स्टेजेस ऑफ डिनायल. भाई कौन से स्टेज पे है अभी? आई थिंक नंबर 4 पे आ चुके हैं वो. हाथ आने वाला है बाहर मतलब एक सामने. Yes, I think very close. We are close to the end. चैट, डू नॉट फॉरगेट कि अभी प्रग गुकेश भी चल रहा है. वो भी क्रेजी मैच है, वहां पे भी आग लगी हुई है बोर्ड पे. दोनों लोग ब्लंडर कर रहे हैं. सो ये तो अभी मतलब दिस इज, हर राउंड में कुछ ना कुछ तहलका मच रहा है भाई, हर राउंड में. ओके, आई एम कॉलिंग इट कहते हैं अनीश गिरी. उन्होंने ट्वीट किया है अभी, आई एम कॉलिंग इट. कॉलिंग व्हाट भाई? एक कॉल मुझे कर लो अनीश भाई. लेट्स गो. No, I think he's calling यही विदित का ही win. हाँ, ऑफ कोर्स भाई. विदित संतोष प्रिपराटी बोला है उन्होंने भाई. बिल्कुल वीडी की प्रेप से सब इम्प्रेस्ड. बहुत ही लाजवाब प्रेप थी. चैट, अगर वीडी ने ये सब क्रेजी मूव्स ना खेली होती ना, आई वुड से आज के हीरो तो चैट है भाई. रात को 3 बजे क्रेजी सपोर्ट. थैंक्स अ लॉट चैट. ग्लैड टू हैव ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. ये हिस्टोरिक मोमेंट्स है यार.
ऐसा हो सकता है कि आज से 5 साल Yes. बाद 10 साल बाद तक कोई इंडियन वर्ल्ड चैंपियन हो जो कार्लसन की तरह डोमिनेट कर रहा हो और वो कहे मेरी लाइफ का चेंजिंग, मतलब ना एक लाइफ में चेंज तब आया था व्हेन आई वन द कैंडिडेट्स इन दिस ईयर 2024। तो यार दिस कुड बी हिस्ट्री। कारू कह रहा है भाई क्या हिस्ट्री हिस्ट्री कर रहे हैं भाई यार दिमाग खाली है मेरा यार, हार रहा हूं मैं यहाँ पे। सच यार, actually, like he is trying to find out कि भाई where did it all go wrong. That was when he sat down to play Vidit. नहीं, that was when he said कि Vidit cannot finish him भाई off. भाई भाई Hikaru is winning this match, कह रहे हैं Kateryna. Yes भाई, I am also dating Anna Hathaway next. Yes, both things are equally happening भाई, बिल्कुल। वीडियो भाई का तुम्हें पोस्चर नहीं दिख रहा है भाई? क्या पोस्चर है ये पोस्चर इज अ पोस्चर ऑफ अ गाय हु इज जस्ट विनिंग। हिकारू के एक्सप्रेशन कितने मस्त है यार। भाई I think वो सोच रहा है कि कभी रिजाइन करूंगा। लुक एट भाई वीडी भाई, कैसे उसको इट्स लाइक फुल दे रहा है। एक वीडी का एक्सप्रेशन है। ये कुर्सी है भाई, ठीक है। मुझे तो बेंड होना पड़ा भाई, वीडियो को बेंड होना नहीं पड़ रहा, बट या ही इज जस्ट इन हिज एलिमेंट राइट नाउ। एब्सोल्युटली। ओ हिकारो नॉट लाइकिंग, उसको कुछ भी मजा ही नहीं आ रहा कोई भी मूव में, कोई भी। असली मैं तो साहज भाई की कुर्सी कर रही है भाई। हाँ यार, वो तो अलग ही ट्रिप पे है। Ever हिकारू since Bishop डाउन टू B6 happened, लेस देन 10 मिनट्स भाई। नहीं, किंग F2 भाई, किंग F2 चला oh हिकारू। what, no way he played king F2 chat। Yes. 95 resigns, गेम ओवर भाई, गेम resigns। ओवर। Let's have a look at the winning variation। अब हिकारू ने ब्लंडर कर दिया फाइनल। नाइट टू D5, बहुत सारे थ्रेट्स, E3 हैंगिंग, F4 हैंगिंग, E2 हैंगिंग, क्या क्या हैंगिंग है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम A3 खेलते हैं यहां पे तो आएगा क्वीन टू H4 चेक एंड इट्स ओवर, यू रिजाइन। सो यहां पे एक रुक H1 चाल है, आइडिया है कि किंग G8, बट दैट्स वेयर इट एंड्स बिकॉज अगेन सब कुछ हैंगिंग है। क्या करोगे? मान लो मैं घोड़ा मारता हूं यहां पे, अब आएगा क्वीन टू G5, E3 नाइट पे फुल अटैक एंड आई डोंट सी अ डिफेंस। राकेश भाई कोई तरीका ही नहीं है बचाने का ना? ना, I think it's just over. Welcome, welcome, Grandmaster Sub. Hello, hello, hello. What did I miss? Oh, सब कुछ इट्स ओवर। किंग F2 खेला है हिकारू। King F2. King F2. That is literally admitting. Oh, I understand what he's doing. There's a dangerous trap भाई लोग। You will not believe this trap, chat. राकेश भाई, the trap is he's hoping कि किंग से किंग कैप्चर हो जाएगा। Sorry. Oh ये तो भाई, टाइटल ट्यूसडे वाला मोड है। कुछ ये तो ना कुछ TT ऐसा वाला लग रहा मोड है। मेरे को सच्ची लगा कुछ ना कुछ तो है ट्रैप भाई। हद है यार तो। That is the only trap भाई, और कुछ नहीं है। He's hoping वीडियो कुछ किंग से किंग हो जाएगा यहाँ पे। That's the only hope. भाई कैसे, बाय द वे, व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस किसका है? अगर आप, इफ यू कैन काइंडली म्यूट इट। ये मेरे आ रहे हैं, मेरे आ रहे हैं। माय बैड भाई, माय बैड। यस, थैंक यू। कि -50 सैलरी काटो। अरे यार क्या तो लग गई थी। अरे चैट मजे लेने पड़ते हैं तुम्हारे, ऐसे मजे नहीं लेंगे तो कैसे मजा आएगा? रात को किंग 3 बजे। F2 के बाद तो सभी विनिंग है ना, नाइट D5, हाँ। नाइट G6। Beautiful. Let's have a look at Hikaru's expressions, VD's expressions, and Ranjan bhai, जैसे ही VD move चलेगा ना, let's go full screen because I think Hikaru might resign on the next move. So जैसे वो चलता है, let's go full screen. I think because board side में रख देंगे, I think we are going to see some epic expressions by Hikaru there. ये क्या हुआ भाई? सब काला कैसे हो गया सडनली? हाँ हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया।
Hikaru has already reached the 5th stage by acceptance. I think it's done. भाई हाँ हाँ हो गया उसका अभी बस हो गया. I think it's going to resign pretty soon. यार अरे यार प्लेयर कैम्स कहाँ गए? हाँ आ आ गया गया आ आ गया आ गया. गया. Thank you Niri bhai. Let's not move it. अगर ये नहीं हो रहा है तो this is also fine. This works perfectly bhai. मेरे को समझ नहीं आ रहा है किंग F2 का पॉइंट क्या था. I think he just wants this check. कोई variation देखी होगी, like if black doesn't play knight d5, maybe there is something there, I guess, like कोई something. रुक Like this is F7 the भी है, knight D5 भी है, knight F7 probably true, also true, there. true, अब true. सब कुछ ही है मतलब. Niri bhai saying something? Niranjan Bhai had a very nice comment, by the way. क्या? This is giving Aronian versus Anand kind of a vibe. I don't know if you remember that. Yeah. That was That crazy. is similar. You're right. It is very similar. Knight D5 वाला ना vacancy. नहीं candidates वाला ना. Was it vacancy या फिर it was candidates? Vacancy था bishop Vacancy c5 में था. knight e5. हाँ vacancy था 2013. अच्छा vacancy में था. कैंडिडेट्स में भी तो हराया होगा बट वो में भी अलग गेम होगा वो याद नहीं वो इतना फेमस नहीं. अरे तो Hikaru ऐसे क्या impression है यार बंदे के. कमाल का बंदा है यार. Like you kind of can just watch him and get entertained. So chat, what will be? वीडी क्या सोच रहा होगा ये टाइम पे भाई? भाई लोग बताओ मुझे. वो सोच रहा होगा गेम के बाद हिकारू का टाइटल रेकमेंड करूंगा. चैट, व्हाट डू यू थिंक विल बी हिकारूज यूट्यूब वीडियोस टाइटल टुडे? आज क्या होगा भाई, गेस करो. आफ्टर द गेम कल का था स्टार्टिंग कैंडिडेट्स ऑफ विद द बैंग व्हेन ही ड्रू अगेंस्ट कारुआना विद अ वेरी इनोवेटिव ओपनिंग आइडिया. आज क्या टाइटल होगा चैट? टेक अ गेस, वेरी रिस्पेक्टफुल गेसेस बट प्लीज टेक अ गेस. लेट्स सी क्या कहती है चैट. डियर यूट्यूब आई लॉस्ट ऐसा कुछ तो होगा. शाउट आउट भाई, वो हारे या जीते कंटेंट तो बना भाई. हाँ. Yeah, but Sahaj bhai, if you are, let's say, in Vidit's shoes, tell us what is he thinking exactly? मतलब, is he double checking, triple checking, या क्या चल क्या रहा है उसके दिमाग में? I think double checking probably. Knight D5, Knight G6, King. I mean, anything. King G, even King G8 is winning. I can see that. That is so crazy. मतलब ये तो पक्का है ना कि उसको पता है वो he is 100% winning. It's just like to give the finishing touches properly. हाँ बिल्कुल. Just the finishing touch कि अब क्या कहीं पे ना यार, अगर इस मोमेंट पे तो सिर्फ चैलेंज चलती है दिमाग में. I mean, you know you're winning, like you just don't want to mess it up, and you want to have the perfect game, essentially. Dear, I forgot to develop. हम तीनों वहीं के वहीं है भाई अब तक, so that has not changed. इसलिए चैट डेवलप करो पीसेस, बहुत जरूरी है. I'm going to do the other hand, so we have it. Yes. अरे वो पीसेस भी तो सिलेक्ट करो ना भाई, टिक को नहीं तो पीसेस सिलेक्ट करो ना भाई, पीसेस सिलेक्ट करके करो. हेलो भाई, मल्टी कलर. ओ ब्लू शर्ट, ऑरेंज शर्ट, साथ में येलो शर्ट पहनी. येलो शर्ट जल्दी, रेड शर्ट. Bad day to wear black. Exactly. But you were rooting for VD then, in a way. Of course I was. For the culture. Vidit is trending in India. क्या बात कर रहे हो? अरे nice. I will check Twitter this. में क्या बात है? Hikaru is trending. Hikaru is trending. Yeah, makes sense. Yes, Hikaru at FIDE Candidates trending भाई, बहुत ही बढ़िया. मतलब क्या ही बढ़िया. रात को 3:30 बजे. Amazing. I think Vidit is about to move chat. चलने वाला है. Body language लग रहा है. He's about to move. Vidit has won, I think. You think? Twitter पे सब लोग celebrate कर रहे हैं already. Oh, maybe somebody so that... in Canada can confirm. नहीं, I think वही delay है, so he has probably even won. But I would love to see the finishing moment. I think this is going to happen immediately. Yeah, this is मतलब 20 moves भी नहीं हुई हैं अभी तो. This is the 20th move. हिकारू की बॉडी लैंग्वेज ही नहीं है कि he's going to play one more move. देखो ना, it feels like he's just बस हाथ रेडी है भाई, हाथ रेडी है आगे बढ़ने के लिए. Come on VD, let's go. Knight D5 is the move.
Come on, I think Let's yeah, go. 95 maybe resigns. Hikaru के दिमाग में भी ना, I think you know, when you're in such a bad position, you probably think to yourself कि अगर opponent ने ये चाल चल दी तो I'll resign. हाँ Correct. I don't know, ये हाँ सबके साथ होता है. I think मेरे मतलब जितने भी friend, I mean राकेश भाई आपके साथ भी हुआ होगा. I'm 100% Yeah. कि अगर opponent ने चल दिया तो I'll resign. Correct. तो हो सकता है 95 is that move and then he will just resign. And he has played 95 on the 95, board. and this should be resignation. Yeah, Hikaru this should be. Nakamura is going to fall against Vidit Gujrathi, who's sitting up in his chair. This is the moment he has been waiting for years. Check दिया है Hikaru ने. Rook तो H1. 20 मुंह में नहीं हारेंगे, 20 मुंह में नहीं हारेंगे. 20 मुंह में 21 minimum. King G8 played. Oh, he takes the knight on E5. Queen G5. Wow, chat. Queen G5, the variation we saw, chat, it's going to be resigns now. Queen G5, it's over. Interestingly, Vidit या हिकारू को दोनों उठे नहीं इस बारी. दोनों बैठे थे, सबको पता है क्या होने वाला. हाँ, सबको पता है. चैट, अपनी उंगलियां तैयार कर लो भाई. दबाने का टाइम आ गया है चैट में जल्दी से, बिकॉज जैसे ही वीडियो जीतेगा स्पैम होना चाहिए वीडियोपी. चैट ऐसी जानी चाहिए जैसे मिल्खा सिंह तुम्हारी उंगलियों में बैठा हो. लेट्स गो चैट, वी आर ऑल सेट फॉर द मोमेंट. Within the next 5 minutes, Vidit Gujrathi is going to crush Hikaru Nakamura, world number 3, and he will take lead in the FIDE Candidates after round 2. We don't know who will join him, but he will be one of the leaders. Queen G5 on the board. Come on. He's about to play it. You can see he's feeling a bit of nerves. No, he wants to double check, triple check, quadruple check right now. Queen G5 on the board. Queen G5 on the board. Queen G5 on the board. VDOP, let's go. There you have it. There is no defense, chat. You cannot save this knight. There is absolutely Hikaru resign kar. अरे नहीं यार, he plays king E1. What? Just knight E3. Bishop E3. नहीं राकेश भाई 22 चाल में नहीं हारना. Oh, वो और थोड़ा. That's the थोड़ा और बढ़ाना है. नहीं वो मैंने भी किया है. विदित कैसे मजे ले रहा ना अभी. He's winning a piece. वो मार नहीं रहा, पानी पी रहा है भाई. वो था ना कई बार ऐसे मूवी थिएटर में जाते हो, मूवी खत्म होने वाली है, पानी बोतल आधी पड़ी है, so before the ending scene happens, जल्दी से पानी खत्म करते हैं. पानी की बोतल वेस्ट नहीं करनी यार. That is what's happening right now. पैसे दिए तो पूरा वसूल करो. पूरा वसूलेंगे भाई. वीडियो पे स्पैम हो रहा है चैट में. चेस कॉम इंडिया में जो लोग बैठे हैं, डू जॉइन चेस 24. लिंक इज पिन्ड. यू विल सी वीडी विनिंग अगेंस्ट हिकारू. लाइव कैमरा से वहां पे वो मोमेंट कैप्चर कर रहे हैं हम लोग. दैट इज गोइंग टू बी एपिक. हिकारू बिल्कुल हवा में देखते हुए बेथ हरवन की तरह कि कहां मैं गलत हुआ. बट आई थिंक ये फ्लॉलेस गेम थी विदित के द्वारा. एंड एक्यूरेसी वाइज दिस वॉज अबिस्मल play by Hikaru. I know it's harsh words because 96.5 accuracy है Vidit की and Hikaru की 82.5. So 14 point का difference. So it is pretty clear who was the big boss today in this game. बिल्कुल. What a moment, man. What a moment. भाई मैं तो बहुत खुश हो गया, मैं सोया नहीं. And chat, you know who tomorrow Vidit plays? He plays Pragg with the white pieces. Oh my god. यार इसमें तो हर दिन मतलब ऐसे मैचेस है ना. Man. I mean we have to also think about कि उसको double blacks मिले थे. And that definitely is not ideal. In any situation, I mean that now is to get double blacks and to have the game that he had yesterday or आज का game तो मतलब watching the 420 हो गए, likes नहीं हुए टिको भाई. And सहज भाई, do you remember Pragg Masters? हमने एक मूव देखी थी VD की A5 जब Rook E4 आया था and VD had lost to Pragg. Tomorrow will be the day for revenge. Hikaru ready to resign. Hikaru ready to resign. Let's go. This is the moment chat जिसके लिए हम सब लोग जागे हैं. अभी Pragg की गेम बाकी है, but फिलहाल के लिए Hikaru about to resign against Vidit Gujrathi.
उनके सारे पीस घर बैठे हैं, कोई चला ही नहीं है. VD outplaying on every front. Yeah, this is the moment we are all waiting for. Not only us, but VD. Simply crushed him. हाँ. हाथ हिल रहा है तो लग रहा है अब रिजाइन होगा. चैट स्पैम कर रही है VDOP. क्या ही मोमेंट है भाई. 11 मिनट हिकारू के पास. Some 48 game streak, yeah? 48 game streak. 47. 48. 47. 47 game streak. 46 था गेम ये टूर्नामेंट के पहले. 47 was yesterday's game and that is the streak. Yes, for sure. Let's, I think, just official resignation waiting for that. Chat, by the way, just for funs, yeah, just for funsies, White का best move C4 बता रहे. ओ भाई सर ये तो What? क्या ही बोले What? मतलब. ये क्या मूव है भाई. सब कुछ आएंगे. ये कह रहा भाई पॉन पुश करो. This tells you कि it's over. This is over, chat. This is over. And chat, याद रखो ये किस चीज के लिए फाइट कर रहे हैं. To become the next world champion. डिंक फॉर्म में नहीं है. So I would say whosoever wins this, I would say has at least 60% chances to win and become the world champion in November. जो पूरा महीने चलेगा इवेंट. तो ये बहुत the stakes are extremely high. Then VD gets up भाई. VD gets up from the chair. Just waiting अभी. भाई हिकारू कर दे यार रिजाइन. बहुत हो गया. कल सुबह पनवेल भी निकलना है. I mean, position बच भी जाएगी तो I mean 10 minutes in 17 moves. Come on. 10 minutes I think Hikaru he's given up. He's just kind of was nerves, because from his perspective he wants to win this. I know he says कि मैं content creator हूँ, but at the end if he's spending so much time playing this event, he wants to win. There's no doubt about it. And उठा He हाथ. hates his position भाई. उसको बिल्कुल पसंद नहीं है उसकी पोजीशन. Hikaru might change the sport after these blunders. No, but I don't think so. By the update chat, apparently Humpy has drawn her game. That was pretty logical. We were discussing कि वो draw ही होगा. So yeah. But भाई ये क्या ही frame है ना मतलब. If we could like मतलब just frame this moment मतलब. Hikaru भाई resign कर रहा है in the candidates. Oh, Bishop G4 played chat. एक चाल. And just takes with the queen. वो अभी भी वो क्वीन चैट के पीसेस को टच नहीं करना चाहता. चैट हाँ अभी भी वो टच नहीं कर रहा. FG4 Hikaru is back in the game. Yeah, just pointing out. Yeah, this is exactly what you want to avoid. So Hikaru always up with the tricks, but इतना simple blunder तो यार मैं भी ना करूँ तो तो नहीं करने वाला भाई. Correct. Queen G4 will happen, and then there are a lot of checks, and it should be made soon. Chat. Yeah, so Queen G4 has to happen. Chat, Vaishali has lost today and Humpy has drawn. So these are the updates so far. इसके बाद हम immediately jump करेंगे प्रग गुकेश की गेम पे जो बहुत खतरनाक है and that is equally high stakes. तीनों इंडियन है, वो आपस में खेल रहे हैं तो बहुत क्रेजी रहेगा फिलहाल के लिए. लेकिन ये मोमेंट कैप्चर करना है it's just आर्ट के बराबर है यार ये. एंड एक सिर्फ फन फैक्ट बताना चाहूंगा. पिछले 5 कैंडिडेट्स विनर्स हैव ऑलवेज स्टार्टेड विद 1.5 आउट ऑफ 2. वाओ. That's this is huge. Rakesh bhai कहां से लेके आ रहे हो ये? Rakesh bhai, is this confirmed? Because this is worth tweeting out. Yeah, it's confirmed bhai. Nenja bhai, let's go. This is worth tweeting out. काफी यूनिक फैक्ट है. So in the past 5 candidates, the winner has always started with 1.5 out of 2 in the open section. Yeah. That is crazy. Crazy. And Vidit takes with the queen. Yes. Resignation, bhai. Come on. Time to resign. Hikaru, come on यार. अरे क्या खेल. अरे टच किया भाई. Bishop को टच किया. Bishop E3.
I think 93 resigns is on the cards. Yeah. हम तब No, से वेट Queen कर रहे हैं भाई. E2. अभी तो क्या क्वीन E2 किंग E2 नाइट C2 भी जाके आप कोने में रुक खा लो तो भी चल जाए. सभी विनिंग है, हाँ राइट. हाँ, सभी विनिंग. VD not rushing it. या People are saying बस कर यार. हाँ एक्चुअली मन में तो बोल रहा होगा फॉर श्योर. Yes, that's correct. Bishop finally moved. That's true. Gotham Chess tweeted Vidit for the win. पता है Vidit के लिए ना, I don't know, we've asked so many people. By the way, Queen E2 still fighting. We have asked so many people. इतने लोगों से prediction ली है पिछले एक हफ्ते में. हर किसी का favorite Vidit है यार. हल्का सा वो टच है, दिल का टच है विदित के साथ, बहुत लोगों का है. And it's glad to see because his journey has been so motivating यार. Never giving up. एक वीडियो है Road to Candidates, you can see that video channel पे भाई, बहुत सही है, check it out. क्या ही जर्नी है भाई of never giving up भाई. Yeah, and mods, if you can also spam it, do check it out. And भाई साहब मतलब रुक A8 भी विनिंग यार यहाँ पे, हद है मतलब. ऐसा भी नहीं आपको कुछ. चेक की तो सबसे ज्यादा लॉजिकल लग रही है. चेक feels very logical actually. This feels like it should be over. Pretty much. Chad Hikaru is just avoiding any stats. He doesn't want to be any, 10 साल बाद कोई कोट करेगा. So in the past, in the 21st century, the shortest game was played by Hikaru Nakamura against Vidit. He's trying to avoid those statistics. राकेश भाई ऐसे लोगों के stats में वो कभी आना नहीं चाहते यार. नहीं बट ऐसे मजा आता ना कुछ किसी ये इंटरेस्टिंग चीजें समझते. बट वीडी भाई इतना क्या सोच रहा है अभी, मतलब इज ही लाइक जस्ट मेकिंग श्योर. आई होप. अरे नर्व्स यार, कम ऑन. I mean, it's okay. I mean, बहुत ही टाइम है ना इसके पास, तो it's okay. Yeah, Lots of time, yeah. Chat, anybody on Chesscom India, please join us on Chess24 India. Link pinned at chat. You'd have to see this moment, man. You cannot miss this. You cannot miss this, bhai. You are missing out. Click on the link. I mean, join. You might have heard or just seen a tweet somewhere about VD winning, but if you want to actually see the moment, this is where you come. Exactly. This is. And कल से भी वही आना है भाई. फिलहाल के लिए तो भाई एक और गेम पेंडिंग है. We'll go to that game. वो भी देखनी है. प्रग की गेम चल रही है, but this is हिकारू भाई नाखून काट रहा है भाई. रिजाइन कर दे यार, घर पे काट लेना. Hikaru Nakamura, history by it being witnessed. One of the best games I think in candidates history overall. With Bishop H3 novelty से लेकर जो पूरा clean one-sided game था ये. बहुत ही उम्दा गेम. Completely. भाई और एक फन फैक्ट पता है, विदित अगर डिंग से खेले, दोनों का बर्थडे 24 अक्टूबर को है. मतलब क्या ही बढ़िया मजा आएगा. No way, seriously. भाई मेरे कैमरा गया. अनिल भाई, can you just have full screen? अरे भाई साहिल भाई यार जल्दी वो रिजाइन करेगा यार, जल्दी आ. हाँ, I'm changing the camera. Chat, we can see Vidit Gujrathi moments away from beating Hikaru Nakamura और sole lead ले लेंगे. Already like एक वो resignation वाला face तो है उसका. I mean, it looks like he has already kind of given up. Yeah, शक्ल से तो दिख ही रहा है. And Vidit चले जाएंगे 1.5 पॉइंट 2 गेम में से एक बढ़त में. और जैसे कि हमको पता है कि पिछले 5 कैंडिडेट्स के विनर्स ने हमेशा 1.5 पॉइंट बनाए थे पहले 2 टॉप. I am back, Manjan bhai. I'm back. VD भाई खेल. He wants to play. He's almost there. Come on, VD. Meena, you cannot sleep yet because Pragg Gukesh game pending hai. That is very important. Kshitish bhai, no VD blunders now. यहाँ से कुछ नहीं होगा भाई. यहाँ से तो I think I can also convert this. So VD will win. Yeah, this is not that difficult. This even Sahil can come. Guys, just an update. I don't know हमने mention किया था पहले कि नहीं, पर लेकिन Humpy has drawn.
हाँ. Humpy Yes, has yes, drawn. कर So दिया. I think women's section is over. Hmm. खत्म हो गया वो. Yeah. Vaishali has to come back And tomorrow. That will be important. Mr. Candidates, Nagyan Nepomniachtchi is beating Ali Reza Firouzja. He will Ooh. probably join VD into the lead tomorrow. Chat, I think चलो पेयरिंग्स बाद में देखेंगे. अभी तो बहुत a long way. अभी तो गेम पेंडिंग है. Yeah, yeah, I मतलब think- शायद और एक इंडियन भी ज्वाइन करे, क्या पता. Can you switch to Pragg's game? Trust me, Mr. Freezeby will get a lot of time, but this resignation is happening now. We don't want to miss that moment. Oh, he's playing. Oh, Hikaru भाई, is like, भाई चताना है यार, मैं नहीं बैठना मुझे इधर यार तू. अरे यार क्या expression है? Hikaru is like, ये दर्द काहे नहीं खत्म होता यार. Maybe Music. Hikaru was also thinking जल्दी खेलना है यार. हाँ, उसको भी कल सुबह न्यूयॉर्क निकलना है. वो मीम है ना भाई. Music. ऐसा फीलिंग आ रहा है मुझे. मेरे से Hikaru जल्दी resign कर, I wanna go sleep. You and me both, bro. You and me both. And it's a check. Queen G3 check played. Yup, he gives a check. Resignation. Oh no, No, Hikaru not yet. He plays No King way. B2. Wow. What a fighter. भाई I'm not sure इससे यार ये fight नहीं यार, this is not fight नहीं है भाई. This is ये तो just, you know, वो मुक्का refusing मारे to जा रहा है resign. हमें मुंह पे दूसरा बंदा मैं गिर जाऊंगा तो भाई मुक्के कम पड़ेंगे. नहीं, उसको शायद वो 25 मुंह के बाद रिजाइन करना होगा, ऐसा कुछ तो. अब ये भी वो भी हो मार गया रहे है. तो 30 मुंह का होगा उसका. Maybe your राकेश भाई, I prediction think- is right, Sahil भाई. 32 moves. Oh no, I think इतना लंबा नहीं चलेगा. 5 कैसे निकालेगा यहाँ से, मुश्किल है. I think rook d8 check now. Yeah, king c1 only move, and then Then you just queen take on G5. e5. Huh? No, queen g5 na, just queen g5 is over. Oh, place rook oh, okay, nice. I feel nice now. Queen Rook g5 is d8 over. check. Queen g5 looks deadly. Yeah. खतरनाक check आने वाला है. Yeah, king c1 played only move. Rook f8 भी logical है, knight c4 भी काफी logical है with the सब same कुछ ही idea, बनेगा. or queen g5. Lot of moves possible, chat. Hikaru knows it's over. He just knows it. Why is Hikaru doing this? So chat, देखो ना, the stakes are very high. Imagine करो कि Yeah. देखो तुम ना एक मान लो कि एक बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हो, ठीक है, and you're slipping, you know कि अब गए, it's over, but हाथ पैर तो मारोगे ना भाई क्लिंग ऑन करने के लिए, चाहे कुछ हो ना क्लिंग ऑन करने के लिए. Basically the stakes are so high कि basically यार he's just hoping कि कुछ ब्लंडर हो जाए, but he knows it's over. Queen g5 on the G5, board. nice. Let's Yep. go. 28 moves. Will Hikaru Nakamura resign now? क्या ये वो I चाल है think so. जहां He will. I think he'll resign now. अब तो सब कुछ मर रहा है ना. अब तो सब कुछ. Let's everything capture is this happening. moment. And chat, by the way, 92. A4 is the best move here, which is like नहीं, come on. he plays A3. B3, sorry, नहीं, B3. B3. And now chat, यहाँ पे बहुत moves हैं. The best one is apparently knight f1 check. From this, the king goes to b2 and knight g3 fork, queen and rook go. So knight f1 check, the king goes here, knight g3 fork, and that is the simplest way to convert. दो ही piece developed हैं, दोनों को fork कर दिया भाई, तुम भी जाओ. बहुत ही बढ़िया. बहुत बढ़िया. Come on, भाई. Knight f1 check. I mean, come on. This is so easy. Let's go chats. Spam होना चाहिए chat जैसे जीतेगा. The moment we are all waiting for. Video Hikaru P. का हाथ हवा में ही है. Chat, let's go with video P in the chat. Yep, knight f1 check played on the board. Knight f1. He should resign now. Let's go. Come on, let's Hikaru. go. Come on, Hikaru, resign. भाई बस कर दे. It's totally गया भाई. lost. चलो. हो गया भाई. Bro. Brother. बिरादर. वो गुस्से से देख रहा है राकेश को. गुस्से से राकेश को देख रहा है. क्या ही एक्सप्रेशन था. Yeah. And he has resigned.
Vidit Done. Gujrathi defeats the legendary Hikaru Nakamura. What a game by Vidit with the black pieces. Hikaru cannot believe it. We cannot believe it. But there is nobody in India who's not happy right now. Amazing result for Vidit there. Wow. Just wow. I think brilliant win by Vidit Gujrathi from Brilliant. start to end. क्या ही बढ़िया खेला और 1 point out of 2 जो है पिछले 5 कैंडिडेट्स के विनर्स का स्कोर. सो विदित गुजराती ऑन ट्रैक टू बिकमिंग अ वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर. क्या ही बढ़िया जीत है. सहज भाई हमें बताइए शुरू से लेकर एंड तक बहुत ही छोटे से क्लिप में कि कैसा था विदित का गेम आज. Before Sahaj joins in, apparently chat में किसी ने लिखा है हिकारू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने से मना कर दिया है. I don't know if it's true or not, but just very interesting fact there कि उन्होंने मना कर दिया ज्वाइन करने से. No ways. But I mean, I think it was a very nice game by Vidit. I mean, Berlin, a very very solid choice, and I think वो उसके बाद वो 97 and C6 वाला जो plan है, I think it's not as much played. Cloud preparation, obviously, and उसके बाद Bishop H3. Yeah, Bishop. I think once Bishop H3 came on the board, उसके बाद situation was completely reversed, and I think since then Hikaru just never was able to find his footing. पहले H pawn गया, and then उसके बाद it just kept getting worse and worse and worse. So I think the the takeaway is develop your queenside pieces as quickly as possible. I think VD OP, thanks a lot bhai VD for winning this game. We are so happy. And thanks a lot Rakesh bhai for joining us up till now. I think you can rest now. I think बहुत thank you. I think we'll have one more guest joining us chat soon. I've sent the link there, so it should be all chill. Thanks a lot Rakesh bhai. Yes. All the best to Pragg and Gukesh. Thank you Sahil bhai. Thank you so much Niri bhai. Good night chat, but Pragg versus Gukesh will be live. We'll see you tomorrow. I'll see you tomorrow. Bye bye. Bye bye Rakesh bhai. Enjoy the Maggie. Yes. Bye bye. Bye bye. So let's have full screen chat. Let's go to the different game now chat. VD has won. But kya rahega Pragg against Gukesh, the two Indian youngsters, 18 years old and 17 years old fighting. Look at the nerves. क्या ही प्रेशर. हम बोर्ड भी अभी लगा देंगे बहुत जल्दी. पोजीशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एंड इतने पॉन बोर्ड पे दिख रहे हैं, ऐसा पता भी नहीं लग रहा कुछ एक्सचेंज हुआ है नहीं हुआ है. सो वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड. बिल्कुल. and Sahil bhai, let's also think about something else. Yeah, there is 21 moves being played, मतलब 19 moves और खेलनी है, and Pragg के पास 12 मिनट and Gukesh के पास 14 मिनट. And very very tense position from both sides. Agar if you had to pick a color here Sahil bhai, what would you pick? Would you rather be Pragg or would you rather be Gukesh? Because I know पहले आपने कहा था कि you think Gukesh is going to win this. So I'm just wondering क्या आपको क्या लगता है? I'm going to actually choose black here. I just feel कि कहीं ना कहीं पे ना white के pieces बहुत बढ़िया हैं. But I usually love these pawn chains unless you are planning to sack some piece here. Unless that is the plan. I would choose black. Agar sack karne wale ho, then I take my words back. Rook D5. By the way, chat, we have DQ on the call. Hello, DQ. I will introduce Sahaj. DQ is a content creator, Sahaj bhai, and Sahaj is a GM, world famous GM DQ. Glad to have you on the call, DQ. Hi, DQ. Hello, nice to meet you. Nice meeting you. Yeah. And then bhai, we have 3 cameras. We can go back to the board and we have a lot of moves there. Bishop F6 just played by Pragg. Gukesh captures it back. DQ, did you just follow the game VD played against Hikaru? Yes. Oh my God, I was in right time. Yeah, I was like feeling a bit unwell. Then I saw Vidit winning. Then I'm like, okay, pakka aaj to join karna hai. It's okay. I can sleep later. But man, it's so cool, dude. Vidit winning from black pieces is crazy. We were just talking on Primo's about how much confidence boost you would get if he wins today. It's gonna be crazy. So let's. Absolutely right. And chat. But another crazy game going on here between Pragg and Gukesh. Again, 10 minutes versus 14 minutes. You have 18 moves to make. No increment, guys. One more time. There is no increment at all. And no more 30 seconds. Just to point out, the only move for Pragg here is Bishop takes D5.
that is apparently the only move to have any resemblance of equality. Otherwise, it's lost. Somehow knight d5 is थोड़ा ज़्यादा logical लग रहा है नहीं? हाँ, knight mean, d5 is something just I would love to visually. play. cd5. What do you play now? Oh, there is queen e7. There is queen e7. Yes, I think that's why bishop d5 command is मैं king को क्यों लेके जा रहा हूँ? Sorry. Let's say bishop d5. Now queen e7. Exactly. Yeah, because of queen e7, right? So that's why bishop d5 probably is maybe a bit better. Yeah. मुझे लग रहा है यहाँ पे एक repetition आने वाला है somehow. Repetition, really? Are you sure? I think it's possible. Like if you play bishop d5, okay? Okay. Black goes bishop takes c3. क्योंकि pawn से मारोगे तो knight d5 looks a bit dangerous. Like visually मेरे को थोड़ा dangerous लग रहा है. Bishop c3, and now I see knight h6 check, and king h8, knight f7 check. What if I take though? What if I take? Then e7 check. कुछ तो है यहाँ पे. I thought कुछ तो है. क्या variation है chat? e7 check. बाप रे. कुछ तो है. And apparently chat यहाँ की best move पता है क्या? Wow. ये क्या चल रहा है भाई? Takes queen. White has 2 queens and the game is equal. White has 2 developed rooks, 2 queens, bishop attacking, and the game is equal. Yeah. And it's crazy, dude. Do you think how would they think? We know that bar is showing equal, but what would be going? I mean, black would be very scared, right, to have like an open king and 2 queens. Yeah. You see, DQ. I'm thinking the same thing. I would never want to be black here. So right before you joined, I asked him whether he wants to be white or black in this position, and Sahil chose black. But only if you don't sacrifice. I had an asterisk at the end. Ki, bhai, only if you don't sacrifice. Because I like this pawn chain. Wahi chalegi to bhai, I'm a bit worried. Oh, exclamation mark takes on d5. Go. We have it on the board, chat. Bro, they're crazy, dude. They're calculating like anything. Like Sahil, if you were white, what would you play here? Like, would you think of that sacrifice at any point? I mean, I have to actually, because I think this is kind of logical in a way, because it opens up files and everything for my pieces, but it has to be calculated till the very end. एक बार कर दिया, you can't go back. इसके बाद वापस नहीं आ सकते. And look at this, Pragg, Gukesh takes it immediately, and Pragg ने immediately मार दिया वापस. He went for this variation. Yeah, see, now the possibility of a repetition is very high, because there is knight c7, knight d5, which is a repetition I see, and then there is knight h6, knight f7. So दोनों possible है इस position में. And Rohit ji saying Pragg was 1 hour up at one point. He is absolutely correct. 1 घंटा आगे थे and time बिल्कुल बराबर हो चुका है. I mean, it was such a position. I think you should think. Otherwise, it looked very scary, I agree. But I think it's first time I'm looking Gukesh up on time. I don't know why. Gukesh usually is the one who's like like low on time. Yeah, I mean, generally yes, but I mean, I think it fluctuates. I mean, if you came, half an hour before, then Gukesh would be low on time for sure. The thing is, I just saw Gukesh he went like this or something. Like, I don't know, he missed something. I am getting a feeling. I might be wrong. Chad, you can go back like few seconds and check on the stream. I think he missed something. That's my judgment. He might have missed something, but he plays bishop e7. Wow. And you know what, Sahaj bhai? You might just be correct. Knight h6 check is a repetition here. And that is the best move. So why can I not take on h6? Oh, there is some queen g4. Yeah, you can take. You can continue the game. Queen g4 check. And if, king h8, then queen d4 is the repetition. There is no way to interpose. And you will have to play bishop g5. And then you can see h4 and the game goes on. And it's very complicated. So it's going to be a decision that black has to make. So Gukesh is the one who decides. First FIDE decides he has to play this or not. But he doesn't have a choice. Everything else is worse. So he will play this check. And then Gukesh chooses कि भाई मैंने draw करना है कि मैंने खेलना है. He is 3 minutes up. So he can choose to play with bishop g5. But will he regret?
regret this. That is Let's see very chat. true. That is very true. That is, but it is also like you're from Black, yeah. You would be usually happy with the draw. That's true. And That's true. do you think they will stretch that much? Because it is kind of scary for Black also. We just proved that. I agree. I think it's not such a time difference कि जहाँ पे you have a huge edge. Yeah, मतलब अगर मान लो 30 minutes होते, I would think कि भाई, okay, I have 30 minutes. Let me just think once. Maybe I find something. But here, I think it's not such a difference. How many moves until 40? 16 moves. 16 moves, yes. So, I mean, there is a chance he could play because 16 moves in 8 minutes, 7 minutes is scary. Yeah, especially in this position. Yeah, Sure. especially. One slight inaccuracy and the game is over, right? For both of them, I'm not even mentioning like only one. So, this could end in a draw. 7 minutes सिर्फ अब. Hard to say. 7 minutes में 16 move खेलने हैं यार. How do you even play this? Like Pragg is at this point pretty much basing his play on the repetition. मुझे लग रहा है. Gukesh पानी पी रहा है भाई. Pragg, but ऐसा भी हो सकता है कि Pragg just doesn't want to draw क्योंकि उसको उसकी position better लग रही है. That is also possible. It is also a possibility. is a decision, na? I mean, you have to kind of accept that I mean, the whole game he was kind of when he had his preparation, 1 hour up and all of that, itna attack, and now you have to accept that there is a repetition. That cannot be easy. Agreed. Half the time for Pragg now. Yeah, DQ. You know, it is also. He doesn't play it. He doesn't play it. Queen G4. He plays Queen G4. Question mark. What I was saying. Oh, no. Chat. Here, Black has only one move, that is knight to D8 to challenge the knight on F7 and the pawn. Knight D8 के बाद रुक भी game में आ रहा है. Everything is defended and Gukesh is better. क्या वो lead ले लेंगे? क्या Pragg हारने वाले हैं? With the white pieces. That's scary. Man, that is very scary. You know what? DQ and Sahaj, I'm going to ask you a question. Okay? If you had to bet money on one Indian player, okay, not based on your hearts, based on your stats and based on your mind, I am guessing Pragg might have been the favorite, yeah, in terms of choosing who wins. At least he was for me. I have always backed with it. I think Shuruat. So the Merele, I think it was Pragg. Of course, I mean he was phenomenal in the last few years, but I think Vidit is more consistent to me, personally. Yeah. Also, like if you have to choose from Gukesh and Pragg has been more consistent, right? He did not have any time. He did not have a very bad tournament. Yeah, so but Gukesh also had that insane run, na? Yeah. He had that insane run where he got to 2760, was it, or 2755 or something like 58, I think. Yeah, 58. Yeah. Was he India number one for a moment? Yes. Yeah, he was. Yes, right? Yeah. I think in published ratings, I think Gukesh and Arjun are the only ones, who got that. I think I might be wrong. Yes, Gukesh was for 1 month and now Arjun is number 1. Arjun, yes. Please send this blue t-shirt anchor. कहाँ भेज रहे हो भरत भाई? कहाँ की ticket भेज रहे हो? I am fully excited भाई. तो टोरंटो की भेजना भाई और 2 भेजना. साहिल विदित hater नहीं भाई, full support for VD. Gukesh भी जीत रहा है exactly, but Pragg के against. So if you support Pragg, maybe not good news. But 2 Indians winning from Black is also crazy, right? That's true. One from Black. Completely. So, and if Gukesh also wins, I'm not saying that I want, but two people leading is much better than one person, right? I don't. The opponent is also an Indian, but it would have more chances if you're thinking from India point of view. Of course. And you know what? I have a question. So now let's assume that Pragg loses this. मान लो फिलहाल के लिए, ठीक है? Tomorrow he plays VD with the black pieces now. Who will be charged up after defeating Hikaru with the black pieces? So मान लो गलती से Pragg loses. मान लो, ठीक है? मान लो कि गलती से loses. He's half out of 3. Do you think he can come back? Is it possible from that situation? Just in case he वहां पे पहुंचता है तो. You mean Hikaru? No, I mean like Pragg. Pragg. Of course, yes. Because Pragg I think is a very dangerous player with black pieces. I think very, very dangerous player. Though I think definitely, yeah, if anyone can. I mean, even Gukesh for sure. But I mean, let's think about this, right? He has 6 minutes on his clock.
He saw the repetition, knight h6, knight f7. He knows he has to make 15 moves in 6 minutes without any time increment, and he still doesn't take the draw. Yeah, I mean, Hans is also doing support for Vidit. I saw that one. That's a bit commendable. Definitely. Yeah. It's also Chat, like you by the said, right? We know the evaluation, so they don't know, and Pragg might be thinking that he's winning. So, True. do you think there could be like an over push from his side, like Yeah, and knight d8 is not an easy move to see. मतलब बहुत अजीब move है knight d8. It's a passive move. मतलब you think of knight d6 and so on, but knight d8 is not a natural move. अगर time ही नहीं है, easy thing to miss, I would say. Because ऐसा नहीं है कि knight d8 खेला, that's the end of the variation. You have to go deeper. So yeah, I think it is possible. He's moving. His hand is going towards the knight. Yeah. Oh. No, but time situation has been like equal now. Yeah, 6 minutes. Chat. 16 moves 6 minutes mein. How will they play this, by the way? 16 moves in 6 minutes. That's not possible. And he finds 98. He finds the best move. Pragg So under he might huge be calculating. pressure. Was that the only move that he can make? Yes, the only move for advantage. Wow. This could be a shocker from Pragg. Chat, we are going to do a challenge. ठीक है, we are 4 बज रहे हैं. अगर एक गेम खत्म होने से नहीं, गेम खत्म भी नहीं, अगर 4:10 तक, अगले 10 मिनट में 9 मिनट में we get to 500 likes, तो एक बंदे को समोसे मेरी तरफ से भाई गर्मा गर्म कल आएंगे. अभी तो इस रात तो कहीं स्टोर जगह नहीं होगा unless you are in Budapest like Sahaj Grover. So अगर 80 लाइक आ गए अगले 8 मिनट में, तो एक बंदे को समोसे मेरी तरफ से कल भाई. 420 लाइक है, 500 पहुंचना है. ठीक है, डन. Let's go. Also, guys, if you want to watch cameras of players, join Chess24 India's channel. हाँ, जो 75 लोग चेसकॉम इंडिया पे देख रहे हैं, डू जॉइन चेसकॉम इंडिया. अच्छा, चेस24 इंडिया भाई, लिंक पे 24 इंडिया. हाँ. कोई का स्कैम नहीं है भाई. It's getting scary. What is the best move for right now? So I think यहाँ पे there is not much you can do about this now, no? I think this will fall, है ना? Yeah, he missed something. I think maybe some knight h6, knight f5 is what he had planned. पर उसपे कुछ हो रहा है. Something is happening there, obviously. Maybe there is knight e6 or I don't know. Bishop c5. Okay, yeah. There is some crazy line here. Yeah, this is probably what he missed. E7 feels like wow, but then rook f5 or rook g7, queen g7 is a mate in one. Not rook f5 actually. Wait. Bishop f5. Bishop f5. Because if rook f5, can we show the move, Sahil bhai? I know you saw rook f5 pe there is chat. Can you find a crazy move here? Rook f5 pe. This is insane. Just to go back, the idea is knight h6 check, king h8, knight f5, bishop c5, e7, rook f5, and the crazy move is knight to f6. And this is winning for Pragg. What a move! Wow. So it's not very easy for Gukesh also to play now. No, definitely. Yeah, and this is an easy move to miss. Agar pawn se marte ho, then I take with the queen. Arey yaar, marne de bhai, please. Queen, and this is over. Agar rook se marte ho, fir se queens, it is over. And if you, where do you move the queen? If you move the queen at queen, it's over, yeah? Basically, rook ka attack yahan pe khul gaya, chat. This is the idea here. Guys, Pragg has 4 minutes on his clock and he has 15 moves to make in 4 minutes. This would be like a bullet match in the end, maybe. They just splits out moves immediately because time is going. Bullet OTB कौन खेलता है? Big update. Fabiano Caruana has won against Nijat Abbasov. He joins Vidit Gujrathi in the lead. Another update. Ian Nepomniachtchi completely winning against Alireza Firouzja. So that means we'll have 3 co-leaders by today. That will be Vidit, it will be Ian, it will be Fabi. So it's going to be a epic, chat. And yeah, we'll go to those games at the end. They think there could be 4th leader. Yeah, sorry, Gukesh. Yeah, all 4 results today. All 4 results. I think this is going to be a decisive game, no? So, guys, again, 3 minutes left for Pragg. I'm so nervous right now. 15 move कैसे खेलेगा वो? It is impossible. It's not possible to play 15 moves. It is not possible. Chat, this is not कोई pre-move नहीं है यहाँ पे. It is over. It is over for Pragg, I think. Hard luck for Pragg there, man. Because honestly, he's one of the contenders. In fact, Carlsen placed him above, like, Vidit, Gukesh, Abbasov.
And here he is struggling with the white pieces against Gukesh. What a defense by Gukesh, yeah. Matlab finding all these critical moves in time pressure. And yahan pe knight takes g8 played. Okay, knight takes d8. What's the Okay. plan? What's the idea I of can knight just takes d8? take with either piece, yeah. No, takes with queen. Could Even bishop there takes be is okay discovery because check? rook. Yeah, bishop takes and rook e7 looks like Rook convincing, holds yeah. everything. Chat 14 moves in 3 minutes. Looks difficult. Although the thing is, Sahaj bhai, it's also Niranjan bhai. Okay, so chat, we are going to play VD's interview after he won today. Let's play that interview. We'll be back in just a couple of minutes. Let's play it, Niranjan bhai. Let's go. Kar do bhai. Let's go. We'll come to this game quickly. He'll play it. ठीक है, बढ़िया. We'd love to see that interview, bhai. That will be epic. Come on, Gukesh. Come on. जब तक के लिए भाई गेम चलती है जल्दी से. Because chat, Sahaj, he played. Because it is possible Gukesh भी गलती कर दे यार. It is possible. He also has no time. It is possible. एक गलती and Pragg could be back. But I think Gukesh is trying to play on Pragg's time. Yeah, Queen for d4, sure. okay. Now he's playing a bit fast, okay. Rook hanging. E7 always a threat. Rook e7, yeah. Rook e7 Yeah. is what we said. Rook e7, I would play this without even thinking. Just stop everything, sacrifice the exchange, just stop everything. Khatam. Let's play the interview, Niranjan bhai. Okay. Let's go. Thanks, guys. We're here with Grandmaster Vidit, who scored a big win, his first ever classical win against Hikaru Nakamura. He did it as black today. I want to ask you about the game. You said that your team found c6. That was prep, but bishop takes h3. Was that over the board? Did you find that? No, I mean, it was part of prep. But after knight c4, I was on my own. So the rest of the game, I was thinking and trying to find out moves. But yeah, big thanks to my team to, give me such a nice start in the opening. Absolutely. Now, Hikaru has said several times that this tournament's all about the content and he wants creative games. Does that actually give you a little bit of a hint that, he's not going to play a Berlin or something? Well, I was not aware of this statement. I didn't really think too much about such things because it's hard to guess what your opponent will do, especially at the beginning of the tournament. We don't know what everybody is planning to do. So it was more of me just thinking about my game plan and what kind of position I need to get. And Nakamura has not lost a classical game in more than 40 games until today. You ended that streak. Did you wake up this morning thinking that a win as black would be possible? I didn't rule it out for sure. With black, wins are not so easy. But I know, like, I have got many good positions against him in online play and blitz and even rapids. So I was sure that I can, outplay him, but I never managed to really convert those wins. So today, I think I was more precise and more focused to convert one of those wins. So I'm very happy. And yeah, I did know that he had not lost a game in 2023 in classical chess. So yeah, it's good to defeat such a strong player. And finally, Nakamura has a penchant for going home and actually recording his thoughts on the entire game for his channel. He did it in the last Candidates. He's doing it so far. Are you going to tune into his channel tonight to relive your own victory? Oh, I was not aware that he's making his highlights. Probably I'll not really look into it. I save all these things post tournament because there's a round tomorrow and I already have to be thinking about it. But maybe post tournament. You seem very focused. Congratulations, Grandmaster Vidit. 1.5 out of 2, both games as black, 12 games to go. A fantastic start. Now back to you in the studio. Really difficult, huh? 10 moves. We are back. We are back, chat. Bishop and c5. yeah, we are back, chat, and only 10 moves to go with less than 2 minutes, 1.5 minutes almost. An h5 played by Pragg. Bishop c5. It's over. I think Bishop Gukesh c5 is I think was a Gukesh. By the way, chat, I know it's hard luck for Pragg, but जैसी Gukesh जीतेगा तो Guki OP chat में आना चाहिए भाई. He deserves it, भाई. What a comeback, man. It was not easy to win this game,
Black से जीत रहे हैं वो भी against Pragg, who attacked like crazy. So yeah. So it's 100 seconds apparently. 90 Bishop seconds C5 for play. 10 moves. 90 seconds for 10 moves. It's And crazy. Bishop It's C5 practically also. impossible to make the move Yeah. also, right? 10 seconds per move basically. Yeah, yeah. Now It's even less. OTP. Ah, Do you it's think OTP. Pragg will resign soon? No, he'll Yeah. play till the end. He'll try E7 now, I think. Maybe. Just check. Just check. But ये Guessing. तो खत्म. नहीं, it's over. Oh, Queen Oh, G5. he did. Okay. But F2 falls now. F2 falls, yeah. Can I even take with the rook? Yeah, I was thinking. And even break with rook, threatening this discovered check, like it looks deadly to me. But Angel Even- is like insane. Bishop Man. E6. Wow, Pragg Yeah, play. wow. No, Gukesh plays the best move possible in the Ha, position. ha. That It's too, over. like within 10 seconds, he played that. Yeah, अब yeah. कोई I think there is no I think compensation. there is no chance. Yeah. Yeah, yeah. I think No Pragg was compensation. playing for the pawn till now, right? Like that pawn. Yeah. Yeah, but now that it has fallen down, it is difficult. Oh, he's trying to meet him. H6, 41 seconds for 7 moves. Oh my god. H6, but there is no threat, no There exactly. is nothing. Yeah, there's rook F2, bishop F2, anything. Yeah, yeah. This is falling apart for Pragg. He has to play 7 moves in 40 seconds. That's roughly 6 seconds per move. Chat, we are going to see second वाला rule Gukesh. बहुत dangerous है. Yeah. बहुत ज़्यादा dangerous है. It gives us this false sense of comfort कि you have a lot of time. So you opening phase में you use that extra time, which you shouldn't. And last में the position gets complicated. You have no option. You have to think. Yeah. But इतना severe, I think ये हम पहली बार देख रहे हैं, right? इतना कम time. played. Rook F2 on the board. Yeah. King H1, what? I mean, I don't see any other move. But King H1, I mean, this is directly in the queen's diagonal. Pins like But at least 2 pieces. You're not gonna allow discovered check, right? So Pins like at least 2 of white's pieces, man. Yeah, this is dead loss. ये तो गए. ये तो खत्म. Dead loss and 20 seconds is practically impossible to make. 14, 14 13 it's over, seconds. no? It's over. Yeah. It's over. It's over. Resigns. 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 Oh my god, Gukesh. He's losing on time. He's losing on time. Yeah. Does he not Five know? seconds. Does he not know? Oh, he resigns. He Pragg resigned. has resigned the game. He loses by time and resigns as well at the same time. Man, that is an amazing victory for Gukesh. And Pragg, we can see him heartbroken there. These are the final moments. He took on F2. Let's look at it again. Pragg there, thinking for a long while, has no defense to Gukesh's move, Rook F2. Gukesh gives him a stare. Pragg desperately tries to find the move, cannot find anything, takes the pawn in his hand, shakes his head, and that is the end of the game. Yeah, with that, chat, Gukesh wins and he joins the leaders. That is Kateryna and Vidit with 1.5 points. And yeah, that is the end of the Indian games. Update in the women's section. Vaishali lost, so both brother and sister losing this game. And I think we had a draw for Humpy there. And in the open section, all the results, chat. First of all, the big result was Hikaru Nakamura losing to Vidit Gujrathi with the white pieces. What a crazy game there. Second was Pragg losing to Gukesh with the white pieces again. And third, we had Kateryna defeating Abasov. And final game remaining. And this is man. This is all it the just a rook up? decisive games. Wait, all 4 games were decisive. Yes. Yeah. Right? Yeah. Yes. Yeah. As we thought, like first day, everyone was playing like, safe, let's all draw. But second day, only the bloodbath has started, yeah? So, Yeah. Bloody And pata days. kya hai? Once it happens once, the people who have lost have no option but to try for a win now. So they will be even more desperate to try for a win. And the people who win are in great confidence now. So they're like, theek hai, ab to nikal lenge. So it's only going to accelerate what has already happened. So we're going to see bloodbath in every day. Definitely. Sahil, can you show the game once how This one, yeah, this one was. Yeah. This one was How insane. I numbers think in Roka? we already saw it till here, so I'll continue it from here right now. Bishop E6. I mean, look at this pawn chain. Queen G6. That was a blunder apparently. Queen E7.
Queen h6, bishop f7. Wow. What? Okay, without what? Her move blunder hai bhai. Okay, picks up the pawn, threatens discovered check. C4 defends the bishop, sacrifices the exchange. Knight g3, what a move. Wow. Knight c4. Abbe yaar, chal kya raha hai bhai? Yeah, this is a crazy game, man. Lost. This is completely lost, yeah. You're a full rook down for nothing. It's like they are doing that. I will give you a piece. No, I will give you a piece. They're both doing that. What are you giving? I will also give. Sahaj and DQ, are you a bit surprised that the games are ending a bit quicker than we thought? Maybe we're used to Magnus, no? Yeah. Maybe we're used to Magnus grinding out, 6-hour long games and, Yeah, because they are ending before the time control, I think. We have not reached time control in most of the games. So I think people are actually not able to adapt to the time control. वो जो आखिरी के जो 10 मूव है ना, उसी में कुछ ना कुछ हो रहा है. So time management हर किसी के लिए difficult रहा है अब तक, I think. Right. As Ashbite said that there will, yes, you're right. I did say that there will be 3 results, but I think there will be 4 results. So I was also kind of wrong there. But yeah, a bloodbath indeed. विदित ने दिल खुश कर दिया, बिल्कुल ग्रे हैट जी. एंड वीर द फैबी में मजा आएगा बिल्कुल. एंड आई थिंक वील हैव अ लुक एट द पेयरिंग्स फॉर टुमारो प्रीटी सून. निरी भाई प्लीज सेटअप करके रखना भाई, पेयरिंग्स बहुत जल्दी लगानी होंगी हमें. एंड स्टैंडिंग्स एज वेल. Nepo also, bhai, Atharva said like Gukesh was behind 70 minutes and Pragg losing on time was like crazy. Like he was up on a clock by an hour. And True. And yeah, Okay, takes the AB5 pawn on as the well. board. Queen G3 I think is probably forced, yeah? Yeah. इंक्रीमेंट के साथ तो बहुत सेफ लग रही है पोजीशन. हाँ, एक्चुअली अब किंग भी थोड़ा सा ना लाइक ब्लैक के पीसेस में है ही नहीं. एंड बिशप देखो ना, ये कितना खतरनाक डायगोनल है. So it's just queen e4 here and I don't see anything happening. I can even trade rooks, one of the rooks. एक बार, yeah, this is not that difficult. Yeah, this is probably over, yeah. Very soon. Who gets top spot even if 4 people are tied? Then there'll be tie breaks. And to be honest, I think tie breaks नहीं होंगे. Because that's not been the case for the past few candidates. I don't remember कि कोई tie break हुआ हो, है ना? Last time I think Nepo won, उससे पहले Nepo won, उससे पहले Fabi won, उससे पहले I don't think कोई भी tie breaks से decide हुआ था. I don't think tie breaks होंगे, नहीं. Unlikely, very unlikely. अभी ऐसा लग रहा है क्योंकि उन्होंने 2 ही राउंड हुए हैं, but it will change. Yeah. The leaders will soon emerge. भाई फैशन सेंस का तो कैंडिडेट्स फ्यूजर भाई जीत रहे हैं भाई, जो बोला यार. Like you said, it is actually you should not wear, right? So actually, DQ, I have a question for you. Who do you think is better dressed between Nepo and Ali? We actually had this debate earlier. Really? What do you think? I think Firouzja, man, he is like coming in style. Yes, I know. I totally agree. Even in freestyle, he was like that. He got like completely dressed up. I've seen one picture. I think it was in press conference before starting. He was like in glasses, very dashing and all. From a girl point of view, also like he was very, very. No, I think I completely agree with you. नेपो तो ऐसा लग रहा है अभी शादी में निकलना है इसके बाद, ऐसा लग रहा है. I think Nepo has always been dressed like that only. Yeah. That's classy, you know. That's more classy. But I think I like Alireza's style more. So Nepo, of course, continuing his run. तीसरे candidates में लगातार lead लेते हुए. No surprises there. Stamping his authority with this crazy game. क्या ही game थी ना, मतलब crazy game थी बहुत. And I still remember the time, dude. There is like when Ding won the last game and Nepo just threw away the pieces and he was like very you upset. feel for Nepo, है ना? 2 बार he lost. But इस I बार was happy for Ding. Like at that time, he was like immediately sad, crying and all. So Ding का expression तो same होता है यार. If he loses or wins, it doesn't change. But ऐसा लगता है कि Ding को देख के ऐसे दिल से बुरा लगता है. पता नहीं क्यों. He's always like
The small smile face. He's Like, very nice. yeah. गुकेश प्रगड़ लो एक्यूरेसी मैच मैन आई थिंक वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी आई एम नॉट सरप्राइज इतना इधर ब्लंडर उधर ब्लंडर बहुत ब्लंडर्स थे उसमें एंड इट वाज नॉट लाइक सरप्राइजिंग इतनी जब इतना कुछ कॉम्प्लिकेशंस है तो वो होगी ही गलतियां एंड टाइम भी नहीं था उनके पास स्टार्टिंग में दे यूज अ लॉट ऑफ टाइम टेक द अदर एलिफेंट टू द राइट यार आई एम नॉट गोइंग टू द राइट भाई सॉरी अच्छा यू मीन पीस अबे रुक H1 खेल सकते हैं बट रानी मर रही है यार अभी के लिए सो आई वुड से कि पहले रानी बचाते हैं उसके बाद खेल सकते हैं ऑल्दो यू कैन अटैक द क्वीन आल्सो You पॉसिबल can play that, right? I think. you can No, there is 91 check, I think. but I'll take नहीं with the नहीं other 91 check नहीं वो कर रही. तो रुक H1 check खेल सकते हैं, I think. I think knight E1 पे अगर knight और रुक भी मिल जाए ना मुझे for the queen even that is completely winning because deep pawn है Yeah. सब कुछ ही winning है basically. हाँ But just I queen think E4 like seems very easy. Yeah. It's a long thing. I think he took like 6 minutes on this move. Also, I think they reached time control. Oh, that's why they are thinking. Yeah. पहले थोड़ा सा stress होगा and now it's more Now he's relaxed. thinking. Yeah. So I think this is, I mean, it kind of looks like also Ali Reza knows he's completely lost. I mean, his body language is also a bit, yeah. you know He's not I even just thinking about the position. yeah but he's never thinking about the position I get this feeling kind of अरे नहीं you यार, know come on. I just went to the pairings of the last round just for you know laughs ठीक है to check कि किसका मैच किससे है and आखिरी मैच में तीनों इंडियन के ब्लैक है ओपन सेक्शन में so But it is but considering what happened today, I think हाँ that's a good sign, na? हाँ true but pairings सुनो it's Hikaru against Gukesh Firuzja against Vidit and Abbasov against Pragg so I would say कि कहीं ना कहीं Pragg has the I know साहब आपको सुनना नहीं है but easiest pairing No, I completely. I think today, I think it's you have to understand कि I mean for Hikaru to lose like that, उसको भी win के लिए try करना है. अगर if White decides कि they are going to play solid, then Black कुछ नहीं कर सकता. तो you saw what happened yesterday also, ना when Legit played D5. वो लेकिन ना वो सेम रेटिंग के लिए होता है भाई जहां 100 पॉइंट का डिफरेंस आ जाए तो मुश्किल है बस सबका I think 2600 से ऊपर I mean anybody can play for a park the bus and just play for a draw. I think it's possible. चलो we'll अगर find करना out होगा व्हाइट से तो कर ही सकते हैं व्हाइट से तो कर सकते हैं मुश्किल होता है बट आई मीन कल भी तो यही हुआ ना निजत के गेम में when he played D5 I mean he went for the solid option so हाँ but I think when the last game में क्या होगा they will know exactly कि what do they need so it really depends also on that कि क्या रहेगा okay let's come back that's really far away अभी बहुत टाइम है उसमें यार Literally 12 days away so हाँ and with some rest days. Come on, Nipabai, let's go. Queen E4. Let's finish the game off. I think Queen E4 के बाद एक दो मूव में resign कर देगा फिर उससे. There's not much to do. Yeah, Queen E4, Queen G3 I think is what he's thinking about. Rook H1 is a huge threat. Yeah. So he plays Rook H1. Okay, logical. Oh, he plays your move. Yeah. Yes. Rook H1, nice. Queen D7 and then Queen E4. Yeah, it's just over. You are correct, yeah, Mr. Wagon. You are absolutely correct. Rook H1 played. Also, like from Firuzja's like body, like like how he is sitting, I think he is gonna resign or like he knows he's dead loss. Yeah, completely agree. Yeah, Rook H1 is the final move. I think I wouldn't be surprised if he resigns even now. Maybe Queen D7 he can play because Queen E4, Queen B5, just one check and then King E3 and then probably then. Yeah. And also I remember last candidates में पहली loss के बाद Firuzja just kind of gave up. His fire was simply not existing. तो इस बार भी अगर ऐसा होगा तो बाकी प्लेयर्स के लिए वो बहुत बड़ी एडवांटेज है बिकॉज लास्ट टाइम तो आई रिमेंबर मैं देख रहा था मैं स्ट्रीम भी कर रहा था लाइक आफ्टर ही लॉस्ट वन के लाइक बस भाई अब नहीं हो सकता मेरे से अब नहीं होगा सो ये देखना पड़ेगा हाउ डज ही बाउंस बैक कैसे कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा will Vidit try to again to win against Pragg so I think
white pieces तो clearly, and also I think वहां पे I don't think they will decide beforehand कि क्या करना है, but of course VD पक्का push करेगा, and black से इतनी बढ़िया prep है, अगर white से भी उतनी बढ़िया prep हुई तो I think it is possible. It is possible. Definitely yes, definitely possible. But Pragg बहुत dangerous है black से. I know I keep repeating that, but Pragg is very very dangerous with black. So I think anything is possible. I wouldn't be so sure कि कौन push करेगा वहां पे. Because Pragg will also be very hungry. That's true भाई, very hungry. आप तो hungry में ही हो. Sahaj भाई and DQ, what is the एक क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन, कि लॉन्गेस्ट स्ट्रीम आपने कितने घंटे की करी है, चाहे कमेंट्री हो या कुछ भी हो, लॉन्गेस्ट, या फिर चाहे हाँ लॉन्गेस्ट स्ट्रीम कितना करा है एक ही बार में? नहीं, मेरा तो कल ही था. हाँ तो कल ही था ना, तो आई थिंक वो हाँ ऑलमोस्ट 5 घंटे था ना, आई थिंक. हाँ, दैट इज योर लॉन्गेस्ट, नो, है ना? एंड डीक्यू, व्हाट्स द लॉन्गेस्ट स्ट्रीम यू हैव बीन ऑन, एक चाहे खुद का? Yeah, I've done a so streamer you can't ask, right? I've done a subathon, so I think it was like 10-11 hours, so it has been a good thing. लगातार 10-11 घंटे? हाँ, क्योंकि करना पड़ा ना. Oh wow. Got it. So I gave up after some time. Like, okay, I'm sleeping, we'll continue this tomorrow, and I stopped. Wow. अगले दिन उठना मुश्किल है यार, उसके बाद 10 घंटे स्ट्रीम करने का, है ना? Yeah. बाद में Queen D7 played, yeah, Queen E4. Yep. And yeah, it's like king भी अटका हुआ है ना. There's so many threats, so I think it should be over soon. DQ to 24 hours stream. यार 24 hours मैंने कुछ लोगों को करते हुए देखा है, बहुत लोगों को मैंने देखा है करते हुए स्ट्रीमिंग छोड़ देते हैं उसके बाद. So I remember at least 2 people who started and they did a 24 hour stream and they left. उसके बाद कभी नहीं आए वो. बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता होगा ना. I mean कल भी, I mean 5 hours itself is quite stressful. I mean quite long, I think, but 10 I cannot even imagine. That must be a very hectic. So there was a subathon, I don't know. I think DQ को पता होगा. Sahaj bhai, if you know about Ludwig. Yeah, I do. Oh, he was one of the. I think he was the most interesting chess player, no? In those. I think there was some POG champs or something like that, right? And he had like some really cool games there. He's a very famous streamer, and उसकी जो एक subathon करी थी उसने, वो पूरा महीना चली थी. Yeah. What? Yeah. Sahaj, like if you know subathon, it's like. तो वो जब वो सो रहा था तब भी people. हाँ. 24 घंटे, 30 days, and he earned like millions of, I think, I don't know, 1, 2, 3, 5, but 10 million dollars. He said like he would never do it. He got like कमा लिया ना उसने, अब क्या करना है? एक बार आ गया ना. But that's crazy. It never ended. Yeah. That's crazy. And Sahil bhai, what is your longest stream? Longest, I think it's like 7.5 probably, 7.5, 8. But I've done like, say, 2 streams back to back, like 6 hours each, yeah, 7, something like this. But there was like 1 hour, half an hour gap each में. Achha, okay. Got it. But that is crazy, man. 30 days. 30 days. I have a question that player prepare 2 openings or only one, as opponent can play any opening, that would be of no use. I think they would probably have a lot of openings. Probably कुछ openings ज़्यादा deep होती होंगी. Sahaj bhai, you can probably elaborate more. Yeah. I think they're, for candidates, definitely they've prepared probably every single opening, but some a bit more deeper than the others for sure. And yeah, I mean, it's no opening can never be of no use, because I mean, there's a saying, hard work never goes to waste. So even if it's not used in this match, it will be used in somewhere. ऐसा हर जगह कुछ ना कुछ हो जाता है. वो कहते भी ना कि वर्ल्ड चैंपियनशिप प्रेप जो होती है वो सालों बाद कई बार यूज होती है, तो इट्स द सेम, लाइक इफ यू प्रिपेयर वेल फॉर दिस, तो completely correct, yes. Tomorrow is break day. Tomorrow is no break day, बिल्कुल भी नहीं. The first break day, I think it's like on Monday 9th or something like that. There's a lot of time, man. Abhi it's after the 4th round, right? हाँ 4 round लगातार है अभी. By the way, Queen E4 played. So keeping an eye on H7, keeping an eye on the knight, keeping an eye on the E5 pawn, सब कुछ hanging है. There's one check, but then King E3, the knight is hanging, and the knight moves, then Queen E5, and it's over. So, yeah, it's going to be over soon. Yeah. So उसके बाद निधि भाई,
I think pairings देखने में मजा आएगा यार कल की. I think round 3. And so how many results do you predict tomorrow without looking at the pairings? Purely from what happened, Sahaj and DQ. कल के लिए. But pairings तो देखनी पड़ेंगी ना. How will नहीं, they... random guess. आज 4 रिजल्ट्स थे, कल 4 ड्रॉस थे. मुझे लगता है कल प्रैग जीतेगा. Oh, with the black piece against VD, huh? See, that's the thing. I didn't know who is playing. Yeah, I was gonna say that Pragg is against Sweden. Oh, right. Number of results. Number of results, I would say balanced. 2-2. Yeah. And अभी the predictions more or less सही रही हैं, you know. Yeah. What do you think, DQ? 3-1 maybe, I don't know. 3-1. 3 results and 1 draw. Yeah, 3 results. And also one update ki, I think Zhongyi is the only player on 2-on-2, and Gujrathi now also won her game, so she is like 1.5. She's in second place. So Zhongyi clearly, matlab, she's running away with it as of now. Yeah. So that will be an important game. देखना पड़ेगा who will be the one to stop her. Yeah, otherwise she will run away like Nepal did last time. Yes, yeah, completely. Getting early lead is like very important. Hi Salbhai, are you Kashmiri? हाँ भाई, किसी को बताना नहीं यार. रिस्की रहता है थोड़ा. मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा what is Firouzja thinking about? Like what's the... I mean, इस time मेरे सब calculate कर ही लिया होगा, right? I think it's again inertia. वही है कि मतलब time है तो अब सोच रहा हूँ मैं. I mean, Hikaru भी वही कर रहा था at the end. ये सोच रहा था बस. There's no point to the thinking. Like, of course he knew कि Vidit will not miss that game. So, right. Because it's your first loss. No, but Hikaru wasn't a rook down, no? Yeah. थोड़ा सा different. But he was technically a rook, knight, and bishop down, I would argue. Oh well. उसके तीनों pieces घर पे बैठे थे. That's as good as, you know, useless. Yeah. So Firouzja has nothing to play for here, right? Yeah, I don't think so. Yeah. But Got it. जब भी आएगा तो बताना भाई. You'll love to see the interview. Yeah. Come on, Firouzja. Let's go. He's definitely, yeah, that's definitely a sign. He knows he's lost. There is basically nothing. Queen b5 check, I think, is the one move you can play. Ek check hai, and then king e3 ke baad, I think it's over. Yeah, his expressions don't convey any I confidence. think even just one move without a check is like, okay, just saying ki ab game khatam hai. Just one move without a check. So I mean, you just have to run out of checks. That's it. Can India win against China? I mean, Chinese player तो I think women's section में है ना. Open में तो कोई China से है नहीं. Maybe he means Ding. Ding. I don't know. Ding के against तो I think form में तो है तो हाँ, of course, 100%. Yeah, I mean, definitely possible. Yes. what do you think Hikaru would go back and now make a video out of it? Like analyzing his own game? Like, yeah, he will do that. By the way, King G8 played. I don't think that helps by. That is like admitting it's over. Yeah. I don't understand what's the point of this move. Oh, even just King E3, yeah? Game over. Yeah, that's simplest. Yeah, बस हटाओ knight को हटाओ यहाँ से खत्म. Yeah, because is King E3 के बाद black पे कोई checks नहीं दे सकता, so I think it's pretty easy from there. Just to be sure, by the way, Queen F3. There is apparently Queen B5. I think this is the last trap Nepo has, and this is actually better for black apparently. Yep. So true. So I don't know whether King goes. Let's say King E3. Then there is Queen B6 check and King E4, Queen B4 check. King E3, Queen B3 check, King E4, Rook C4 check, and it feels uncomfortable to say the least. Queen, yeah. So yeah, Queen to gayi. So that's why I think कि बस ये last trap है. I think this is the last trap by Firouzja here. King E3 के बाद there's no more checks, and it's time to resign. No, I think he will still play knight d4 because he sees bishop d4, e d4 is a check.
maybe he will still continue that, but yeah, it's uske baad King D2 ke baad I think I'll expect a resignation, yeah, for sure. Future looks like he's gone into depression. I remember the same look, man. Like Jesse, in fact, this is common to in his play. मतलब जब वो इसमें freestyle में भी when he realized कि मतलब मैं top 4 में नहीं आ सकता, so he basically just he was playing as a casually, playing very fast, not thinking too much. Last Candidates से भी same था. When he lost one game, he suddenly started like losing very quickly, resigning and not playing good chess. So I think वो एक चक्कर है like वो mindset में, like once he loses, he cannot come back easily. Right. Yeah. just look at his body language. Yeah. It's like, what am I doing here? ऐसे कोई स्वाइप कर रहा है भाई वो ऐप पे, ऐसी फीलिंग आ रही है. Like how you swipe Amazon at night, you just you don't want to buy anything, but you just you're looking at the past time. डायलॉग अच्छी बाबू मुशाई. I don't know, कोई डायलॉग बन सकता है बॉलीवुड का. Saj bhai, what is the time at your place abhi? What is the time? For me? I think it's the time when you started streaming. It's 1 a.m. See, comfortable जगह बैठे मेरे लिए खराब है, but मेरे लिए it's not even close for you in comparison. Yeah. By the way, King E3 played. He plays knight to d4. Yeah. Another try, but yeah, bishop d4, e4. I think. Takes. Yeah, e4 check and king d2 and game over. I think there is nothing. Yeah. Queen e6 pe bhi literally is winning. So yeah, queen e6 check and yeah, sab kuch hi. Chat takes. We can't. It's a check and just take. Like you can even take this, I assume. But okay, I will just play as Sahaj said, king d2. No more checks, and it's over. So only 1 or 2 moves away, chat. I think, in fact, just 2 moves away from resigning, and that will be the end of day 2. Okay, bishop. Okay, he resigns. Did he? Yeah, I think he just resigned. Yeah. He just resigned, chat. And that is the end of the final game of the candidates. Day 2. Nepo wins, joins the leaders, and now we have 4 leaders. I don't know if I can show the standings. Yeah, those are the results of the open section there. You can see Gukesh having a spectacular win with the black pieces, Nepo winning with the white pieces, Karuana winning with the white pieces, and Vidit, that was just a game for that was a treat, man. Just a treat for the eyes and for the brain. And Sahaj bhai, what do you make of the standings? 2 Indians on top as of now, Abbasov right in the middle. I think it's looking really good. As expected, there's just bloodbaths today. All 4 results. I think the biggest the most impressive game was probably of Vidit beating Hikaru and Bishop H3. I think that's again another move of the day. I remember in game 1 it was Bishop G4 and in game 2 it's Bishop H3. Both are very nice moves. And yeah, I think with Nepo and Fabi, they seem like more consistent wins. I didn't get to see Nepo's win against Ali Reza, but I'll have to check that and see what the exact bar was there. But yeah, I think over women's section mein Humpy right in the middle with 1 point. I think Vaishali has to come back tomorrow. We are hoping she can strike with a win tomorrow. That will be amazing news. But Vaishali and Pragg right now both at the bottom of the tables. So ye unko fix karna padega. Hopefully both of them can fix this tomorrow itself. Can we have a look at the pairings of both sections now? Are they ready for us to see pairings of the women's section and the open section? Yeah. बिल्कुल भाई बिल्कुल. And जहाँ पे हम यहाँ पे ग्राफिक्स देख रहे हैं चेसकॉम इंडिया पे खाली हमारी शक्लें दिख रही थी. Because there are 2 channels, so पिछले channel में we couldn't see the interview, so that's funny. Yeah. There are like 2 wins with black and 2 wins with white today. Yeah, balanced as all things should be. Wow. ये किसने कहा था साहिल भाई? कहीं तो सुना है मैंने. ये किसने कहा था?
मुझे याद नहीं Balanced किसने कहा. as all things should be. Oh, he keeps like this thing on his in his on his like finger, and it's like हाँ. balanced on his hand. It's like a small sword. You know this अच्छा. person. अच्छा बताना भाई I'll क्या tell you नाम है later. भाई. हाँ. So Hey, nice, nice. Chirag bhai, you're 100% right. Thanos. अच्छा हाँ. Yes, it Right, was right, Thanos. right, 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 Oh, right. भाई Thanos supporter. Let's go. By the way, the pairings are there, chat. The pairings are Abbasov against Hikaru. I assume Hikaru के लिए वो must win ही है almost, yeah. but Yeah, uh, yeah, है ना? yeah, completely. Abasa with white pieces, right? So he Yeah. would be looking for revenge there. You know, he wants to strike back tomorrow. What you don't want is a draw against Abbasov, and then you like that's the point you want at all cost. And next है हमारा Firouzja against Caruana. That will be a crucial match for Firouzja मुझे लग रहा है. अगर वहां पे कुछ गलती हो गई तो it could be all but over, है ना? And Sahaj Completely. and DQ, what do you make of Gukesh against Nepo? Both players आज जीते. कल क्या लग रहा है? Definitely a crucial game, but not sure. मेरे हिसाब से I think it will be definitely a very very big fight, but I think I'm gonna go with the safe option and just say it's gonna be a draw. Got What it. do you Got think, it. DQ? I want decisive win so that will be but so leader. I think whoever wins would be so leader or no maybe okay. They will be leader for sure, at least a leader. Yeah. One would be like taking off the other from the lead, like leaving contestants, right? So it would be fun, but draw is good, I guess. ठीक है. So I think मैं तो win के लिए hope कर रहा हूँ भाई गुकेश का, लेकिन नेपो को रोकना भी है, वो बंदा फिर रुकता नहीं है यार आगे जाके. So that will be amazing. And finally, Vidit against Pragg. That is going to be a spectacular match as well. Vidit coming off with a victory, and Pragg के लिए तो बहुत important game. उनको bottom table से अगर हिलना है तो. And yeah, I think crazy games थे. कल देखने में मजा आएगा. Chat एक बार women's pairing दिखा दो जल्दी से निरंजन भाई. We will have to see who are Humpy and Vaishali playing because they really need some wins, especially Vaishali who has lost today unfortunately against Zhongyi. तो ये रही pairings. Anna Mulchuk against Kateryna Lagno. We have Tingji against Gorachkina. Vaishali against Salimova. Salimova lowest seed है women's section की. तो कल उनको strike करना ही पड़ेगा. ऐसा मुझे लग रहा है. Vaishali has to strike. Yep. And Humpy against Zhongyi. That's a crucial match. उनको रोकना पड़ेगा. ये अच्छा मौका है. White pieces. लीडर को रोकना है. दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. बाकी सब लोग भी दुआ कर रहे हैं. सो दुआ साथ में है भाई उस गेम के लिए. सो लेट्स होप सो कि Humpy can strike there. Yeah. Completely. So those were the pairings, chat. I would love to thank all of you for joining. Thanks a lot Sahaj bhai. Thanks a lot DQ for joining, and thanks a lot Rakesh bhai रात भर जागने के लिए. It really meant a lot, and thanks to you, VD1. And thanks a lot, Ninja Bhai. Any final words, Sahaj and DQ? Oh, thank you for having me. It was awesome as always. And again, for me, it's not as bad. I know you must be, 2 minutes के अंदर you will just pass out. But yeah, no, thank you for having me. It was awesome. Sorry? Because if you're streaming, तो 1-2 घंटे तक नींद भी नहीं आती उसके बाद. You cannot sleep because body is too active to fall asleep. नहीं, मेरे को 1-2 घंटे में ऑलरेडी नींद नहीं आएगी. आई नो. तो मतलब मेरे को वैसे भी ना आती. तो मैं आई एम अ लेट स्लीपर. सो तो मेरे को वैसे भी नहीं आएगी. तो आई एम गुड ईदर वेज. इट्स परफेक्ट. I just had coffee, so I think I will go back and check all the games now. Oh, nice. Awesome. That is great. Nice. My mom would be like really shocked. Why is she awake at like 5 a.m. in the morning? she did not sleep. That's what the conclusion she'll come for. But yeah, it was really fun watching the games and having visit all these amazing matches. Yeah. Live. So that's good. Yeah. Thanks a lot, everyone. This was an amazing experience today. And thanks to VD for making this day memorable for all of India. Trending at Twitter. So go and tweet, support VD, support every Indian player. And we'll see you tomorrow. कल आएंगे फिर से कुछ spectacular games के साथ. Thanks a lot, Niri Bhai, for the flawless broadcast. See you tomorrow, chat. Bye-bye.